देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें मनी 9 आजादी पैसे की। और ये केवल हिंदी में ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम देश के हर भाषा में आपको पर्सनल फाइनेंस समझा सके, पहुंचा सके। Money9 is an effort to financialize India's diversities, not just in one language, but in multi languages. तारों में रहते हो या सहारनपुर में, जालंधर में हो या जलपाईगुड़ी के, हम्पी में ठिकाना हो या होसुर में, पैसे की जबान एक ही है, उम्मीदों की उड़ान एक ही है। अब आ गया है मनी 9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें मनी 9 आजादी पैसे की। तो प्रियंका आगे बढ़े उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए Money9 के लिए। A huge round of applause for Money9. बिल्कुल, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली गौरव। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुंबई। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मुंबई दिन में 2 बजे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हाउसफुल है, तो थैंक यू मुंबई फॉर दिस वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अस। So let's get started with the Mahakumbh of Personal Finance Market, and for this I would now request TV9 Group Managing Director to accompany today's chief guest, Minister of State for Commerce and Industry, Madam Anupriya Patel ji, to the stage. Please come, sir. Please a big round of applause for our dynamic guest of honor, Madam Anupriya Patel, Minister of State for Commerce and Industry. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं TV9 नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वरुण दास जी का और हमारी स्पेशल गेस्ट अनुप्रिया पटेल जी का। इसी के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगी वरुण दास जी को कि वो मंच पर आए और ओपनिंग कमेंट दें, ताकि हम इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत कर सके। सर प्लीज। Thank you, Priyanka. Thank you, Gaurav. Good afternoon, ladies and gentlemen. Financial Freedom Summit powered by Money9. A very warm and special welcome to the Honorable Minister of State, Commerce and Industry, Shri Anupriya ji, who has come all the way from Delhi only to be with us this afternoon. Thank you very much, ma'am. So what is this Financial Freedom Summit? What is Money9? We've seen those short teasers. And why are we here today? Let me share my thoughts on this. You must gain control over your money, or the lack of it will forever control you. A quotation from Dave Ramsey, not a very famous personality, a radio personality, but the quote I always have loved. Largely, Ramsey's comment, this quote describes or explains that why we are here today. In another word, to live, we need oxygen, water, and food. And ladies and gentlemen, as we speak, we can only get oxygen free still. Hence, to my mind, importance of money is right up there with our basic needs. No, of course, I'm not talking about money in the same spirit as the pop group ABBA's did. Remember the song, Money, Money, Money? I don't want to sing. I want all of you to be here. Hence, I'm just remembering those two lines, money, money, money. It's always sunny in rich man's land. Money, 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 all the things I could do if I had a little money. That's not what I mean. On the contrary, more than money itself, it is financial freedom that truly empowers us. And all of us would agree that the ultimate goal of our independence is that each and every citizen of a great country enjoys true financial freedom. A country's independence lies in its citizens being able to stand on their own 2 feet. India has truly fast-tracked the financial freedom agenda during the last decade or so. But given the gigantic inequality that started with, we have yet a long road to traverse. And I'm sure, Anupriya ji, under your government's and the Prime Minister's leadership, the distance is being covered in good haste. A huge progress has been achieved in bringing citizens into the formal financial ecosystem
The world is talking about India's jam trinity. The fintech revolution led by the UPI breakthrough defines the inclusive India story today. I am an eternal optimist, but that does not prevent me from looking at the gap areas in financial freedom mission of India, which is why Money9 was launched. Money9 is India's first multimedia, multilingual personal finance platform from TV9 network, which is the largest news network of our country now. Money9, mind you, is not a media product. We will talk more about it during the course of the day, but in short, Money9 is a super app in the making where content builds the eyeballs and then leads them to advisory, community learning, transaction, gaming, etc. All with a singular purpose of empowering every Indian with financial wisdom. One of the major initiatives of Money9 is the annual Personal Finance Pulse Survey, or PFP, which is India's first independent and perhaps the biggest nationwide personal finance survey to map the state of financial security of our country. The findings of the on-ground survey, which covered more than 30,000 sample households, yes, it's a physical sample done, while the surveyor visited 30,000 plus samples across the length and the breadth of our country. The findings will help us to collectively draw the financial freedom roadmap. The inaugural survey done late last year came up with many startling findings, such as almost 60% of Indian household remains financially vulnerable. The lack of financial security is also corroborated by a World Bank report recently. And despite the boom in the number of insurance providers, less than 4% of Indian households are insured. Basically, the Indians, most of the households, 96% households, do not even know whether they need insurance, and if they need insurance, how much is the insurance need for their security. The Money9 Personal Finance Survey has pointed to the critical gap between demand and supply side in the financial inclusion space. While the supply side looks having been well established, the demand side is still a laggard and needs to catch up to create the inclusion ecosystem. The Union government and all other relevant stakeholders, including RBI, SEBI, and the BFSI industry, seem committed to the financial freedom vision, but it is time to look at some out-of-box solutions. Not surprisingly, the issue is now occupying the mind space of India's top policy leaders. The RBI governor, in his recent financial inclusion address, pointed to the supply-demand gap and the need to address it urgently. The governor said the demand side and the supply side measures should ideally complement each other. I am in complete agreement with the governor's prescription. And he's absolutely right when he says that responsible and sustained financial inclusion requires balancing opportunity and innovation on both the supply and demand side. As I stated, Money9 is committed to playing a pivotal role in bridging this gap. Everything related to the financial security of Indian households would be available in Indian languages on our one-stop platform, the Money9 Super App, which builds the content, connect, and commerce for a 360-degree inclusion perspective. I take the liberty to quote the father of the nation as I conclude my speech. The future depends on what you do today. So there lies the answer to the question that I asked in the beginning. Thank you very much, and once again, welcome to the Financial Freedom Summit. थैंक यू वरुण सर, आपके इस स्पीच के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए। और देखिए, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कुछ। इस कार्यक्रम की नींव Money9 के पर्सनल फाइनेंस सर्वे के आधार पर पड़ी है, और पिछले साल मार्च से सितंबर के दौरान Money9 देश का पहला पर्सनल फाइनेंस सर्वे कराने वाला एक प्लेटफॉर्म था। और उस सर्वे में देश के परिवारों की कमाई की बात हुई, प्रियंका, बचत, खर्च, निवेश को लेकर पहली बार ऐसी जानकारी सामने आई है जिसके बारे में पहले ही शायद कोई जानता रहा हो। तो चलिए उस सर्वे से जुड़ी कुछ अहम बातों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। We are all familiar with the headline numbers.
India's economy has grown to become the world's fifth largest in the last 9 years. We have now crossed the $3 trillion mark. But does this really reflect ground reality? How financially secure is the average Indian? When Money9 conducted India's first personal finance survey last November, we found that almost 69% of households faced financial insecurity. What does this say? It shows that while there's growth in financial inclusion and the financial services industry is doing well, financial security of Indians remains a concern. How will they bridge this demand-supply gap and secure the well-being of 1.4 billion Indians? This question lies at the heart of the Financial Freedom Summit, hosted by TV9 Network and Money9. This unique gathering of policymakers and thought leaders will draw a financial roadmap for India and set the agenda for action. Well, Gaurav, this is the personal finance survey which has pioneered the way to this summit where we all are standing because we want to discuss what kind of challenges we are facing and where are the opportunities. Just now our CEOs has told us that there is a lag when it comes to the demand side. So let's find some answers here, and before we move forward, let's meet with a galaxy of leaders, money masters and experts who would grace the Money9's Personal Finance Summit today. तो जैसा कि आपने देखा, भारत के वित्तीय जगत की प्रमुख हस्तियां, प्रमुख विशेषज्ञ, जाने माने लोग आज Money9 के इस अपने तरह के अनोखे मंच पर होंगे। और ये पूरा समिट आप Money9 के मोबाइल ऐप और Money9 और TV9 नेटवर्क के YouTube चैनल, Facebook प्लेटफॉर्म पर लाइव देख रहे हैं। और इस मौके पर हमने सोचा कि एक अच्छा काम ये हो सकता है कि हम जो सुपर ऐप की बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसे आपके सामने पेश करें, लेकिन आगे बढ़ने से दिखाते हैं आपको कि ये सुपर ऐप है क्या। Welcome to the world of Money9. Money9 brings you India's first personal finance empowerment super app, now in 10 languages. Money9 super app will offer a unique machine learning, voice search powered personalized interface by its pioneering multi-screen engagement architecture. The Money9 super app will offer personal finance news analysis, wisdom and guidance via video, radio, reels, live shows, interviews, comic and specialized documentaries. Money9 super app will empower its subscribers via live helpline, expert exchange, chat shows, quiz and games, money education, community connect ratings of financial products and gateways to transactions. Ladies and gentlemen, please keep your mobiles ready to become the part of a new revolution in personal finance empowerment. Money9, Azadi, Paise. Money9 is not only coming out with a super app, it has another pioneering offering for policymakers and BFSI industry. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to present Data Coin, India's first personal finance data interface. Money9 brings India's first personal finance interface, the Data Coin. Money9 Data Coin will help policymakers and BFSI industry to feel India's financial pulse along the length and breadth of the country. Data Coin will exclusively provide access to granular data of India's biggest personal finance survey conducted by Money9 between May to September 2022.
The personal finance survey of Money9 has covered over 31,000 households, 20 states, and 100 districts. The survey findings were widely covered by the media. Personal Finance Survey is an annual exercise, and its next edition will be launched this year, which will be wider and deeper than the last one. Data Coin will also offer secondary data on personal finance products like insurance, savings, gold, property, debt, mutual fund, and stock market. Ladies and gentlemen, here comes Data Coin, India's first personal finance data interface, exclusively for policymakers and BFSI industry. और अब मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वो रिमोट दबाकर Money9 के डेटा कॉइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करें। मैम याद प्लीज प्रेस द बटन। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे डेटा कॉइन ऐप को लॉन्च के लिए। एक जोरदार तालियां हो जाए डेटा कॉइन ऐप के लॉन्च के लिए। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। और अब मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप डायस पर आएं और हमें संबोधित करें। प्लीज मैम। Very good afternoon. Shri Barun Das ji, MD and CEO TV9 Network, all our banking, finance and insurance sector experts who are here today to make this very unique initiative of holding the first ever in India Financial Freedom Summit successful, and the whole team of TV9, Money9, all of you. It gives me great delight to be here for this inaugural session of this first ever Financial Freedom Summit, and I thank Barundi for inviting me here to participate, to be a part of this very special initiative, which I feel is very important, considering the amount of trust that Government of India, led by Prime Minister Narendra Modi ji, is putting on the very, very important theme of not just financial inclusion, but also financial freedom. So congratulations, TV9, Money9, once again. As I learn, one complete day has been dedicated to this summit, wherein you will be witness to 6 different technical sessions, and you would be enriched with the ideas and thoughts that would be shared by a panel of experts in the finance sector. I'm convinced it's going to be a very, very meaningful engagement, very productive, and it would help us to take the very important agenda forward of financial inclusion and financial freedom. I would like to put on record my sincere appreciation for the whole team of Money9 and TV9 Network for undertaking this very extensive and huge exercise of drawing 30,000 sample households and then conducting this whole survey, which is called the Mega Personal Finance Survey. And we have just seen a very relevant finding that has come up. In this presentation, the 69% of the Indians today are still financially insecure. So what the survey tells us is a big gap which exists between the supply side and the demand side. Of course, financial inclusion, financial freedom
has been one of the top priorities of Government of India. But we have made several efforts on the supply side. The demand side is still an area which needs to be looked into. And I'm glad Money9 and TV9 have taken this initiative to highlight that there is a grave need for India as a country, considering the future of 140 crore Indians, that we start thinking towards putting in our efforts into the demand side. So I'm very happy that we have all assembled here for a very important cause. We all understand the need for financial inclusion. You're also aware how Government of India has worked towards this very important objective. It is financial inclusion which not just makes people, it just doesn't make people aware of the need of it, but also it is beneficial for the overall economic prosperity of the nation. It has several benefits, not just in terms of reducing cash economy or helping people to better avail the benefits of the government schemes, but also to be able to develop the capacity to manage their own money. I think Mr. Barun Das ji in his address very rightly said this. That money, money, money is not the dream which every citizen of India should have. It's rather a better management, a better financial freedom, which we must aim towards. And this is what we are going to be discussing. So it's a very important discussion which is going to take place throughout the day during the course of several different technical sessions. My dear friends, you're all aware that Government of India has made several efforts to extend financial services to the so far unserved population of the country. Very important initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana or the National Mission for Financial Inclusion, which we started working upon 2014 onwards, when the government led by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji took over the country for the first time. And since then, it has been a long journey for 9 years with several important outcomes in the right direction. We all understand why greater financial inclusion is required for a wider, for an inclusive, and for a sustainable growth. RBI recently told us that for the year 2022, the annual financial freedom index, it stood at financial inclusion index, it stood at 56.4. And it is an improvement over 53.9, where we stood at in the year 2021. And this has been possible with the collective efforts of all the relevant stakeholders. You're also aware, Digital India was launched with the perspective of transforming the country into a digitally empowered society and a knowledgeable economy. And significant strides since then have been taken to build digital infrastructure, deliver tech-enabled citizen services, and scale online payments to propel India to the forefront of a digital transformation. We've all been witness to the devastation which was caused by COVID-19 pandemic. But we also learned important lessons of life during the pandemic. India today has emerged as one of the fastest growing economies in the world. We've recently surpassed the British economy, becoming the 5th largest in the world. And we're expected to be the 3rd largest in times to come in the next 4 or 5 years. So that's the rate, that's the pace
which India is moving financial inclusion up from the bottom. The UPI, you would agree with me if I say it has been an unquestioned success. And we believe there is an opportunity for it to have an even greater impact on the country, especially in the rural and the remote and the largely unserved regions. And digital and financial inclusion can significantly improve people's lives. Today, UPI accounts for 75% of total digital payments in India. And the volume of UPI transactions had increased multifold from 4.5 million in the year 2017 to 8 billion by the year 2023. And in terms of value, there has been an increase from 250 million US dollar in the year 2017 to $158 billion in the year 2023. Talking about the daily transactions via UPI, they have gone up exponentially in the past 12 months, with daily transactions crossing 36 crores or 360 million from 240 million or 24 crores in February 2022. And by 2025, a very important thing that I'm going to say now, by the year 2025, the daily transactions on the UPI platform will be able to touch 1 billion. That's the expectation we have. That's how we are performing. So the digital landscape is the fast-changing one, of course, with the overarching technologies that we have today, which are being used in the country. And India has emerged as a credible leader when it comes to not just creating digital public infrastructure for financial inclusion at the population scale. UPI, I just mentioned, but there's also the Open Credit Enablement Network, the OCEAN, which is an emerging digital public good. That's a very good example in front of us. And this empowers also the MSMEs by directly delivering financial products to them, thereby eliminating their dependence on the traditional lenders. It could significantly improve the digital ecosystem of lenders and the loan service providers. Ladies and gentlemen, the Indian fintech ecosystem has also emerged as a formidable global force and continues to grow as one of the largest fintech markets globally, and fintech adoption rate has been the highest in India. The market opportunity, coupled with conducive and proactive regulators, has also helped the fintech industry grow at a notable pace. These companies have managed to attract the top talent from various sectors, which will continue to help them thrive. India's digital economy is expected to witness exponential growth. Financial inclusion, my dear friends, is also critical when it comes to international trade. You would know that there are currently billions of people across the globe, including many in our own country, India, who are financially excluded or unserved. And that is why financial inclusion is important, because it is very difficult to participate in international trade when you're outside the formal financial system. So international trade could also be an important contributor towards the big agenda of financial inclusion, and through services, increased services and regulatory improvements. We strongly support efforts to increase financial inclusion from the trade angle, because without it, the excluded would neither benefit from the trade and nor participate in it. We are working to fulfill Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's dream of making district as export hub. You would recollect Honorable Prime Minister of India saying this from the ramparts of the Red Fort, that every district in India has the potential equivalent
to some country in the world. And we have so much of locally manufactured goods. And then he came up with the idea of vocal for local and local goes global. But how do we do that? We want to put every district of India on the global map. And which is why this entire exercise of developing district as export hub, picking up what's locally produced, not just boosting up manufacturing at the grassroots level, but also employment generation, involving our farmers and artisans into that whole chain and taking our goods from local to global to the world market, and for which Ministry of Commerce and Industry is undertaking a huge exercise. We've launched a national effort and we have taken all our Indian missions abroad on board. So we are doing a very tight monitoring, commodity-wise, region-wise, territory-wise, mission-wise, and we are making sure that we march towards fulfillment of this dream. We have an entire institutional mechanism set up at the level of state governments, at the level of districts. We have district promotion boards, promotion committees, district export plans. So which is how we are trying to develop district as exports hub, picking up things locally manufactured from our districts and taking them to the global market. On the export front, I'm also happy to tell you that India, our exporter community, I would say, has surprised the nation on the export front during the COVID times. Last year, our merchandise exports, they were highest ever. $422 billion, ladies and gentlemen, and that too, well in advance. Prime Minister gave us a target of $400 billion for merchandise exports, but we were able to achieve $422 billion of merchandise exports, topped with $256 billion of services exports. So collectively, it was $676 billion of exports, which we made in the year 2021-22. And this year, the tempo is high. We're on the right track. And recently, our figures tell us that continuing on this high growth path, India's exports have been able to face the global headwinds from a position of strength in the back of strong macroeconomic fundamentals and buffers. We registered a positive growth of 16.56% during the period April to January 2022-23, with a value of 637, a little above that, billion dollar, as compared to a little above $546 billion during the same period last year. This is with respect to our exports. Merchandise exports. This was a collective figure. Now I'm telling you about the merchandise exports. How will we perform? Looking at the comparative figures in the same period, April to January this year and last year. $369.25 billion. This year, April to January 2022-23, as compared to $340.28 billion in the same period last year. Coming to services now, our services exports were close to $267 billion in the period April to January 2023, an increase of 29.82, approximately 30% over $206 billion in the same period last year. So we've been making some progress, and this year, when finally you see the export figures of merchandise and export figures of merchandise and services put together, it will be even better than what we achieved. And we have a target of reaching $2 billion by the year 2030. $1 trillion for merchandise exports and $1 trillion each for services and merchandise by the year 2022. Because our share in global exports today target of achieving $2 trillion of services together, merchandise 2030. So this was a little brief about how Department of Commerce is functioning. I consider it important to inform you is performing on the exports front. Well,
I would also like to mention to you that we have been fast-tracking our FTAs also. You are aware that India has created history by executing our fastest ever FTA with the UAE, the SEPA, in just 88 days. In a very short time, we also concluded our FTA with Australia, and we are holding our negotiation talks with several other important countries, EU, UK, Canada, GCC, Israel, all are in queue. We are fast-tracking and we are trying to get to the same point. For international trade also, financial freedom, financial inclusion, all these concepts are important. So it's very good that today we are all here to discuss how more we can work towards the demand side and we can bridge this gap which exists between the supply and the demand side when it comes to financial freedom. It is our responsibility. I'm glad we've launched an app today. And I must congratulate Barunji for the beautiful teaser that has been created. It is so simple to understand, it is very attractive, and it just gets the idea into your head. So simple, common Indian would just look at it and understand why it's important. So sometimes it's very important to communicate things in simple language, in simple way, so that people are able to understand what is missing. We started with the very relevant finding of 69% Indians being financially insecure. So how do you take that study to the mind of a common Indian? This is how. So these kind of teasers will help a lot. I'm very glad the app has been launched. I've had the privilege of launching the app. I'm sure more and more Indians are going to use it. And whatever we discuss today in today's summit, yes, it is with a very important agenda. It is with a very important idea of strengthening the agenda that Government of India has. But what's more important is that whatever the findings are, whatever the learnings, the outcomes of these technical sessions are, of this whole one-day summit is, we are able to take those findings, those lessons, everything that comes out of this, too much of this churning that is going to take place here, we are going to take it to the minds of a common man in very, very simple ways. The government stands by you. I'm once again very happy. I'm here to participate, inaugurate, and see all this happening. Thank you very much once again, Money9, for inviting me. I hope we take this agenda forward, and next time when TV9 or Money9 organizes this summit next year, maybe after a year, we see some progress. So when we talk about the gap that exists between the supply side and demand side, we are able to see that the gap has reduced. So we made some progress. So all the best. Congratulations once again. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू मैडम मिनिस्टर, आपके मुंह में घी शक्कर। हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस समिट के साथ हम इस जर्नी को कंटिन्यूस रखें, आगे बढ़ाते रहें। वेरी ग्रेटफुल फॉर सच एन एनलाइटनिंग एड्रेस बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैडम अनुप्रिया पटेल, आवर चीफ गेस्ट ऑफ द डे। हर मैग्निफिसेंट एड्रेस हैज परफेक्टली सेट द बॉल रोलिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम समिट। Before we move forward, I would request Barun Das sir to present an auspicious Shri Kalash to our honorable guest of honor. बिल्कुल, तो श्री कलश भारतीय संस्कृति में पवित्र समृद्धि का युगों पुराना पवित्र प्रतीक है। मैं चाहूंगा वरुण सर आप प्लीज श्री कलश से सम्मानित करें हमारी चीफ गेस्ट को। I would also like to invite Money9's editor, Mr. Anshuman Tiwari, on stage to present this momentum. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इस कामना के साथ आप सभी का दिन बहुत मंगलमय होगा। Thank you so much. We would request you to take your seat because the inauguration has happened with your, ma'am, with your august presence. Thank you so much for taking out time from your busy schedule. As you pointed out, there are 6 technical sessions, and we would request our guest of honor to stay for as many sessions as she could. And the next session is going to be with the renowned BFSI face leader, dynamic Radhika Gupta, Managing Director and CEO of Edelweiss AMC. I would ask Anshumanji, Money9's editor, to accompany Radhika to bring her on stage, please. A big round of applause for our dynamic guest of honor.
जैसा कि आपको प्रियंका ने बताया, अ डायनामिक पर्सन, बीएफएसआई इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम राधिका जी हमारे साथ आ चुकी हैं और हमारे मनी 9 के एडिटर अंशुमन जी भी यहाँ मौजूद हैं मंच पर. सर, स्टेज इज ऑल योर्स नाउ. Thank you, Gaurav. I think Radhika needs no introduction. Everyone knows her. Before I start a quick session with the question answer, I would request Radhika to just speak a few of your thoughts. And thoughts is about that how to leverage this entire financial inclusion architecture, which we have built in last 10 years, ranging from UPI transactions up to the strong regulatory mechanism and stock market. Now the next level is that how to leverage it to providing financial securities to the majority of the Indian population. As our survey tells, 69% households are financially insecure. So I'll request Radhika to speak a few words and then we'll begin the question answer session. Thank you so much, and congratulations to all of you for this fantastic summit. I must say I saw a lot of teasers for that. I especially loved the Data Coin app. I think it is going to provide data that is very unique. And so I don't download a lot of apps on my phone, but after I exit this summit, I plan to download the app. So congratulations, and I would really encourage everyone to do that. I think the Honorable Minister spoke a lot about India's digital public infrastructure and the number of initiatives the government has made in terms of bringing banking to the unbanked. I want to, and that is the savings and transaction part. I want to focus my comments on one aspect, which is the next aspect, which is investments. And it's perhaps something that I come closest to. And I want to, if you let me, tell a 30-second story. So I just delivered a child, and because I had a complicated pregnancy, I had a nurse who used to come and give me these injections in my first trimester. This was last year. And वो घर आती थी, etc. तो उसको पता चल गया कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मेरा कुछ ताल्लुक है. तो Do not put all your eggs in one basket. I know it sounds like a cliche, लेकिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से इन्वेस्टिंग की टॉप टिप्स मांगोगे तो ये तो आपको ज़रूर सुनने मिलेगा. If you find yourself confused, then in simple words, these eggs represent your overall wealth and the baskets represent your investments. यानी आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे से कोई एक या दो इन्वेस्टमेंट करने के जगह एक अलग इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो बनाना काफ़ी बेहतर है. बट यू मे आस्क योर सेल्फ, क्या ये डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है? Why not invest in my favorite 2-3 companies instead of investing in multiple companies? Well, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है. डाइवर्सिफिकेशन करने से आपके नुकसान का रिस्क काफ़ी कंपनीज में बढ़ जाता है. तो इससे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के नुकसान का रिस्क तो कम होता ही है, लेकिन साथ ही फ़ायदे की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है. Let me explain. Let's say you've equally invested your savings in 2 companies. एंड अब अगर उसमें से एक कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसकी वजह से उसकी स्टॉक प्राइस 0 हो जाती है, तो अब इन दिस केस योर पोर्टफोलियो वैल्यू वुड इमीडिएटली गो डाउन बाय 50%. लेकिन मान लो कि आपने इसकी जगह पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया बाय इन्वेस्टिंग इन 20 to 25 कंपनीज, एंड नाउ इवन इफ 2-3 ऑफ दीज कंपनीज फेल, आई एम श्योर योर टोटल लॉस वुड बी अ लॉट लोअर देन 50%. दूसरी तरफ अगर आपने सिर्फ 2-3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो और वो परफॉर्म ना करे तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी. लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू से इन्वेस्ट इन 20-25 कंपनीज तो उनमें से कुछ कंपनीज तो ज़रूर परफॉर्म करेगी. इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन से आपकी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम हो सकती है. इन एसेंस डाइवर्सिफिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पोर्टफोलियो को हैवी लॉसेस से तो बचा ही सकती है, लेकिन साथ ही इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे होने के चांसेस भी बढ़ा सकती है. सो आर ऑल म्यूचुअल फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड? ऑफ कोर्स, यही तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस है. In an equity fund, diversification comes in the form of the fund holding various stocks.
एक डेट फंड कई सारे डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है एंड एक हाइब्रिड फंड कई सारे इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। तो चाहे आपको एक एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना हो या अक्रॉस एसेट क्लासेस, देयर इज ऑलवेज अ सूटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम देयर फॉर यू। चलिए लेट्स गो बैक इन टाइम टू अंडरस्टैंड एसेट एलोकेशन इवन बेटर। Let's say you are an army commander and you have to fight a battle against an enemy. Level where we are facing challenges of India's receding financial savings as a percentage of the GDP. As India has been told that we are a nation of savers, we are thrift-friendly nation, but the data comes after COVID shows that people are not saving enough. They are having challenges in the saving. So the question is that how quickly mutual fund industry can become a kind of option for the people who don't want to go into the bank savings and get there because of the market volatilities. Many times people don't feel safe in putting money into the mutual funds, and they again prefer go back to the physical investments like gold and property. So I think you are asking a great question. I don't think, and I'll address mutual funds separately, I don't think savings rate is the problem. India still, savings rate has dropped, but I think savings rate is still one of the better ones in the country. The translation to savings to investment is still a problem. If you look at mutual fund penetration to GDP today in India, it is 16%. Brazil is 65%, China is 20%, UK, which we just crossed as an economy, is above 80%. The world average is 40%, and the world doesn't include some great countries. So I think the translation from savings to investment has not happened. Now, as far as mutual funds, I think we are a very underrated industry, and I know I come with a bias, but today an Indian consumer has access to a low-cost, transparent, and regulated product, and yet only 4 crore Indians are doing this. I think the problems are 3 very quickly. One is people think of mutual funds as only equity, and then they compare it to safe assets, when the reality is mutual funds can provide you an ability to invest in the safest products like a Bharat bond and in some of the riskiest products. So that myth needs to be changed. The second, as you said, is people think of mutual funds in terms of return. आपको जो सवाल आते होंगे, they must be best performing mutual fund, बताओ. कोई म्यूचुअल फंड को गोल के जरिए नहीं देखता. I think one of the reasons insurance has been so successful is we've always thought of products in terms of fulfilling goals. म्यूचुअल फंड मेरा रिटायरमेंट का गोल फुलफिल कर सकता है, कोई मेरी बेटी की शादी का गोल कर. आदमी ना सुबह उठ के रिटर्न्स नहीं खाता, गोल्स के लिए जीता है. I think that is the problem. And the third larger problem is the country still needs to invest in a much larger distribution ecosystem to take these products to the masses. I mean, I would center the problem on these 3 issues. I'll ask this question in Hindi because Radhika ji, a lot of people are watching it. I think in entire 7 languages, TV9 network and Money9 channels are watching it. The biggest क्वेश्चन द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ द भारत के लोग सोचते हैं कि उनकी बचतें महंगाई को कैसे हराएं. उनकी रोज की लड़ाई सुबह शाम इस बात से है कि उनकी जिंदगी जीने की लागत जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उनकी बचतों पर रिटर्न उस रफ्तार से नहीं बढ़ता. पहली बार लंबे समय के बाद हमने देखा, बट देयर इज अ साइड इफेक्ट्स ऑफ इट, दैट इंडियाज फिक्स्ड डिपॉजिट रेट हैज गॉन अप अबव द इन्फ्लेशन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन दे कम बैक और वो जब वापस देखते हैं बाकी जगह, तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में उनको इन्वेस्टमेंट की वो वॉलेटिलिटी दिखाई देती है. फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड और जनरली एज एन एक्सपर्ट, भारत में क्या ऐसे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए कम से कम 2 या 4 जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड हों, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जिससे कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो फाइनेंशियली लिटरेसी के सेकंड लेवल पर आए और म्यूचुअल फंड में सरप्लस इन्वेस्ट करके रिस्क ले सके, उसे इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल सके? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 6-7% देश में इन्फ्लेशन है या महंगाई है, तो अगर आप एफडी में पैसा लगाएंगे तो पोस्ट टैक्स तो एक्चुअली आप नेगेटिव रिटर्न्स कमा रहे हैं, और ये रिटायरीज की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आप बात करें. नाउ ये कहना कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक्चुअली मल्टीपल जरिए बनाए हैं जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, और वॉलेटिलिटी उतनी नहीं है. क्योंकि आपकी दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
हिंदुस्तानी आदमी फाइनली फिक्स डिपॉजिट करने वाला आदमी या औरत है तो उसको वॉलेटिलिटी से डर लगता है। पोर्टफोलियो 30% गिरता है तो आपको भी क्वेरी ज़्यादा आती हैं, हमें भी आती हैं। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारी इंडस्ट्री में अगर आप इक्विटी करें, लेकिन आप इक्विटी एसआईपी के ज़रिए करें तो क्या होता है, आपकी वॉलेटिलिटी कम हो ही जाती है। पूरे से हमने स्टडी किया है कि अगर आप 10 साल की एसआईपी करें और बाजार ने एवरेज 5% से भी कम रिटर्न दिए, तभी भी आपके एसआईपी रिटर्न 9-10% होते ही हैं, क्योंकि एसआईपी वो एवरेज कर देता है, तभी भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री ने बहुत हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सबसे बड़ी और पॉपुलर कैटेगरी 2022 की एक बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी थी, जिसमें इक्विटी और डेट का मिश्रण था। इसमें वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन लंबे समय में आपका 11% रिटर्न बन जाता है। 11 मेरे खुद 70% इन्वेस्टमेंट ऐसी कैटेगरी में है। तीसरा, डेट म्यूचुअल फंड्स का जरिया बताया है, जिनमें एफडी से कई ज़्यादा अच्छी टैक्सेशन है। तो प्रोडक्ट्स बहुत है, लेकिन उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि वो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, बिकॉज मैडम राधिका हैज़ टू गो फॉर अनदर मीटिंग। एक और डिलेमा लोगों के दिमाग में इस बजट से शुरू हुआ कि वेदर पॉलिसीज टैक्स, स्पेशली द मिडिल क्लास, वेदर टैक्स पॉलिसीज आर इन्वेस्टमेंट सेविंग फ्रेंडली और नॉट। हमने देखा इंडिया में एक पूरी जर्नी थी जब इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए टैक्सेशन इंसेंटिव्स दिए जाते थे, और देयर लॉट ऑफ रिसर्च अवेलेबल दैट हाउ दे हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडिया सेविंग बिहेवियर एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ गेटिंग टैक्स इंसेंटिव्स. नाउ द टैक्सेशन अप्रोच इज चेंजिंग. Government is going towards the lower tax rates but without incentivizing savings. How do you see this entire scenario evolving down the line for 4-5 years? Because here and how mutual fund industry is actually preparing for it, because अभी म्यूचुअल फंड तो टैक्स इंसेंटिव के दायरे में आता ही नहीं, बहुत छोटा सा हिस्सा उसमें आता है. इसका असर कैसे पड़ेगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? So I think with this budget and over last 3-4 years, tax policy has evolved के अभी आप टैक्सेशन के लिए निवेश नहीं करेंगे, टैक्सेशन बेनिफिट के लिए आप कोई प्रोडक्ट में निवेश नहीं करेंगे, जो आमतौर से हिस्टोरिकली हमारी चॉइस होती थी, क्योंकि टैक्स हर इंसान बचाना चाहता है. अब आप निवेश उस चीज़ में करेंगे जो अच्छा प्रोडक्ट है और जो आपके लिए अच्छा है. हाल ही में हुए हुए बजट में यू वुड हैव सीन वेदर इट इज़ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, मेनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन द गाइज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनके जो टैक्सेशन आर्बिट्राजेस थे ये बंद हो गए हैं. सो नाउ इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन मेरिट, जो कि मेरे हिसाब से बुरी चीज़ नहीं है. आई थिंक एज एन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई हैव नो आस्क एज एन इंडस्ट्री फॉर टैक्सेशन, बिकॉज नाउ देर इज़ पैरिटी. आप इक्विटी में निवेश करते हैं, यू हैव 10% टैक्सेशन विच इज़ अ वेरी गुड रेट ऑफ टैक्सेशन. आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, यू आर फार बेटर ऑफ देन एन एफडी. तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ है. एक मेरी अगर विश होगी कि जैसे यूएस में 401 के प्रोग्राम हो गया है जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए, अगर हमारी इंडस्ट्री को वो मिल जाए तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी. Thank you, Radhika ma'am, for sparing the time from your busy schedule and gracing this occasion. Over to Gaurav. शुक्रिया सर. शुक्रिया राधिका जी. फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मुद्दे पर आपकी राय हम सभी के लिए बहुत बहुमूल्य है. और अब मैं TV9 के एडिटर बिजनेस एंड इकोनॉमी, TV9 नेटवर्क के एडिटर एंड बिजनेस एंड इकोनॉमी मिस्टर राकेश खार से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ और राधिका जी को सम्मानित करें. एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो मैम का. और इस बीच आपको यह भी बता दूं कि Money9 का ये फाइनेंशियल फ्रीडम समिट Money9 के मोबाइल ऐप्स पर, TV9 नेटवर्क और Money9 के नेटवर्क के YouTube, Facebook चैनलों पर भी पूरे देश में पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं. और आप भी Money9 ऐप प्लीज़ डाउनलोड करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि Money9 के ज़रिए हमारा जो आज का मोटो है वो यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले. जैसा कि अभी राधिका जी ने बताया कि कैसे हर घर SIP बहुत जल्द हमारी जनरेशन में हम देखेंगे. सवाल वही है कि इसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, और उसी मंथन पर जुटा हुआ है यहाँ पर TV9 नेटवर्क, और हम लगातार उसी पर बात करते हुए, क्योंकि मुंबई आने का मकसद यही है. देश की आर्थिक राजधानी है. देश की आर्थिक राजधानी से जुड़े हुए तमाम बड़े लोग, बड़ी हस्तियां, बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे इंटरैक्शन करके, उनसे मंथन करके, उनसे चर्चा करके हम वही वो अमृत कलश निकालना चाहते हैं जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है देश की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. हर घर तक, हर शख्स तक जो सोच है कैसे उनको वित्तीय समावेश में शामिल किया जाए, वित्तीय समावेश किया जाए उनका, वो इस वक्त की जो सोच है.
created a special memento for ma'am, clicking her photo and putting it for a graphic, and that process is taking a bit long. I think madam has to leave. I'll send this memento to your office and deliver it. There's a special memento that is they're getting, and there's a bit time on the printing. Thank you, ma'am. Thanks a lot for coming. A huge round of applause for ma'am. Please जोरदार तालियों के साथ मैम का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सब. चलिए अब इस कार्यक्रम के पहले एक्सपर्ट पैनल सेशन की शुरुआत करते हैं. सरकार ने 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा कवर के दायरे. बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के सीईओ वेंकटेश नायडू, सर्टिफाइड फाइनेंस प्लानर हर्ष रुंगटा और मणिपाल सिग्ना की सीईओ प्रिया देशमुख. मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत जोरदार स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप हमारे तमाम जो यहां पर गेस्ट बैठे हुए हैं, हमारे तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करें. और प्रियंका, क्योंकि अब आपके हवाले है ये स्टेज, प्लीज आप संभाले कमान यहां से. प्रियंका, मैं चाहूंगा तब तक आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि आपका ये जो आज का ये जो सेशन है, एक्सपर्ट पैनल सेशन, ये क्यों खास है? क्या मेरी आवाज आ रही है? Okay, great. So my आवाज is reaching to all of you. Thank you so much. My guests are here. Thank you, Gaurav. बीमा पर बात करना जरूरी है क्योंकि हम सब सोचते हैं कि ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, पर फिर भी हम नहीं खरीदते. और शायद मैं और आप दिल्ली और मुंबई में रहकर यहाँ पर जितने लोग हैं वो बीमा समझते हैं, खरीदते हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर है वहाँ तक बीमा समझना इम्पोर्टेंट है, पर क्यों नहीं खरीद रहे? इसी पर मंथन करते समझते प्लीज हैं. ऑल योर्स. One more mic, please. Can I get one more mic, please? Coming. Thank you so much, all of you, for taking out time. Monday. This is not Monday, this is a Wednesday afternoon and Mumbai traffic, and you guys have come. Thank you so much. Thank you so much for being here. Insurance is something which is very close to my heart, and I'm sure it is very close to all of you because I have some way or the other interacted with all of you, and I think it has been a very important part. We've conducted a personal finance survey, and I want to show what came out of that when we spoke to people and asked them about insurance. Let's have a look at that. Here's Sanjay. He's a software engineer from Mumbai. Sanjay is savvy. He invests in insurance to create a secure future for himself and his parents. That's why he has 6 to 7 insurance policies. But Sanjay belongs to a minority. And why is that? Look at the government data. It says insurance penetration in India is only 4%. And our own Money9 personal finance survey shows that just 19% of families buy insurance for savings. The number is higher in rich states like Karnataka and Maharashtra, but not in poorer economies like Bihar and Jharkhand. But the overall trend is worrying. It shows that India believes in saving more than ensuring a secure future. It's only if more people follow Sanjay's example and invest in insurance that the future is likely to be secure. If you want to learn how, then the panel on insurance at the Financial Freedom Summit, hosted by TV9 Network and Money9, is what you should tune into. बीमा पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये ना निवेश है, ना बचत है, ना खर्चा है, ना टैक्स सेविंग का जरिया है, लेकिन हम सब बीमा को यही समझते हैं, ये निवेश है. हमारे सर्वे में भी यही पता चला कि लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस मतलब फिनेंशियल सेविंग, और ये सेविंग नहीं है बल्कि आपके जीवन के सुरक्षा कवच है जिसकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका बुरा वक्त होगा, चाहे वो जीवन का बुरा वक्त हो या स्वास्थ्य का बुरा वक्त हो. कोविड ने बहुत हद तक समझाया हमें कि बीमा कितना ज़रूरी है. फिर भी जब हम
IRDA के वो आंकड़े देखते हैं जिससे इंडस्ट्री तो वाकिफ है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4.2% का है, जबकि पिछले 10 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमने 10% का ग्रोथ एवरेज मैं लेकर चल रही हूँ देखा है। अराउंड 57 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी क्या ये लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऐसे में 2047 का इंश्योरेंस फॉर ऑल का गोल का लक्ष्य हम कैसे अचीव करेंगे इंश्योरेंस फॉर ऑल। So let's start the discussion with my esteemed panelists because I think they would throw in more light than me. Priya, thank you so much for being here. Since you belong to Manipal Signa Health, I want to understand from you, as far as health insurance is concerned, the biggest issue is the out-of-pocket expenditure which an Indian has to go through. You know, what is stopping the Indians from buying health insurance? Why is the health insurance penetration so low? Because when I spoke about 4.2 penetration of insurance, it had both life and general. And when we see standalone health insurance penetration, it's around 1%, little bit above 1%. Right. So what is it that Indians, why are Indians not buying? What is it that is stopping Indians from buying health insurance? Sure, great. Thank you, TV9, and thank you to you. We've been part of multiple conversations over the last couple of years, and indeed such a powerful vision to have health insurance for every citizen of India by 2047. Underpinned with the fact that insurance penetration has been low, especially for non-life, as you rightly said. And a couple of factors. ये कोविड में हमने देखा, कोविड में कैसे एक्सपेंसेस हुए, हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस बढ़े, बहुत सारे लोग जो upper middle class, other people who had good financial kind of standing, they suffered during the time of COVID with the kind of claim size, the amount of expenses that were made. So हम हमेशा सोचते हैं, हमने बात भी करी, पहले भी आपने बात करी है, 60 to 75% of the total expenses are out of pocket. तो इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा? क्या challenges हैं? इसमें सबसे बहुत बड़ा एक challenge mindset. बेसिकली आज मैं हेल्दी हूँ, मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मैं घर खरीद लेता हूँ, मैं गाड़ी लेता हूँ, मैं बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ. सो पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस कि यू आर फिट टुडे एंड गॉड फॉरबिड everybody should remain fit, but when that health and health issue will strike, that awareness and that knowledge and that ability to really have that visibility कि क्या हो सकता है, so awareness drive करने की ज़रूरत है. Second factor is trust. Third factor is basically most importantly कि मैंने पैसे तो दिए इंश्योरेंस के, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला साल भर में. That kind of a thought process is also really holding it back. So I would say trust deficit from the standpoint that कि मैंने पैसे लगाए और वापस कुछ नहीं आया. वो थॉट प्रोसेस थोड़ा मतलब अवेयरनेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है. अभी इंश्योरेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट फॉलिंग सिक, गोइंग बैक इनटू हॉस्पिटल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिट केयर, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेलनेस. आपकी सारी डॉक्टर के बिल्स जो हैं, आपके सारे फिटनेस केयर का जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारा सब कुछ इंश्योरेंस आजकल कवर करता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्स नहीं, OPD, आपके डॉक्टर कंसल्टेशन, डेंटल दिस थिंग, टेलीमेडिसिन फॉर दैट मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव it comes under the insurance cover. It's all about awareness. प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है. पिछले 10 साल में बहुत नए प्रोडक्ट्स हैं, especially last 5 years with the changes in regulation, regulator being so pro customer, बहुत सारे positive changes हैं, awareness की ज़रूरत है. Mr. Naidu, I would come to you with my next question. As Priya pointed out, there are a lot of product. In fact, the entire last year we saw regulator taking lots of such steps wherein a use and file was introduced, so all of you got a lot of flexibility in bringing out new and innovative product. If there are product, and there is a need for insurance, why are people still not buying insurance? Do you think they're buying? What is your take? Okay, I think, thank you for this question, Priyanka. I think it's a very interesting gathering that we have put together, and congratulations on your DataCoin app. Okay, very quickly, the life insurance penetration is under 4% today, 4.2%. And if we were to really look at this figure a little deeper, the penetration in non-metro market is even starkly down. Absolutely. It is That's under what I 1%. pointed out, yeah. Okay. So what are the big challenges? What are the big challenges? One, I think today insurance and simplicity don't go with each other. Okay. So insurance product baat karte hi, for a, people find it highly complicated. They think that ye hame samajh mein nahi aa raha hai, right?
So product simplicity is one aspect that I would like to touch upon. Number two is distribution. Okay, how are we reaching out to these customers to go ahead and provide them the right solution? Today, with the entire advent of digital, there's a major digital explosion that is happening. But are people willing to engage digitally to buy insurance? Or are they looking at a phygital model with a physical and digital enterprise, right? So product simplicity, product reach, in terms of going deeper into markets, and product variety. If you just look at insurance companies today, everybody is now in the same garb of providing similar products, okay? A product which is very, very suitable to a Sanjay kind of individual, right, in metro. Is it, the same product which is great for a Suresh kind of individual in deep, district, okay? So I think all these aspects, I think have to be addressed one by one. I think there's a significant progress that's happened in the market in the last 10 years, like Priya is saying. The regulator is, pushing the insurers, easing the regulations through use and file to create better, simpler, easily understandable, affordable products. I think there's a great movement that's happening, but there's still a long way to go, as far as the penetration is concerned. Now with the new advent, Har Ghar insurance by 2047, the kind of thrust that the now regulator is putting in, truly the developmental role in terms of actually giving out targets to insurance companies, okay, and giving boost to distribution intermediaries in terms of giving licenses, 9 people, But 9 still different on insurance papers. companies, They've a lot still of not things. passed the bill yet. I mean, Yeah, it's still in but the process. I think great, draft regulations have come in, and we have known the regulator But the by draft now. proposals will remain to be draft unless it turns out into Priyanka, look at the number of drafts that have come in the last, it's a contentious topic. Yeah. Look at the number of drafts that have come in. Shubhro is here, Priya is here, everybody is here. Look at the number of drafts that's come in the last 5 years, and tell me the number of drafts that have not been passed. Okay, Yeah. so it's a contentious this debate topic. is totally different. I would bring in Shubhrajit here as well. Shubhrajit, you tell me, I mean, as Venkatesh and Priya pointing out, there are lots of things that needs to be done. But what is it that you see, one thing you think this should be sorted out first and foremost, and so that you could achieve the goal of insurance for all? I think 2047 insurance for all is a very aspirational goal, and we all strive for that. No doubt about that. But it's easier said than done, and you all need to work very coherently towards that. I think let's go back to the first principle, why people don't buy insurance. I think they have touched upon that. I will go a little deeper onto that. That it's a product which doesn't give you instant gratification. We as a consumer tend to get something which gives us a gratification. You invest in FD, you invest in MF, you will get something in return. The return may vary from 5, 6, 4, 5, 6 to 10, 11, 12, something in return. The payoff in insurance is extremely asymmetric. I will give an example. By the way, India is one of the most competitive global market in terms of term insurance product. I think the price in India is one of the competitive in the global level. If you pay, and it depends on the age and tenure of the policy, if you pay 20 to 30K, you get a 1 crore of insurance coverage. See the asymmetry in the payoff, 25, 30K and 1 crore. But still, if we think that, by the way, if nothing happens to the person, nothing will be returned, and that return, because it's either at less 25, 30,000 gone, or you get a 1 crore, extremely asymmetry. This requires a deep financial understanding, culture, education, and financial literacy. So any foundation of a financial planning, that's everybody knows here that insurance is the foundation of a financial planning you do. But just saying that wouldn't suffice. I think, and I'm very glad that you are organizing session. This kind of a session, awareness at a school level, to my mind, all the bodies coming together, all the ecosystem coming together, government, regulatory, industry, all need to work together to achieve the goal. And I personally have a strong belief, I am very passionate also, that it is possible if all we come together and start with educating ourselves. Now, so to my mind, that there will be obstacles in the journey, but if we work together and figure out, I think there's a lot of product propositions. Currently, there is a plethora of products. I think the key is to make ourselves more aware. I will give an example how in the COVID period, it has turned the way. It has opened the eye, actually.
Industry, I just wanted to quote a number. Industry has settled 78,000 crores of, life insurance industry settled 78,000 crores of claims. And think about the person who, by the way, deciding between to take a 25, spend 25K for a 1 crore, finally decided to take a 25 crore, and something has happened to the family. His family is financially, sir. Absolutely. So that's that's one the thing, the core. lack of understanding of the product and the return aspect जो शुभजीत ने कहा कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा अगर हम खरीद रहे हैं एक इंश्योरेंस, ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो लोग पूछते हैं और मुझे लगता है अगर उनको ये समझा दिया जाए कि ये रिटर्न आपके लिए नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के लिए है, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको उधार लेकर के आप उधार के जाल में ना फंस जाए उसके लिए है। ये समझ जो है वो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। हम Money9 और TV9 के अलग अलग प्लेटफॉर्म में अभी लाइव हैं। हमारे लाइव ऑडियंस में अगर कुछ सवाल पूछेंगे तो हम उन्हें भी शामिल करेंगे, पर अब मैं जाना चाहूँगी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आर्या के हेड हर्ष रुंगटा जी के पास, और इनके साथ तो बीमा पर मेरी इतनी सारी बातें हुई हैं। अब रुंगटा सर, बीमा पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप बताइए क्या है सबसे बड़ा चैलेंज? मुझे लगता है भारत में, जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि रिटर्न नहीं मिलता है, वैसे ही एक समस्या है कि हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं ना तो हम थोड़ा सा बार्गेन करना चाहते हैं, हमें लगता है हमें जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है वो ठीक नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रुंगटा सर। आपको लगता नहीं है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए बीमा को और सस्ता होने की ज़रूरत है? पहली बात तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और आई थिंक ये मंच देने के लिए। और मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस बहुत ही अहम हिस्सा होता है कोई भी किसी भी आदमी के लिए उसकी फिनेंशियल प्लानिंग में, और उस तहत से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉस्ट की अभी आपने बात करी तो आई एम एक्चुअली अमेज्ड ओके कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कॉस्ट में इतना काम किया है। ओके जैसे अभी कहा कि 30,000 रुपये में आपको 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हैं। हमारे NRI क्लाइंट्स हैं जो सो कॉल्ड विकसित देशों में रहते हैं, वो आके यहाँ आके उनको पॉलिसी जब लेनी होती है उनको इंडिया में रहना होता है, तो एक इंडिया में जब आते हैं तो वो टर्म पॉलिसी भी लेते हैं और हेल्थ पॉलिसी भी लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, तभी वो पॉलिसीज बिक रही हैं। लेकिन सर मेरा सवाल है कि NRI आकर के अगर खरीद रहे हैं तो उनकी जेब, उनकी कमाई एक इंदौर में रहने वाले सुरेश या एक बैंगलोर में रहने वाले रमन के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। वो रमन और सुरेश तक हम बीमा पहुंचा पा रहे हैं क्या? वही मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये जो एक इम्पोर्टेंस है कि बीमा, जैसे इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये कैसे मेजर करेंगे? तो इसका मेजरमेंट मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री यूज कर रही है, और मैं कई सालों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे आज तक इसका जवाब मिला नहीं कि वाई आर वी मेजरिंग प्रीमियम टू GDP एज पेनिट्रेशन। ओके प्रीमियम आपने इतना कम कर दिया, ओके टर्म पॉलिसीज बेचने लग गए, प्रीमियम कम हो गया, लोग ज़्यादा दिन जीने लग गए, लॉन्गलेविटी टेबल्स बढ़ गए, प्रीमियम कम हो गया, ज़्यादा लोग पॉलिसीज लेने लग गए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने लग गए, तो जैसे जैसे बेस बढ़ता है प्रीमियम कम हो गया। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रीमियम कम हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं करता है पेनिट्रेशन नंबर्स में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो बता रहा है कि पेनिट्रेशन कम हो गया, जबकि आपको जो करना था, मेन काम इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या है, आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। सुरक्षा प्रदान करना ये मेन काम है कि सेविंग्स जुटाना, और ये दोनों के बीच की जो कश्मकश है इसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। जैसे सभी ने कहा, प्रोटेक्शन के लिए पिछले 5, 7, 10 सालों में पहले जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ करता था कि इंश्योरेंस यानी प्रीमियम दो, क्लेम नहीं मिलेगा। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में खास करके ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, टर्म में तो क्लेम्स ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन वो पिछले 5, 7 सालों में उसमें बहुत काम हुआ।
और वो चीजें काफी हद तक सॉल्व हुई हैं, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री सही स्टैटिस्टिक पे फोकस नहीं कर रही, वाई कांट वी, आई मीन सिंपल सा एग्जांपल है, आप समझिए अगर भारत में 2 ही लोग हैं, टोटली 2 ही लोग हैं, ओके, दोनों की इनकम 5 लाख है, उसमें से एक ने ले ली पॉलिसी, 50 लाख की पॉलिसी ले ली, उसके 50 लाख की पॉलिसी के 15,000 रुपए लगे, तो 15,000 डिवाइडेड बाय लेट्स अज्यूम 1 करोड़ है, तो वो 0.15% उसका पेनिट्रेशन हो गया हमारे करंट मानके से, ओके, और उसको उसका डेंसिटी लो तो वो वैसे हो गया, अगले साल पॉलिसी की कीमत आधी हो गई, जो कि हुई है, ओके, और दोनों ने ले ली, तो जो काम करना था वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कर दिया। समझ गई। आप कह रहे हो कि पेनिट्रेशन को हम जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे को बदलने की जरूरत है, राइट? और इंडस्ट्री को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका मेन काम प्रोटेक्शन देना है कि सेविंग्स करना है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही। फाइन, ये वेरी क्लियर। इंडस्ट्री के जो बैठे हैं मेरे साथ स्पोक्स पर्सन, और स्पोक्स पर्सन ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड कर रहे हैं ये लोग, इनसे ही पूछते हैं। प्रिया, आपको क्या लगता है कि क्या हम जिस आईने से देख रहे हैं कि ये है पेनिट्रेशन, वो गलत है? क्योंकि यही बात यहाँ पे रुंगटा सर उठा है। हेल्थ इंश्योरेंस में वो प्रॉब्लम नहीं है, या आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या किए जाने की जरूरत है? नहीं तो बहुत बढ़िया, उम्दा कॉन्वर्सेशन। बेसिकली कोई भी क्लास ऑफ इंश्योरेंस अब हम देखें तो अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो तो एकदम सही बोल रहे हैं सर, बट द फैक्ट इज मैं नॉन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगी। आई रिप्रेजेंट द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओवर द इयर्स हमारा काम क्या है? हमारा काम है रिस्क कोहॉर्ट्स बनाना, एक स्टैंडर्ड, कोई कंडीशंस हैं, कोई कंडीशंस नहीं हैं, उस हिसाब से रिस्क कोहॉर्ट्स बनाना, उसको प्राइस करना, उस हिसाब से प्राइसिंग प्रीमियम्स रखना और टेबल्स रखना, और एक्सपीरियंस जब आएगा उसी हिसाब से प्राइसिंग का असेसमेंट करना। तो जितने ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे उतना रिस्क कम होगा, इंसिडेंट्स कम होगा, एंड वी वांट टू गिव द बेनिफिट बैक टू द कंज्यूमर्स, टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। हम जो मेजर करते हैं, हम दोनों पैरामीटर्स में इंडस्ट्री मेजर करती है, नंबर ऑफ लाइव्स एज वेल एज द टोटल ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम। तो दोनों एंगल्स हम मेजर करते हैं और दोनों को ट्रैक करते हैं, और हमारा लक्ष्य जो है कि हर लाइफ को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है। इट इज़ अ लिविंग बेनिफिट, इट्स नॉट अ डेथ बेनिफिट। जब आदमी जिंदा है उसको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि ओनली हॉस्पिटल में जाने के लिए, बाकी सारे खर्चों के लिए, एंड देन फिनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, द अर्निंग मेंबर एंड द फैमिली इज अश्योर्ड। लेकिन लोग नहीं खरीद रहे ना उस रफ्तार से जिस रफ्तार से खरीदना चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस तो पेनिट्रेशन बढ़ा है, 2%, 2.2% से 4.1% हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। ऑफ कोर्स लाइफ का अब मैच्योरिटी आ गया है। सो एज अवेयरनेस इज ग्रोइंग इन, एंड माय फेलो पैनलिस्ट मेंशन लॉट ऑफ प्रो कंज्यूमर मेजर्स फ्रॉम IRDA and real development activity. So I am very very hopeful that we'll see great speed and momentum as we come forward. ठीक है, अब वेंकटेश आपसे मैं शॉर्ट में चाहूंगी कि हमें इस सेशन को क्लोज करना है। आप क्या एक वन बिग चेंज जो आप सोचते हैं कि कंपनी के एंड पर होना चाहिए टू 2047 के गोल तक पहुंचने के लिए? So a bright business idea is what you're seeking. Yes. Okay, a bright business idea is, if you look at it, something like a data coin. I think the biggest problem that the insurance industry is facing, availability of the right data. With the UID invention and the UPI penetration, with Aadhaar integration, if the entire insurance industry, and I'm speaking for both my colleagues here from the health insurance and life insurance, okay, if there is a single data source in terms of saying actual health of people, I think the way we can rethink insurance is going to change in a very, very big way. Imagine, the industry had a full view of what tablet the person is taking for what disease and what kind of lifestyle he's doing. Integrated data. Our entire insurance aspect can change. Penetration can change, reach can change. I think data that's one is money, yeah? Data is the new data money. Is money. And I think Money9's data coin will be quite a helpful tool for you people. Absolutely, absolutely. Okay, Shubhajit, last word from you. What do you think that one thing that you want to do and you think you should do, the industry should do to reach the target of insurance for all? Okay, before that I'd like to say last 5 years, actually the industry has
every panelist saying, has done a lot in terms of customer proposition, whether it is a product, pricing the cost, claim settlement ratio. Life insurance company, the claim settlement ratio is on average 98% plus. We are aiming to have a 99% plus claim settlement ratio this year. Persistency, the renewal of the book has going up, so on and so forth. But is it good enough for the 2047? No, it requires more. I think one of the big way that we have a great products. We require a distribution to go to the last mile. For example, if I have to offer to the last mile, suppose someone cannot afford 25,000 for a 1 crore, the person can afford 5,000, can I get a 20 lakhs insurance would be good enough for the person. I need to reach out to the person. I think the digital would help a lot in terms of piggy-riding the digital ecosystem currently with all the payments and all the ecosystem will be significantly game changer. Data, I think, is a part of the digital ecosystem. And whether, so 3-4 things. We have a product, we have a customer onboarding and the process, the risk management, because the asymmetry of the payoff, there is a lot of fraudsters and we need to, and finally, the reach. Digital ecosystem, and that's how we are very bullish about, will help to override, come up with all these 4 systems to have a much greater reach. But having said that, the way we need to all involved in terms of awareness, because awareness, only these without a large scale awareness will not serve. So you ask for a 1, I will give 2. One is the digital ecosystem and the awareness at the ground level. Thank you so much for this discussion. Let's hope that we achieve the target which is being set, 2047, insurance for all, and the company, the regulator, all of them are tirelessly working towards that goal. वक्त बताएगा हम उस टारगेट तक पहुंचेंगे या नहीं. गौरव, back to you. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा TV9 कन्नड़ा के एडिटर आर श्रीधरन को. प्लीज़ वो मंच पर आए और हमारे जो मेहमान हैं इनको सम्मानित करें मेमेंटो देके. प्लीज़. May I have the mementos, please? थैंक यू ऑल. प्लीज अब अपना अपना स्थान ग्रहण करें. आप एक जोरदार तालियों के साथ इस पैनल का एक बार फिर से स्वागत हो जाए. शुक्रिया आप सभी को. थैंक यू श्रीधरन. तो चलिए अब हम अपने अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले हम आगे बढ़े आपको बता दें कि ये जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम समिट देख रहे हैं Money9 का, ये Money9 के मोबाइल ऐप पर तो लाइव है ही, साथ ही Money9 और TV9 नेटवर्क के YouTube, फेसबुक चैनल्स के जरिए पूरे देश में पहुंच रहा है. और जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, 7 लैंग्वेजेस में इसको आप देख सकते हैं. अलग अलग भाषाओं में अलग अलग दर्शकों की जरूरतों के हिसाब से हमने उसे डिजाइन किया हुआ है. अब अगला सत्र, और प्रियंका में यहाँ ज्वाइन कर चुकी हैं. प्रियंका, इस बार के बजट में सरकार की तरफ से नए टैक्स स्लैब को लेकर जोर शोर से घोषणा की गई. 7 लाख तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री रहेगी ये कहा गया, और कमाई 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर हुई तो कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी. और पुराना टैक्स है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया. सवाल यह है कि क्या प्रोत्साहन के बिना बचत रह सकेगी? बिल्कुल गौरव, मुझे लगता है हम सभी जब अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं ना, हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ETC की छूट मिलती है. आप भी वो करते होंगे कि ETC की छूट मिलती है. पर अब सरकार ने इस बजट में कह दिया वो ETC की छूट पाने वाली उस कैटेगरी में जिसमें मैं और गौरव और आप लोग के कई लोग आते होंगे, उसको हम थोड़ा सा वो जो है इग्नोर करती हुई नजर आ रही है और नई टैक्स रिजीम को जो है ज़्यादा पसंद करवाने की कोशिश में जुटी हुई है. लेकिन चुनौतियां भी बहुत है. क्या लोग इन हालात में आर्थिक तौर पर खुद को और परिवार को
कैसे सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो एक टैक्स का लॉलीपॉप रहता था जिसके लिए वो करते थे। तो मनी 9 फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का अब आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल। हमारा इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं टीवी 9 कन्नड़ के संपादक आर श्रीधरन जी, और उनके साथ मंच पर जुड़ने वाले खास मेहमान गौरव आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आपको हमारा जो अगला पैनल है उससे इंट्रोड्यूस करवाऊं। श्रीधरन, आप प्लीज उनको लेकर आइए। बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट तथा वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सान्याल हमारे बीच आ चुके हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट स्वागत भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा इस वक्त हमारे साथ है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। और अतुल जोशी जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और इंडिया रेटिंग्स और फिच के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप भी प्लीज आइए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करिए। बहुत स्वागत है। श्रीधरन, इट्स ऑल योर्स नाउ। थैंक यू। Thank you, Priyanka and Gaurav. I think the panel that we have chosen for, the topic that we've chosen for this afternoon is really at the heart of what Money9 is about as a product, which is to ensure that we are able to empower every Indian with financial freedom. But that is easier said than done. If we take even the richest country in the world, which is the US, the situation isn't very good. In fact, some of the data that comes out of US might quite shock you. For example, 2/3 of Americans live paycheck to paycheck. So if they didn't get their next month's salary, 2/3 of Americans won't be able to meet any of their EMIs or even run their households. Similarly, a similar number of Americans wouldn't be able to raise $500 or $1,000 in unanticipated expenses without borrowing from, let's say, friends, family, or on credit card. So if that is the situation in a country like the US, in India where 46% of our households make less than 15,000 rupees a month, how feasible is this goal or this dream of making every Indian financially independent? So for today's panel, I'm going to break up my discussion into 3 large buckets. One, we're going to look at what can we do in terms of changing the habits of our investors and how do we raise the awareness. Second, I'll want the expert panelists also to talk about, now that we are living in a high inflation, high risk and a very uncertain environment, what kind of a saving strategy or investment strategy are you going to need? Finally, I'm going to look at, is there room for policymakers to step in more aggressively perhaps and make investment more attractive for retail investors? So let me start with the first, get the discussion rolling. Rajni, let me start with you. Why is it that after so many years, most Indians still prefer to park their money in savings account, post office account, savings account there? And why is there so much of a caution when it comes to money? So let me begin by throwing some statistics to set the perspective. So if we look at the overall savings of households, more than 50% goes into physical assets, which would be real estate and gold, and less than 50% goes into financial assets, which has just about changed for last year with financial assets becoming more than 50%, but broadly that's the trend. Now, even in financial assets, like you said, around 50% goes into bank deposits and currency, cash. So it's only the remaining 50% which goes into other assets, and into something like stock market and mutual funds, only around 4% goes into that segment. So definitely there's a lot of caution which is being exercised here. And I would say the main reason for that is still lack of awareness. A lack of awareness about financial products, lack of access to do that kind of investment. So now the
banking sector's penetration has improved. So most of the people, even in smaller cities and towns, have bank deposits. But in smaller cities and towns, they still do not have good awareness of other financial products. So in insurance, we still have around 15 to 17% of financial savings going into insurance products. Even into PPF, we have around 15, 16%. But what is really required is to increase awareness about investment in stock market and in mutual funds, which has improved in the last few years, but a lot more needs to be done. Right. I think that really is the key to my mind. And, before I go to Atul, let me ask Shogata this. In my own family circle, I have a lot of friends, even some of my siblings, who really don't want to educate themselves about investment options. I mean, that's the honest thing, I guess. Is it because they're scared of numbers? Or do they find understanding financial instruments so complex that they take the safety of, let's say, a bank deposit or a real estate or gold or something like a post office savings? Shogata, to your mind, what is really going on here? So first, thank you TV9 for this opportunity of being here. Wonderful opportunity. So it's a complex environment. Look at it, I mean, take slices of the age groups. So people in my age groups who are not very financially savvy, and potentially that's the way it should be. So relatively midlife people should be investing in more secure products. Stock market, say for instance, is the game of the young. And that's the rule of thumb, that your age minus, the 100 minus your age should be your allocation to the equity markets. And equity markets, again, is, you park your money in equities and forget about it for 10 years. So that's a young man's game. Now the young man's game, women's game is also now the cryptocurrencies. Yeah, I mean, now it's coming down a little bit. So that's one. The biggest thing, so I mean, that partially explains. The second part is income distribution. Incomes in India and disposable incomes, that is after the basic, the expenditures, etc. So disposable incomes is concentrated in the top 3 or 4 10% deciles, as they are called. So so they have the maximum amount of savings, disposable incomes. In that, I think there is a fair bit of, and particularly amongst the younger groups in that bucket, I think there's a fair bit of understanding of, and particularly when in the last 2 or 3 years when equity markets go up like a rocket, so then there's a huge shift, and which is understandable. I mean, for many people, I mean, in the big cities, even in tier 2 cities, that people see that when bank rates of interest, even in fixed deposits, is much less than the current inflation, whereas your equity markets are giving you 10% return. So there is a huge shift, which you saw in the SAPEs, investments in mutual funds, investment in direct equities, and cryptocurrencies, of course. I mean, so all of that. So that shot up. And now that the equity markets are down, so is the investment in mutual. So that implies a certain amount of, and in mutual funds, remember that they had penetrated down into the tier 2 and even in some cases in tier 3 cities. So that a fair bit of money was coming in from that. So I think basically amongst the target segment where a lot of savings, financial savings, as Rajni said, I mean, still there's a huge amount, and particularly I'm sure from the semi-urban and the rural areas, investment in fixed, in physical assets. So I think there is a fair bit of literacy, not generally, I completely agree. So that needs to be done. But I think people are savvy enough to realize where the returns of their financial savings are going to come from, adjusted for some bit of risk. And now, given the carnage that we are seeing, I mean, a lot of the young people who are coming in from the tech sector, the global capability centers, so those people have now realized that they actually need to save more. So, I mean, the good times are gone. Yeah? So I think it's a complex melange of things, but the basic thing, if you want to increase financial savings, the one thing that explains financial savings increase is high growth. So whatever else needs to be done, and hundreds of things need to be done, the basic thing that needs to be done is get your growth rate up. Right. So that is something which is not in the hands of an ordinary Joe like me, for example. But I still need to secure my family. I need to educate my children. I need to get my son, daughter married, buy a house, buy a car, everything. So, Siddharth and Atul,
The other point which Shogata made is that it is not so much a lack of awareness, while that is definitely there, but what he's hinting at is basically that there's a relatively low risk appetite among us Indian savers and investors. So let me start with Atul, then we'll go to Siddharth. Is it a function of risk or is it still a disposable issue? I think it's function of both. If you look at the disposable income, consistently it's been coming off. And the way to look at it is to look at how the Indians have been borrowing. If I look at 2010 data, the personal loans outstanding from banking system to individuals was about 6 lakh crores, thereabouts. 2020, it became 25 lakh crores. And from 2020 March to December 23, that 25 lakh crores has become 40 lakh crores. Now add to this the amount that the banking system disbursed to NBFCs, which moved from 1 lakh crores in 2010 March to 16 lakh crores by December 22. Add to this the loans given by microfinance institutions, the lending platforms, the gold loan companies, etc., etc. My sense is about 35 crore people on an average should be the borrowers, the number, in terms of numbers. Now this is exactly opposite of our ancient wisdom. In Hindi we say that ki Deva Daitya hai. Deva is borrowing. Deva Daitya hai Kalyug ka. It takes life away. So, we have lost that wisdom. We are borrowing for living in the present. And, the Bappi Lahiri song, Kal kya hoga kisko pata, abhi zindagi ka le lo maja. So everybody is taking maja, which is consumption, which is reflected in housing, etc., etc. But it is something which is doing away with the savings. So one is the attitude. The second is the risk. As Saugata very rightly said, it's a factor of age and also the understanding that one has to develop. There is not enough dissemination. The entire information is, let's say, centered around either mutual funds or insurance companies. They have the money, they have the power, they have the ears of the regulators. But there are so many other things which are good products, but there is no dissemination of information. The third thing I would say is the regulators need to play their part. One of the RBI governors simply shifted the whole interest rate risk from banks to the individuals. It was Urjit Patel, I think, who said that housing loans will now be linked to repo. Now, I don't know, it just beats my logic as to who is more capable of managing the interest rate risk. You're going to see, the repo rate increases and you're going to see the kind of stress on housing loans, personal loans, vehicle loans. This takes away your savings potential. Regulators need to intervene and think about what they've done. So there are so many things about savings which one needs to really look at. It's a complex picture, but the more, let's say, attitude we develop, the more information we give, a little bit of regulatory intervention and product innovation, we are there. Great. So Siddharth, Atul's thrown an interesting point into the mix, which is that increasingly Indians are spenders and not savers. Atul, correct me if I'm wrong, that's essentially one of the threads that's emerging from what you just said. Yes. So do numbers bear out? And obviously he's talked about the NBFC borrowing numbers. But according to you, what's really going on? Are we like, the economic growth obviously has to come at the back of consumption. And Bappi Lahiri's song, your take? I'd put it this way. Over the longer term, if I take a 10-year horizon, I'm pretty positive, quite bullish on overall overall savings rate, households I'm talking about, as well as financial savings rate in particular. I'll try to explain why I think that way. Think about yourself, think about any other individual. Savings rate is a function of what? Savings rate is a function of, all the speakers have also indicated about that in some way or other. Broadly, we can think about, unless there is very significant change in risk assessment or stuff like that, it's broadly a function of your disposable income and the return you get out of that. If you want to make it slightly more spicy, you can call it risk-adjusted return. Let us not get there.
So basically disposable income and return. Now, at this moment, last few years, we have seen a situation where there has been a very significant headwind for disposable income in general, from both sides. In terms of overall income growth, there has been a bit of a dent in that, as well as because overall inflation, etc., basic inflation level had been very significantly high, your disposable income has been coming down even more. And also, to some extent, here the return factor didn't really play too much of a role. In fact, in some of the segments, we have seen returns or the rate of interest or the stock market, yield, whatever you call it, have also have actually gone higher. But here there is a classic case of what in terms of economics we call the income effect versus the substitution effect. It's not a substitution between both these things have actually come into play. The income effect didn't really allow the overall pull for savings to go up. And also, in terms of, didn't really, was not helped by the substitution effect either. So in the near term, we got one particular phenomena which you don't really expect to persist for a very, very long period of time. Over the longer period of time, you are actually seeing overall income level going higher, awareness going higher. People are inclined to hold less money for their cash transaction. There is a possibility 10 years down the line, people might be willing to go with thinner amount of cash in their wallet and pocket. So all these things structurally are good factors for boosting savings and financial savings in general. Add to this particular factor, one particular phenomena that when we are talking about a 10-year down the line, we are talking about the per capita income or overall income for an average individual moving to a zone where he or she can think a little more proactively about saving, meeting all the consumption and essential needs, right? So we'll be, as a nation, we'll be moving in that direction. Awareness level will be slightly more. So overall, I see reasons to be more hopeful about savings and financial savings in particular over a 10-year horizon. While I completely agree that the phenomena didn't really hold too well over the last, say, 3 years, right. or you cannot be that sure about the next 2 years. All right. So, Rajni, let me ask you one question on this topic before we move to the next two other sub-themes. Do you think the increasing digitization and digital banking and the ease with which people are now able to send and receive, money on their smartphones, is that going to spur a change in investment habits, and therefore we will see a greater sophistication among investors in terms of their own financial security? Definitely, this is going to pan out over the next few years. In terms of digitization, we have seen a very big boom, and especially during the pandemic. And we are seeing it in all spheres of life. And definitely, even in investment, we saw it growing by leaps and bounds during pandemic. So that's definitely going to help. But what is also important, which I also raised last time, when we are talking about awareness, we are not talking about awareness amongst people like us, people we see around us. We are talking about awareness in other age groups, in other income categories, in other societies, in other cities, in smaller towns. So yes, investment in mutual funds and SIPs have started happening, but we are talking about a much, much bigger pace which we want. So that is something which is going to take time. So even this, talking about digitization and adoption of that in the investment and how we invest, all that is happening. Right now, it's kind of, I would say limited to a set of people, but the whole digitization process, the way even the uneducated people and the working class is adopting to digitization, it's phenomenal. So it will take some time before it moves to that segment, but I think what is more important is to overall increase more awareness about other financial products, apart from the saving schemes and bank deposits, which everyone is aware of. Right, okay. So now let me come to the next bit that I wanted all the panelists to talk about is,
the uncertain and the high interest rate environment in which all of us are living currently, I hope it doesn't last for too long, but no one can really predict how long this is going to last or not last. So Atul, let me start with you. Given that interest rates are probably going to keep going up, at least in the US and other developed countries, and as a result, India may also need to, although today we saw that industry and other economists are urging RBI not to increase interest rates, put a pause on interest rate hikes. What kind of an approach would you advise investors or savers to adopt at this time? Two things. One is that we are almost near the peak, to my mind. I think by October we should start seeing RBI at least reducing rates. And I'm not saying that RBI is going to do it voluntarily. RBI will be forced because of external events if they don't kind of pause now. So given or take, October is where the peak is. So start locking into longer term, high interest rate instruments right away. So one is that whatever instruments you are purchasing or investing in, this is a time to lock into the long term. That's one. The second thing is that you continuously have excess money which you want to reinvest. Look at some of the alternates other than the mutual funds and the insurance companies. For example, RBI has actually floated a retail GSEC platform. I'm not sure how many of you actually look at it, but historically, let me tell you that bank FD rates are about 100 to 250 basis points. 1 से 1.5% कम होता है comparative maturity of GSEC historically, last 20 years. So why invest in a bank FD when RBI gives you the facility to invest in GSEC, and you can invest as low as 5,000 rupees. Just go to RBI website, look at retail investments. You can straightway take exposure and earn 100 to 250 basis points of a higher interest rate for the same maturity. The third thing would be to look at alternate investment instruments. For example, today a lot of tech platforms give you ability to invest in invoice discounting, 10,000 rupees to whatever amounts you want to invest up to 1 crore. You can take the risk if you want. I mean, analyze the risk, invest it, but it gives you anything between 10% to 13%. Maturity 30 days to 90 days. So that's another option which you have. You have the bond platforms. You can invest in bonds. So these are the things which I think digitally the savings are getting disrupted away from the traditional mutual funds and the insurance companies. So keep your eyes and ears open, and if you look around, there are enough and more options for you to look at and invest and increase your yield on your idle funds, short-term, long-term, and even in the high interest rates. Right. So, Shogata, once again, it does appear there are enough instruments and enough options available. It boils down again to lack of awareness and people acting on those, options. So, whose job is it to really create this awareness? Obviously, Money9 takes this job very seriously, but I guess there has to be some sort of a push which comes from industry as well as the government as well. So, how would you address this? So again, whose job is it to increase savings? Take the example of China. China's savings rate at its peak, now it's come down a little bit, was 50% of GDP. Ours was about at the peak, at the best days was 36 odd percent. Yeah? So China's thing is a government thing. So China's savings to fund China's growth and investment, because their growth was investment led. Yeah, so banks used to offer 0.5% or 1%. So, and there were no social safety nets, etc., just like in India. So the point was to sustain China's growth, you had domestic funds, but you didn't have domestic consumption. So China's consumption had to come from abroad. So its exports was the engine of growth using domestic savings. That was a government-led. So the government actually repressed interest rates and extracted savings from households. Yeah. Should India do the same? Probably not. And we are increasing our exports, but it will take some time to hit anywhere close to what China's export levels were and how China's exports helped its domestic growth. So in India's case, again,
just like in the last budget that you saw. I mean, people have been criticizing the budget that not enough incentives have been given for increasing disposable incomes, taxes have not been cut. I think one of the best ways to do this is to get the overall levels of interest rates down. It has to be balanced because, I mean, from a borrower's perspective, the guys who invest, so lower interest rates is good, but from a depositor's point of view, you need a certain amount of, so that balance is very difficult. I mean, so, and again, when you're borrowing, you actually are investing that you are earning some income. So that level is good. The point that the fiscal deficit did not do enough to get this done, I think the good point is that narrowed the borrowing. So if the government's borrowing does not explode, then your overall levels of interest rates begins to come down. And more importantly, so does inflation. Because inflation is the biggest killer of savings, of consumption, etc. So that needs to come down. That is slowly coming down. So from the push and pull factors, from the government's push factors, I think the government is doing more or less close to what it ideally should be doing. From the pull factors, from our industry, insurance industry, you just saw the industry, heard the industry panel, industry, provident funds, etc., and mutual funds. And so from the pull factors, I think probably something else needs to be done. But again, I mean, a lot of these are dependent on markets. Only very sophisticated investors, the people in this room, many of your listening audience, will be able to time the changes in interest rates, etc. Because remember, the returns, which is, as Siddharth also mentioned, that returns are a big factor in determining savings behavior. So returns are very economic cycle dependent. How you change your your allocation asset is what determines your return, not so much the individual bonds or stocks or whatever. So that's something that the mutual funds, say industry, for instance. People during the pandemic became very conscious of the need for insurance, because mortality rates increased, etc. That is again coming down. So, I mean, if you talk to insurance, you will hear that in tier 2, tier 3 cities, the demand for insurance, premium products are beginning to come off. So this is a complex environment. I mean, what's the role of the government? What's the role of the individual? But the government's role and the regulator's role is definitely increasing financial literacy, safety, risks, etc. Right. So, Siddharth, since we have a lot of people watching us online on Money9 Hindi and Bharatvarsh also, मैं आपसे ये हिंदी में पूछूंगा ये वाला सवाल कि अभी जो सौगता जी ने कहा था कि there are a lot of options available, but इसको manage करना आना चाहिए. तो ये जो है, जो एक आदमी, आम आदमी है, वो दिन भर अपने काम में बिजी रहता है, उसके बस का तो है नहीं. तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छा जो उपाय है कि आप किसी फंड मैनेजर, रिलायबल फंड मैनेजर के साथ आप अपना इन्वेस्ट कीजिए और fill it, shut it, forget वाला जैसा बात. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी में? Okay, so I'll put it this way. I'll take a step back. हम जब बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग में एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी हम सब लोग इन दिस रूम एवरीवन वुड नो, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इन पर्सनल फाइनेंस आल्सो आई थिंक देयर इज वन एसएलआर कॉन्सेप्ट knowingly or unknowingly in a saver's mind. That SLR stands for something else. That SLR is safety, liquidity, and return, and possibly in that order, right? And you cannot deny the merit of that particular factor. You have to ensure that. My sense is that over a period of time, a very significant improvement that needs to come is थोड़ा एसेट एलोकेशन और थोड़ा एक्टिवली होने की जरूरत है, क्योंकि आप खाली सेफ्टी फैक्टर में डोमिनेटेड रहेंगे और पूरा के पूरा पैसा आपका बैंक का सेविंग्स डिपॉजिट में डालेंगे, because that is the most safe and most liquid, then you will not get return. So somewhere over the long term, people will try to strike that balance. Here, the role of the government is in terms of generating awareness so that people also know that safety factor किसमें कितना है, कहाँ आप कितना risk ले रहे हो. I think we are moving well in that particular direction. Over a period of time, I think people have started doing that allocation mental maths in the back of their mind that, okay, I need this much money at short notice, so I'll be keeping it here. Gradually,
we have started talking a little more about insurance, still very less penetrated compared to the optimal level, but at least kuch to money ja raha hai udhar, and obviously the return factor is kind of pulling people towards more towards equity market and some of the more risky avenues where you can take the risk. I think iska saath financial entities ka, for example banks, for example a bank like mine, where there is a lot of network in some of the even rural and relatively less penetrated areas, we are trying to have one particular approach which is also yielding fantastic result. We have realized that even at the bottom of the pyramid also there are pockets where there is very considerable level of saving potential, but that money is actually not coming in the mainstream. But for a bank, it's very costly if you actually try to ambush that particular market. You cannot do that. There comes a role, people talk about digital. I think there is a very significant role about data and analytics that we try to introduce in a very significant way where there is scale, where your efforts can be a lot more targeted, and actually you manage to educate people to go for this kind of financial savings products. So all these factors put together, I think, I go back to my previous comment, that this is what gives me a lot of optimism about overall financial space and financial savings in general. Right. तो रजनी और अतुल जी, दो बातें जो निकली हैं इनके कहने से ये है कि एक मैंने सुना पोर्टफोलियो एलोकेशन और दूसरा रिटर्न मैनेजमेंट. ये जो आम आदमी जब सुनता है वो तो हाथ खड़े कर देता है, वो तो बोला यार ये तो मुझे नहीं समझ आता ये क्या है. तो आप क्या कहेंगे, कैसे उनको क्या कहेंगे कि कैसे अपना पैसा मैनेज करना चाहिए, सबसे उचित उपाय क्या है? मैं कहूँगी कि जैसा कि आपने कहा आम आदमी के लिए टाइम करना कि एक्विटी मार्केट कब टॉप में है या इंटरेस्ट रेट अब इससे बढ़ेगा घटेगा, ये बहुत मुश्किल है. सो आम आदमी को जो अपना एलोकेशन है वो अपने एज के हिसाब से करना चाहिए. जब वो यंगर हैं उन्हें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, उनको अपना ज़्यादा पोर्टफोलियो एक्विटी में रखना चाहिए और रिलेटिवली कम डेट में रखना चाहिए. और जैसे जैसे कि उनका एज बढ़ता है उनका डेट का प्रपोर्शन बढ़ा देना चाहिए. आई थिंक ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेटर रहेगा. अगर उन्हें और कुछ नहीं समझ में आता है तो एटलीस्ट इतना वो करें. और अगर स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली अगर वो नहीं समझ में आता है उन्हें किस स्टॉक में डालें क्या, तो वो म्यूचुअल फंड में SIP करें और वो SIP करके एक जो भी अमाउंट वो कर सकते हैं मंथली बेसिस में वो करके और वो भूल जाएं. क्योंकि अगर वो मार्केट का वो ऊपर चढ़ना गिरना वो देखेंगे और ट्रैक करेंगे तो वो घबरा जाएंगे, उनको लगेगा वो म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाएं. तो जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने पहले भी कहा कि इक्विटी मार्केट में आप डाल रहे हो तो 5 साल 10 साल के लिए आप पैसा डाल के भूल जाओ और SIP बेस्ट है उसमें, क्योंकि उसमें फिर आपको टाइम नहीं करना पड़ेगा. अतुल जी आपका सुझाव? दो चीज़ें मैं कहूँगा. एक तो रजनी जी की बात बिल्कुल सही है कि उम्र के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए. दूसरा मैं कहूँगा कि हमारी संस्कृति को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए. हम देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है. हमारी फैमिलीज़ में ये होता है कि लड़का हो या लड़की हो शादी में उसको सोना देना ही है. तो एक ये है कि अभी से ही उसका प्रोविज़न करते चले. लोग ये कहेंगे कि भैया ये बिल्कुल वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट है, इससे कोई नौकरियां नहीं बनती. मैं कम्प्लीटली डिसएग्री हूँ. एक बार किसी ज्वेलर की दुकान पे बैठिए और ये देखिए कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ थ्रू गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी. तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके कुटुंब में शादी का जो चलता है वो व्यवहार चलता होगा तो धीरे धीरे 1 गिनी 2 गिनी 3 गिनी लेते रहिए. हम अगर हमारे पुरखों को देखें तो उनके पास ये ट्रेडिशन थी और आज भी कई सारी फैमिलीज इसको आगे बढ़ाती रही है. आज की तारीख में इसकी मैं एक ये दूंगा, साबिती ऐसे दूंगा कि गोल्ड लोन कंपनीज इतनी सक्सेसफुल क्यों हैं. गरीब के पास सोना था तो गोल्ड लोन कंपनीज में गोल्ड दे चुके. अगर नहीं होता तो क्या करते. तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से अनप्रोडक्टिव क्लास जिस तरह से बताया जाता है गोल्ड को, आई कम्प्लीटली डिसएग्री. आपकी ट्रेडिशन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए. दूसरा आपका एजुकेशन. आज की तारीख में चाहे कितना भी आदमी गरीब हो वो चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े. तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए
कि जब वो बच्चा ग्रेजुएट होगा तो उसको MBA में जाना है तो 5 लाख, 50 लाख, 60 लाख कुछ भी एडमिशन फ़ी हो सकती है, तो उसको मद्देनज़र रख के अभी से कैसे सेविंग करें। तो यह है कि एक तो आप रिस्क लीजिए, इक्विटी में देखिए, लेकिन ये भी होता है कि आपको इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। ये भी हकीकत है कि अगर जिस वक्त आपको डिसइन्वेस्ट करना हो तभी कोई ग्लोबल इवेंट हो गया तो आपकी प्राइस 30, 40, 50% वैसे ही निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, या आपने इन्वेस्टमेंट SIP में किया या म्यूचुअल फंड में किया तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। इक्विटी मीन्स रिस्क, चौकन्ना रहिए 24/7, वो एबिलिटी है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, खूब पैसा बनेगा। 1 लाख से आप 50 लाख आराम से बना सकते हैं, चौकन्ना रहिए। या फिर आप जाइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको मैं कहूँगा सबसे सेफ तो GSEC है ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ है, और आज की तारीख में आप 5,000 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपया एज एन इंडिविजुअल आप सेव कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि SBI के बॉन्ड्स है, 81 बॉन्ड्स है, आपको आज 8.25, 8.5, 8.9% मिल रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ तो है, लेकिन हमारी जो ज़रूरियात है उसके हिसाब से भी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उम्र का तकाजा लेते हुए, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो फैमिली ट्रेडिशंस है और हमको जो लगता है कि कहाँ कहाँ पर हमको कब कब तकलीफ़ आएगी, उसके लिए प्रोविज़न करके अगर इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे तो बोरोइंग का समय नहीं आएगा। So now we down to the last 3 minutes of this panel. One thing which I want to wrap up this panel on is the fact that a lot of people, the average Indian has an expectation from the government that the government will do something to incentivize me to save. But like Kennedy very famously said, don't ask what the government can do for you, what you can do for the government. Here we are asking people only to do it for themselves. Like how can you become financially more secure? So that's the question they have to ask themselves. Shogata, let me start with you and we'll try to wrap this up in 3 minutes with all 4 of you. Are we now in an era where the investor should expect that the SOPs and incentives that were given before to encourage, say, savings and other investments, although in this budget also we had the Mahila, Samman saving scheme which was launched. Is that like gone now? Are we in a different era now as investors? So to a certain extent that's over and done, because एक तो है जो ELSS investments थे, उतना पैसा उतना successful नहीं हुआ। बाकी इंटरेस्ट रेट्स, महिला सम्मान, सुकन्या समृद्धि, हाँ ये सब के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स के लिए टारगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स, हाँ उनके लिए वो टारगेट करके उनको हायर इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं गवर्नमेंट। थर्ड है EPF, PF मैंने जो हमारे जो प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे हाई रेट्स बढ़ा के रखे हैं, वहाँ पे वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बट वही चीज़ है, बार बार वही कह रहा हूँ यहाँ पे कि रादर देन दी स्पेसिफिक इंसेंटिव्स को इसको ट्वीक करे उसको ट्वीक करे, वो नहीं, एक कंसिस्टेंट प्रोग्राम रखे कि अगले 7 साल में 10 साल में 6.5% हमारा ग्रोथ होगा। लास्ट टाइम रिमेंबर ये 2003 से लेके 2008 तक के बिफोर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्पॉइल्ड दैट पार्टी, हाँ वो दैट वाज द गोल्डन ईयर्स ऑफ ग्रोथ एंड द गोल्डन ईयर्स ऑफ सेविंग्स। वो मैंने गवर्नमेंट का ये सब छोटे मोटे ट्वीक करके थोड़ा बहुत तो जाएगा ये पैसा, मैंने 10,000 करोड़ आएगा, लेकिन पूरे स्कीम में जहाँ 40 लाख 50 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, वो सब नहीं। तो एक गवर्नमेंट को करना है, ग्रोथ पे नज़र रखे, बिल्कुल फोकस वहाँ पे रखे। सिद्धार्थ, आई थिंक लॉन्ग टर्म में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। वन फैक्टर इज कंसिस्टेंट पॉलिसी, सो यू कैनॉट गो वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट कंटेक्स्ट, given that we are moving towards a slightly more cleaner regime, is not a bad thing to have. And people, I mean, the target group of savers, they are also maturing over time, so it's not a bad thing. So consistency is possibly the key. Ensuring safety of the various instruments, or making people aware of the various risks that they are taking, is possibly the other most important thing. And there, it's not only the responsibility of the regulator and policymakers. I think every stakeholder associated with the financial ecosystem, regulators, policymakers, banks, NBFCs, media, analysts, everyone would have to play a role apart from that. I think these two are the long-term key to me. Great. Rajni? So I'll simply put it that research shows that not just in India but globally also,
tax incentives do not necessarily lead to increased saving, household savings. So I think, like what my other panelists have been saying, the government focus should be on growth. High per capita income will ensure higher savings. So that's what the focus should be on. In fact, removing with the new tax regime, with all these tax incentives going, in fact, there'll be flexibility to the households to invest in whichever they find apt, whichever asset. अतुल? मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में गांव-गांव में लोगों को पता है कि पीएम आवास योजना है, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि आरबीआई की सिक्योरिटी 5,000 रुपये में मैं खरीद सकता हूँ। तो फाइनेंशियल लिटरेसी गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है। तो आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी गवर्नमेंट को खुद को इन्वेस्ट करना चाहिए। और टैक्स ऑप्स का मेरे हिसाब से तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए अगर हमको डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी है तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट रिस्क जो आज की तारीख में इंडिविजुअल्स के पास है उसको थोड़ा हटा के इंस्टीट्यूशंस के पास लेके जाना चाहिए। Right. I'll want to end this panel with one bonus question to Atul because he's the financial advisor to a lot of people. Atul, one of the very interesting points made by one of the previous speakers, and that was an advice to the common investor, is that don't focus on just returns, focus on your goals. आपने बेटी की शादी करानी है, बच्चे को बाहर पढ़ाना है, गाड़ी लेना है, बड़ा घर लेना है, जो भी है, आप उस पे फोकस कीजिए, आप रिटर्न्स पे मत फोकस, because that is tangible and returns can keep varying. So, what is your take on that? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक ऐसे सबब से आता हूँ, मैं विले पार्ला में रहता हूँ। वहाँ पे आप देखिए कि बच्चा पैदा होते ही बाप घर खरीद लेता है। देखिए, सीधी सादी बात है। बच्चा पैदा हुआ कि घर खरीद लो, ये एंशिएंट विजडम है उनकी। तो क्या होगा कि बच्चे का जो हाउसिंग रिलेटेड इन्फ्लेशन है ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। पैसा है तो बात अलग है, लेकिन आई एम सेइंग कि ये एक सोच है। उस सोच को आप पकड़ के रखिए कि आपको आपके बच्चों को सिक्योर करना है, ना कि उसको बोरोवर बनाना है। उसने क्रेडिट कार्ड लिया, उसने पर्सनल लोन लिया, उसको कार चाहिए, उसने कार के लिए लोन ली, घर चाहिए, घर के लिए लोन ली, क्यों लेनी है? आप प्लानिंग वैसे करिए कि जो आपके गोल्स है उसके हिसाब से आप अभी से प्लानिंग करिए। जितना रिटर्न्स इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एजुकेट कर लिए फाइनेंशियल लिटरेसी से, रिटर्न्स मैनेज करिए, रिस्क मैनेज करिए, कैपिटल लॉस को मिनिमाइज करिए। Excellent. I think we got some really great points from each of the panelists today. If most of the ARM investors maybe took away just 50% of what they said, I think they'll all be very rich as India grows. So let me thank all my panelists, and I request the audience to give them a huge round of applause. Thank you so much, Sridhar, for this इंटरेस्टिंग टॉक। बॉलीवुड भी था, पैसा भी था, निवेश भी था, बच्चे और गाड़ी भी थे, तो बहुत अच्छी लगी ये सारी बातें। इकोनॉमिस्ट के मुंह से हम आज जब सुन रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि निवेशक जो गलतियां कर रहा है उसको समझने को, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पैनल को जो श्रीधरन के साथ आज हमारे स्टीम पैनलिस्ट थे, क्या ये सुनना चाहिए जो मनी9 बार बार आपको यही कह रहा है। थैंक यू श्रीधरन, थैंक यू सो मच गेस्ट, बट आई वुड जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू वेट हियर बिकॉज आई वांट टू इनवाइट नाउ Kalpak Kekre, channel head, TV9 Gujarati. Please, sir, please come on the stage and honor our experts today. Can we have the mementos, please? A big round of applause for a very interesting conversation. कल्पक जी, प्लीज मोमेंटोस देकर सम्मान कीजिए हमारे गेस्ट का। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियां फिर से। देखिए, आज हमको बहुत सारी काम की बातें पता चली, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने गेस्ट के लिए कि तालियों से उनका आभार जरूर जताएं। मुझे लग रहा है तालियों का जोश कम हो रहा है। कोई बात नहीं, इसके बाद टी ब्रेक लेते हैं। हाँ, चाय के जोश की जरूरत है। जोश भी आएगा और आगे और भी बहुत सारी काम की बातें होंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक शानदार पिक्चर भी हो जाए इस शानदार पैनल के साथ, तो प्लीज
मुस्कुराइए आप सभी। एक बहुत शानदार सी पिक्चर हम ले रहे हैं आज के इस कॉन्क्लेव को यादगार बनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनी 9 और टीवी 9 के अलग अलग प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर हम लाइव हैं। Thank you, हमारे sir. लाइव ऑडियंस भी जुड़े हुए हैं, इस Thank बातचीत you, को guest. सुन रहे हैं। Thanks a थैंक lot. यू ऑल कि आप लोग सब जुड़े हुए हैं। एक शिकायत बार बार आ रही है गौरव कि हम इंग्लिश में ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या गौरव आज नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बातें जितनी हो उतना अच्छा है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इसी से आएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल विजडम इसी से आएगा। बिल्कुल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हम अभी और लेकर आने वाले हैं अगले हाफ में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि तालियों की आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो रही है, थोड़े से जोश की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आप चाय पीते हैं और चाय के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन 4 बजे बहुत ही खास मेहमान का सेशन है। माफ़ कीजिएगा, 5 बजे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इनसे हमारी बातचीत होने वाली है। कोटक एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह का है अगला सेशन। चाय पीजिए और वापस आइए। कैपिटल वर्ल्ड का जाना माना नाम। बस 5 बजे, तो बस कहीं मत जाइएगा, प्लीज हैव टी। और उसके बाद फिर इसी हॉल में मिलते हैं, इसी मंच पर एक शानदार चर्चा के साथ। जो ऑडियंसेस लाइव जुड़े हुए हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूंगी, हम बस वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रही है? Okay, great. So my आवाज is reaching to all of you. Thank you so much. My guests are here. Thank you, Gaurav. Thank you. बीमा पर बात करना जरूरी है क्योंकि हम सब सोचते हैं कि ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, पर फिर भी हम नहीं खरीदते। और शायद मैं और आप दिल्ली और मुंबई में रहकर यहाँ पर जितने लोग हैं वो बीमा समझते हैं, खरीदते हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर है वहाँ तक बीमा समझना इम्पोर्टेंट है, पर क्यों नहीं खरीद रहे? इसी पर मंथन करते समझते Please, हैं। all yours. One more mic, please. Can I get one more mic, please? Coming. Thank you so much, all of you, for taking out time. Monday, this is not Monday, this is a Wednesday afternoon and Mumbai traffic. And you guys have come, thank you so much. Thank you so much for being here. Insurance is something which is very close to my heart. And I'm sure it is very close to all of you because I have some way or the other interacted with all of you. And I think it has been a very important part. We've conducted a personal finance survey and I want to show what came out of that when we spoke to people and asked them about insurance. Let's have a look at that. Here's Sanjay. He's a software engineer from Mumbai. Sanjay is savvy. He invests in insurance to create a secure future for himself and his parents. That's why he has 6 to 7 insurance policies. But Sanjay belongs to a minority. And why is that? Look at the government data. It says insurance penetration in India is only 4%. And our own Money9 personal finance survey shows that just 19% of families buy insurance for savings. The number is higher in rich states like Karnataka and Maharashtra, but not in poorer economies like Bihar and Jharkhand. But the overall trend is worrying. It shows that India believes in saving more than ensuring a secure future. It's only if more people follow Sanjay's example and invest in insurance that the future is likely to be secure. If you want to learn how, then the panel on insurance at the Financial Freedom Summit hosted by TV9 Network and Money9 is what you should tune into. बीमा पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये ना निवेश है, ना बचत है, ना खर्चा है, ना टैक्स सेविंग का जरिया है, लेकिन हम सब बीमा को यही समझते हैं, ये निवेश है। हमारे सर्वे में भी यही पता चला कि लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस मतलब फिनेंशियल सेविंग, और ये सेविंग नहीं है बल्कि आपके जीवन के सुरक्षा कवच है जिसकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका बुरा वक्त होगा, चाहे वो जीवन का बुरा वक्त हो या स्वास्थ्य का बुरा वक्त हो। कोविड ने बहुत हद तक समझाया हमें कि बीमा कितना ज़रूरी है। फिर भी जब हम IRDA के वो आंकड़े देखते हैं जिससे इंडस्ट्री तो वाकिफ़ है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4.2% का है, जबकि पिछले 10 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमने 10% का ग्रोथ एवरेज मैं लेकर चल रही हूँ देखा है। अराउंड 57 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी क्या ये लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं? और ऐसे में 2047 का इंश्योरेंस फॉर ऑल का गोल का लक्ष्य हम कैसे अचीव करेंगे इंश्योरेंस फॉर ऑल? So let's start the discussion with my esteemed panelists because I think they would throw in more light than me. Priya, thank you so much for being here. Since you belong to Manipal Signa Health, I want to understand from you, as far as health insurance is concerned, the biggest issue is the out-of-pocket expenditure which an Indian has to go through. You know, what is stopping the Indians from buying health insurance? Why is the health insurance penetration so low? Because when I spoke about 4.2 penetration of insurance, it had both life and general. And when we see standalone health insurance penetration, it's around 1%, little bit above 1%. Right. So what is it that Indians, why are Indians not buying? What is it that is stopping Indians from buying health insurance? Sure, great. Thank you, TV9, and thank you to you. We've been part of multiple conversations over the last couple of years. And indeed, such a powerful vision to have health insurance for every citizen of India by 2047.
underpinned with the fact that insurance penetration has been low, especially for non-life, as you rightly said. And a couple of factors. ये कोविड में हमने देखा, कोविड में कैसे expenses हुए, health care के expenses बढ़े, बहुत सारे लोग जो upper middle class, other people who had good financial kind of standing, they suffered during the time of COVID with the kind of claim size, the amount of expenses that were made. So हम हमेशा सोचते हैं, हमने बात भी करी, पहले भी आपने बात करी है, 60 to 75% of the total expenses are out of pocket. तो इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा? क्या challenges हैं? इसमें सबसे बहुत बड़ा एक challenge mindset. बेसिकली आज मैं हेल्दी हूँ, मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मैं घर खरीद लेता हूँ, मैं गाड़ी लेता हूँ, मैं बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ. सो पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस कि यू आर फिट टुडे एंड गॉड फॉरबिड everybody should remain fit, but when that health and health issue will strike, that awareness and that knowledge and that ability to really have that visibility कि क्या हो सकता है, so awareness drive करने की ज़रूरत है. Second factor is trust. Third factor is basically most importantly कि मैंने पैसे तो दिए इंश्योरेंस के, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला साल भर में. That kind of a thought process is also really holding it back. So I would say trust deficit from the standpoint that कि मैंने पैसे लगाए और वापस कुछ नहीं आया. वो थॉट प्रोसेस थोड़ा मतलब अवेयरनेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है. अभी इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अबाउट फॉलिंग सिक, गोइंग बैक इनटू हॉस्पिटल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिट केयर, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेलनेस. आपकी सारी डॉक्टर के बिल्स जो हैं, आपके सारे फिटनेस केयर का जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारा सब कुछ इंश्योरेंस आजकल कवर करता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्स नहीं, OPD, आपके डॉक्टर कंसल्टेशन, डेंटल दिस थिंग, टेलीमेडिसिन फॉर दैट मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव it comes under the insurance cover. It's all about awareness. प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है. पिछले 10 साल में बहुत नए प्रोडक्ट्स हैं, especially last 5 years with the changes in regulation, regulator being so pro customer, बहुत सारे positive changes हैं, awareness की ज़रूरत है. Mr. Naidu, I would come to you with my next question. As Priya pointed out, a lot of product. In fact, the entire last year we saw regulator taking lots of such steps wherein a use and file was introduced, So all of you got a lot of flexibility in bringing out new and innovative product. If there are product, and there is a need for insurance, why are people still not buying insurance? Do you think they're buying? What is your take? Okay, I think, thank you for this question, Priyanka. I think it's a very interesting gathering that we have put together, and congratulations on your DataCoin app. Okay, very quickly, the life insurance penetration is under 4% today, 4.2%. And if we were to really look at this figure a little deeper, the penetration in non-metro market is even starkly down. Absolutely. It is That's under what I 1%. pointed out, yeah. Okay. So what are the big challenges? What are the big challenges? One, I think today insurance and simplicity don't go with each other. Okay. So insurance product baat karte hi, for a, people find it highly complicated. They think that ye hame samajh mein nahi aa raha hai, right? So product simplicity is one aspect that I would like to touch upon. Number two is distribution. Okay, how are we reaching out to these customers to go ahead and provide them the right solution? Today, with the entire advent of digital, there's a major digital explosion that is happening. But are people willing to engage digitally to buy insurance? Or are they looking at a digital model with a physical and digital enterprise, right? So product simplicity, product reach, in terms of going deeper into markets, and product variety. If you just look at insurance companies today, everybody is now in the same garb of providing similar products, okay? A product which is very, very suitable to a Sanjay kind of individual, right, in metro. Is it, the same product which is great for a Suresh kind of individual in deep, district, okay? So I think all these aspects, I think have to be addressed one by one. I think there's a significant progress that's happened in the market in the last 10 years, like Priya is saying. The regulator is, pushing the insurers, easing the regulations through use and file to create better, simpler, easily understandable, affordable products. I think there's a great movement that's happening, but there's still a long way to go, as far as the penetration is concerned. Now with the new advent, Har Ghar insurance by 2047, the kind of trust that the now regulator is putting in,
truly the developmental role in terms of actually giving out targets to insurance companies, okay, and giving boost to distribution intermediaries in terms of giving licenses, 9 people, But 9 still different on insurance papers. companies, They've a lot still of not things. passed the bill yet. I mean, Yeah, it's still in but the process. I think great, draft regulations have come in, and we have known the regulator But the by draft now. proposals will remain to be draft unless it turns out into Priyanka, look at the number of drafts that have come in the last, it's a contentious topic. Yeah. Look at the number of drafts that have come in. Shubhro is here, Priya is here, everybody is here. Look at the number of drafts that's come in the last 5 years, and tell me the number of drafts that have not been passed. Okay, Yeah. so it's a contentious this debate topic. is a totally different. I would bring in Shubhrajit here as well. Shubhrajit, you tell me. I mean, as Venkatesh and Priya pointing out, there are lots of things that needs to be done. But what is it that you see? One thing you think this should be sorted out first and foremost, and so that you could achieve the goal of insurance for all. I think 2047 insurance for all is a very aspirational goal, and we all strive for that. No doubt about that. But it's easier said than done, and you all need to work very coherently towards that. I think let's go back to the first principle. Why people don't buy insurance? I think they have touched upon that. I will go a little deeper onto that. That it's a product which doesn't give you instant gratification. We as a consumer tend to get something which gives us a gratification. You invest in FD, you invest in MF, you will get something in return. The return may vary from 5, 6, 4, 5, 6 to 10, 11, 12, something in return. The payoff in insurance is extremely asymmetric. I will give an example. By the way, India is one of the most competitive global market in terms of term insurance product. I think the price in India is one of the competitive in the global level. If you pay, and it depends on the age and tenure of the policy, if you pay 20 to 30K, you get a 1 crore of insurance coverage. See the asymmetry in the payoff, 25, 30K and 1 crore. But still, if we think that, by the way, if nothing happens to the person, nothing will be returned, and that return, because it's either at less 25, 30,000 gone, or you get a 1 crore, extremely asymmetry. This requires a deep financial understanding, culture, education, and financial literacy. So any foundation of a financial planning, that's everybody knows here that insurance is the foundation of a financial planning you do. But just saying that wouldn't suffice. I think, and I'm very glad that you are organizing session. This kind of a session, awareness at a school level, to my mind, all the bodies coming together, all the ecosystem coming together, government, regulatory, industry, all need to work together to achieve the goal. And I personally have a strong belief, I am very passionate also, that it is possible if all we come together and start with educating ourselves. Now, so to my mind, that there will be obstacles in the journey, but if we work together and figure out, I think there's a lot of product propositions, currently there is a plethora of products. I think the key is to make ourselves more aware. I will give an example how in the COVID period it has turned the way. It has opened the eye actually. Industry, I just wanted to quote a number. Industry has settled 78,000 crores of, life insurance industry settled 78,000 crores of claims. And think about the person who, by the way, deciding between to take a spend 25K for a 1 crore, finally decided to take a 25 crore, and something has happened to the family. His family is financially served. Absolutely. So that's one thing, the lack of understanding of the product and the return aspect जो शुभजीत ने कहा कि हमें return क्या मिलेगा अगर हम खरीद रहे हैं इंश्योरेंस, ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो लोग पूछते हैं और मुझे लगता है अगर उनको ये समझा दिया जाए कि ये रिटर्न आपके लिए नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के लिए है, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको उधार लेकर के आप उधार के जाल में ना फंसाएं, उसके लिए ये समझ जो है वो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। हम Money9 और TV9 के अलग अलग प्लेटफॉर्म में अभी लाइव हैं, हमारे लाइव ऑडियंस में अगर कुछ सवाल पूछेंगे तो हम उन्हें भी शामिल करेंगे। पर अब मैं जाना चाहूँगी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आर्या के हेड हर्ष रुंगटा जी के पास, और इनके साथ तो बीमा पर मेरी इतनी सारी बातें हुई हैं। अब रुंगटा सर, बीमा पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप बताइए
क्या है सबसे बड़ा चैलेंज? मुझे लगता है भारत में, जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि रिटर्न नहीं मिलता, वैसे ही एक समस्या है कि हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं ना तो हम थोड़ा सा बार्गेन करना चाहते हैं, हमें लगता है हमें जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है वो ठीक नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रुंगटा सर। आपको लगता नहीं है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए बीमा को और सस्ता होने की ज़रूरत है? पहली बात तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और आई थिंक ये मंच देने के लिए। और मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस बहुत ही अहम हिस्सा होता है कोई भी किसी भी आदमी के लिए उसकी फिनेंशियल प्लानिंग में, और उस तहत से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कॉस्ट की अभी आपने बात करी तो आई एम एक्चुअली अमेज्ड ओके कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कॉस्ट में इतना काम किया है। ओके जैसे अभी कहा कि 30,000 रुपये में आपको 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हैं। हमारे एनआरआई क्लाइंट्स हैं जो सो कॉल्ड विकसित देशों में रहते हैं, वो आके यहाँ आके उनको पॉलिसी जब लेनी होती है उनको इंडिया में रहना होता है, तो एक इंडिया में जब आते हैं तो वो टर्म पॉलिसी भी लेते हैं और हेल्थ पॉलिसी भी लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, तभी वो पॉलिसीज बिक रही हैं। लेकिन सर मेरा सवाल है कि एनआरआई आकर के अगर खरीद रहे हैं तो उनकी जेब, उनकी कमाई एक इंदौर में रहने वाले सुरेश या एक बैंगलोर में रहने वाले रमन के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। वो रमन और सुरेश तक हम बीमा पहुंचा पा रहे हैं क्या? वही मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये जो एक इम्पोर्टेंस है कि बीमा, जैसे इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये कैसे मेजर करेंगे? तो इसका मेजरमेंट मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री यूज कर रही है, और मैं कई सालों से ये सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आज तक इसका जवाब मिला नहीं कि व्हाई आर वी मेजरिंग प्रीमियम टू जीडीपी एज पेनिट्रेशन। ओके प्रीमियम आपने इतना कम कर दिया, ओके टर्म पॉलिसीज बेचने लग गए, प्रीमियम कम हो गया, लोग ज्यादा दिन जीने लग गए, लॉन्गलेविटी टेबल्स बढ़ गए, प्रीमियम कम हो गया, ज्यादा लोग पॉलिसीज लेने लग गए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने लग गए, तो जैसे जैसे बेस बढ़ता है प्रीमियम कम हो गया। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रीमियम कम हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं करता है पेनिट्रेशन नंबर्स में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो बता रहा है कि पेनिट्रेशन कम हो गया, जबकि आपको जो करना था, मेन काम इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या है, आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। सुरक्षा प्रदान करना ये मेन काम है कि सेविंग्स जुटाना, और ये दोनों के बीच की जो कश्मकश है, इसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। जैसे सभी ने कहा, प्रोटेक्शन के लिए पिछले 5, 7, 10 सालों में पहले जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ करता था कि इंश्योरेंस यानी प्रीमियम दो, क्लेम नहीं मिलेगा। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में खास करके ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, टर्म में तो क्लेम्स ज्यादा होते नहीं है, लेकिन वो पिछले 5-7 सालों में उसमें बहुत काम हुआ है और वो चीजें काफी हद तक सॉल्व हुई हैं। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री सही स्टैटिस्टिक पे फोकस नहीं कर रही, व्हाई कांट वी, आई मीन सिंपल सा एग्जांपल है, आप समझिए अगर भारत में 2 ही लोग हैं, टोटली 2 ही लोग हैं, ओके, दोनों की इनकम 5 लाख है, उसमें से एक ने ले ली पॉलिसी, 50 लाख की पॉलिसी ले ली, उसके 50 लाख की पॉलिसी के 15,000 रुपए लगे, तो 15,000 डिवाइडेड बाय लेट्स अज्यूम 1 करोड़ है, तो वो 0.15% उसका पेनिट्रेशन हो गया हमारे करंट मानके से, ओके, और उसको उसका डेंसिटी लो तो वो वैसे हो गया। अगले साल पॉलिसी की कीमत आधी हो गई, जो कि हुई है, ओके, और दोनों ने ले ली, तो जो काम करना था वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कर दिया। समझ गई। आप कह रहे हो कि पेनिट्रेशन को हम जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे को बदलने की जरूरत है, राइट? और इंडस्ट्री को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका मेन काम प्रोटेक्शन देना है
कि सेविंग्स करना है और वो डिसाइड नहीं कर पा रही। फाइन, ये वेरी क्लियर। इंडस्ट्री के जो बैठे हैं मेरे साथ स्पोक्स पर्सन, और स्पोक्स पर्सन ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड कर रहे हैं ये लोग, इनसे ही पूछते हैं। प्रिया, आपको क्या लगता है कि क्या हम जिस आईने से देख रहे हैं कि ये है पेनिट्रेशन, वो गलत है? क्योंकि यही बात यहाँ पे रुंगटा सर उठा है। हेल्थ इंश्योरेंस में वो प्रॉब्लम नहीं है, या आप लाइफ इंश्योरेंस की बात ये कर लाइफ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या किए जाने की जरूरत नहीं है? तो बहुत बढ़िया उम्दा कॉन्वर्सेशन। बेसिकली कोई भी क्लास ऑफ इंश्योरेंस अब हम देखें तो अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो तो एकदम सही बोल रहे हैं सर। बट द फैक्ट इज मैं नॉन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगी। आई रिप्रेजेंट द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओवर द इयर्स हमारा काम के लिए तरफ पहला कदम उठाने का आप करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश? बिल्कुल है, और मैं जैसा कि मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, म्यूचुअल फंड्स आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड द आई थिंक इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। और उसके लिए अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो हम सब समझते हैं कि हाँ SIP कर दो, लेकिन उसको कितने और सरल तरीके से क्या हमारी रणनीति हो, इसी पर बात करने के लिए अगला सेशन है। और इसीलिए हम आप सभी जो लोग जो इस वक्त बाहर हों, आप सबसे आग्रह है कि कृपया आप हॉल के अंदर आ जाएं ताकि हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ें और शुरुआत कर सकें म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और उससे पहले नीलेश जी से उनके विचार सुन सकें, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप अपना अनुभव बताइए प्रियंका, आप तो पर्सनल फाइनेंस केटर करती हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स को लेकर अभी तक का अनुभव रहा है? अभी तक का अनुभव यही रहा है मेरा गौरव, कि मुझे ये अच्छा लगा कि आपने जब कहा कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आपका बिजनेस से थोड़ा बहुत नाता रहा है, लेकिन फिर आप जब बिल्कुल एक नेशनल न्यूज़ चैनल में काम करने लगे तो मुझे लगा कि आप कहेंगे मुझे अब समझ में नहीं आता है प्रियंका, बट आई एम ग्लैड कि आप करते हैं। और मुझे लगता है ये वो तरीका है जो हमें हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो हम बात हमेशा करते हैं वो हमें दे सकता है। थैंक यू सो मच। सो आवर गेस्ट्स आर अराइविंग, आई थिंक वी शुड नाउ स्टार्ट। बिल्कुल, नीलेश जी हमारे बीच आ चुके हैं, और क्योंकि हमने जैसा कि आपको कहा कि उन जैसा जो इस वक्त जाना माना नाम, उन जैसा वो माइंड जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को नहीं बल्कि इस पूरी कैपिटल इंडस्ट्री को समझता है, बहुत कम है। बिल्कुल। और मुंबई में सभी लोग नीलेश जी को कहते हैं नीलेश भाई, and I think he's the real भाई of mutual fund and he's with us. I'm really looking forward for his session. So मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे इनके सेशन को, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। हमारे लाइव ऑडियंसेस भी हमारे साथ हैं गौरव, राइट? बहुत सारे प्लेटफॉर्म में। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि आज मुंबई में जो Money9 का ये फाइनेंस फ्रीडम समिट है वो लाइव है 7 लैंग्वेजेस में, ना केवल Money9 ऐप पर बल्कि Money9 और TV9 नेटवर्क के YouTube चैनल्स पर, Facebook प्लेटफॉर्म्स पर, और आप दर्शक जो इस वक्त हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमें उस पर जुड़े हुए हैं, आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचाते रहिए। सवाल है तो भी हम उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपके फीडबैक से ये और ज्यादा अच्छा होगा। तो लेट्स कॉल दिस ब्रेक नाउ। इट्स ओवर, द ब्रेक इज ओवर। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज Money9 की फाइनेंस फ्रीडम समिट, और भारत दुनिया के क्योंकि सबसे तेजी से आगे बढ़ते शेयर बाजारों में से एक है। भारत के म्यूचुअल फंड सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फाइनेंशियल मार्केट को ऐसा क्या करना होगा प्रियंका कि अधिकांश भारतीयों को वित्तीय सुरक्षा दी जा सके। बिल्कुल, और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या किया जाए। तो मैं चाहूंगी, अब तो चाय का जोश आ गया है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के सबसे वेल नोन निवेश गुरु, म्यूचुअल फंड उद्योग के पुरोधा, कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश भाई, नीलेश शाह जी को, और उनको साथ में लेकर आ रहे मंच पर Money9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। बिल्कुल, नीलेश शाह जी से आज हमें पता चलेगा कि भारत के वित्तीय बाजारों में और क्या करने की जरूरत है जिससे देश के आम परिवारों को और ज्यादा वित्तीय सुरक्षा दी जा सके, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और क्योंकि नीलेश जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो बिना वक्त गवाए मैं अंशुमन तिवारी जी से ये आग्रह करूंगा कि प्लीज अब आप नीलेश जी से इस मुद्दे पर आगे चर्चा को बढ़ाएं। सर। थैंक यू नीलेश सर।
for coming to this Financial Freedom Summit. Before we begin our question answer sessions, we have discussed a lot. I think I'll request Nilesh ji to address us because he has got wonderful insight about personal finance survey. He has spent so much time in reading and understanding the survey, and he's coming with a brilliant insights of that. हम ये insights सुन लें और उसके बाद फिर हम उन सवालों पर बात करेंगे जो सवाल नीलेश जी जिन सवालों से नीलेश जी भी परिचित है और बाकी लोगों के भी सवाल हैं. नीलेश जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ तो जी नहीं पाते, खर्चते हैं तो खाली हो जाते हैं, बचाते हैं तो फंस जाते हैं, निवेश करें तो कहां करें? अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. थोड़ी सी समझ आपकी जिंदगी बना सकती है, छोटी सी बचत आपकी दुनिया सजा सकती है, जरा से धैर्य से पूरे हो सकते हैं सारे सपने. उम्मीदों को चाहिए बस जरा सा भरोसा. अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. सतारा में रहते हो या सहारनपुर में, जालंधर के हो या जलपाईगुड़ी के, हम्पी में ठिकाना हो या होसुर में, पैसे की जबान एक ही है, उम्मीदों की उड़ान एक ही है. अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. Now I'll request Nilesh bhai to address us. Hi, good evening to everyone. First of all, I would like to thank Money9 for conducting this great survey. I believe it is across 20 states, 100 districts, 1154 villages and wards, 31,500 people, and 250 questions. This is really comprehensive. Second, इस सर्वे की जो डिटेल्स आई है वो आंखों को खोल देने वाली है. आज भी भारत में 75% से ज़्यादा हाउस होल्ड अपने आप को इनसिक्योर या लो सिक्योर कहते हैं. आज भी भारत में 53% से ज़्यादा हाउस होल्ड है जो सिर्फ बेसिक लाइफ जी रहे हैं. दैट मीन्स उनके घर में एक पावर कनेक्शन है, एक मोबाइल फ़ोन है, एक एलपीजी है और एक पंखा है. सिर्फ 3% लोग हैं जिसे हम कह सकते हैं लग्जोरियस लाइफ जी रहे हैं. आज भी भारत में 46% लोग ऐसे हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम 15,000 रुपये से कम है. क्लियरली हमें बहुत आगे बढ़ना है. दूसरी चीज देखें तो आपके सर्वे के अनुसार एवरेज फैमिली की साइज 4.2 मेंबर्स है और उसमें से 1.6 मेंबर्स तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. तो हम लोगों को काम बढ़ा के उनकी फाइनेंशियल लाइफ तो सिक्योर नहीं कर पाएंगे. फैमिली में कुछ रिटायर्ड पेरेंट्स होंगे, कुछ बच्चे होंगे, उनसे तो काम करवा के हम फैमिली की सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर पाएंगे. इसी सर्वे में एक और अनोखी चीज बाहर आती है. 64% से ज्यादा लोग बैंक डिपॉजिट में निवेश करते हैं, 21% पोस्ट ऑफिस में, 18-19% इंश्योरेंस में, बाकी गोल्ड एंड स्मॉल सेविंग्स में. ये बंबई की भाषा में कहे तो स्लो ट्रेन है. अपनी मंजिल पे पहुंचा देती है बट धीरे धीरे धीरे. जो फास्ट ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी मार्केट, उसमें सिर्फ 3% हाउस होल्ड निवेश करते हैं. अगर हमें हर भारतीय को फिनेंशियली सिक्योर करना है
उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है तो कुछ चीज़ें करनी जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ग्रोथ खड़ा करना पड़ेगा। आज हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 140 करोड़ लोग हैं। अगर इस 140 करोड़ लोगों को ऊपर उठाना है तो ये $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से 30 ट्रिलियन करना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे कर सकते हैं? एक जो हम कर रहे हैं वही करते रहे और थोड़ी तेजी से करें। हमारा जो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट है, आज वो उतना उत्पादन करता है जितना पूरा भारत 2005 में करता था। 17 साल लगे महाराष्ट्र को वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ कल का भारत खड़ा था। यूपी उत्तराखंड 2001 में एक साथ थे, वो उतना उत्पादन आज करते जितना 2001 का भारत करता था। और तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात मिलके उतना उत्पादन करते हैं जितना 2000 में पूरा भारत करता था। ये 5 स्टेट अगर हम सारे लोग मिलके उतना ही काम करते रहे जितना हमने पिछले 15-20 सालों में किया और थोड़ा धक्का और मार दे तो 15-20 सालों में ये आज के भारत के बराबर हो जाएंगे। बट उसके लिए लोगों को काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, काम तेजी से करना पड़ेगा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अंधेरी में ईस्ट वेस्ट को जोड़ता हुआ एक फ्लाईओवर था, गोखले ब्रिज करके। मेरा दोस्त फेने वहाँ पे हंस रहा है बिकॉज वो भी मेरे साथ ही उस मुश्किल से रोज गुजरता है। उस ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर 2018 में गिर गया। प्रति साल मैं और फेने जैसे लोग 90 करोड़ रुपया ज़्यादा पेट्रोल में खर्चते हैं बिकॉज आज अगर ईस्ट से वेस्ट जाना है तो आप पार्ला में जा सकते हैं या खार से निकल सकते हैं। उस ब्रिज को रिपेयर करने की कीमत आज भी 90 करोड़ ही है। हम प्रति साल 90 करोड़ रुपया पेट्रोल में खर्चा करते हैं, स्ट्रेस को तो काउंट ही नहीं करते, रिपेयर को काउंट नहीं करते, बट सिर्फ 90 करोड़ उस गोखले ब्रिज को रिपेयर करने में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सके? बिकॉज बीएमसी सोचती थी ये इंडियन रेलवे का काम है, इंडियन रेलवे सोचती थी ये बीएमसी का काम है। अल्टीमेटली किसी का काम नहीं हुआ। आज जब जरूरत आई तो दिन रात वहाँ पे काम हो रहा है। होपफुली गोखले ब्रिज रिपेयर हो जाएगा। बट अगर हम गोखले ब्रिज को 2018 में ही रिपेयर कर देते तो शायद भारत की इकोनॉमी थोड़ी और तेज ग्रो हो जाती। ग्रोथ करने के लिए निवेश की जरूरत है। सैमसंग भारत में बहुत पहले आया। जब वो वियतनाम में नहीं गया था तब भी वो भारत में, उससे पहले भारत में आया था। आज वो भारत की सबसे बड़ी एफएम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी है बट मोटा मोटा $12 बिलियन का टर्नओवर है। भारत वियतनाम से तकरीबन 12 गुना बड़ा जीडीपी कंट्री है। सैमसंग वियतनाम में बनाता है, दुनिया में बेचता है और $65 बिलियन का टर्नओवर वहाँ पे करता है। भारत में बना के भारत में बेचता है और $12 बिलियन का टर्नओवर करता है। अगर हम सैमसंग को रेड कारपेट दे सकते तो शायद यहाँ पे $65 बिलियन टर्नओवर कर देता, यहाँ पे बना के दुनिया में बेचता और हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाती। देर आए दुरुस्त आए, आज सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट फैक्ट्री नोएडा उत्तर प्रदेश में चला रहा है। उम्मीद करें कि सैमसंग अब वियतनाम में कम और भारत में ज़्यादा निवेश करे। दूसरा, निवेश के लिए पैसा लगाना जरूरी है। इस सदी के 21 साल में भारतीयों ने नेट बेसिस पे $373 बिलियन का सोना आयात किया है। ये ऑफिशियल नेट इंपोर्ट नंबर है। गोल्ड स्मगलिंग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बेस्ड ऑन कस्टम्स में जो गोल्ड सीज हुआ और अज्यूम करे कि गोल्ड स्मगलर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो मुनाफा करने के लिए स्मगलिंग करता है,
तो सालाना स्मगलिंग $7 बिलियन ब्रेक इवन के लिए चाहिए। मैं कुछ समय पहले दुबई अबू धाबी से आया, मेरे साथ जितने लोग फ्लाइट में गए थे उनका ग्रॉस नेट वेट 50 केजी था जब गए, बट जब वापस आए तो 55 केजी हो गया, बिकॉज वहाँ से सोना खरीद के आ रहे थे। अगर हम गोल्ड स्मगलिंग और ये ग्रीन चैनल में से पास होते हुए सोने को काउंट करें तो हो सकता है कि इस सदी के 21 सालों में हमने $500 बिलियन सोने की आयात में लगा दिया। हम एक ऐसे पेशेंट है जिसकी खुद की हेल्थ खराब है, जिसको हेल्थ बनानी है, ग्रो करनी है, और फिर ब्लड डोनेशन दिए जा रहा है। जितना एफडीआई भारत को मिला उससे ज़्यादा पैसा हमने सोने की आयात में लगा दिया। अगर आप ब्लड डोनेशन ही करते रहेंगे नेट बेसिस पे तो हेल्थ कहाँ से बनेगी। तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग्स जरूरी है। तकरीबन 1.8 करोड़ भारतीय ऐसे हैं पिछले 20 सालों में जिन्होंने मोटा मोटा 2 लाख करोड़ रुपया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में खो दिया है। चाहे टिकवुड का फार्म हो, चाहे इमू का फार्म हो, चाहे गोल्ड की पॉन्जी स्कीम हो, चाहे सिटी लिमोजिन करके हो, अलग अलग प्रकार के नाम में अल्टीमेटली निवेशक होता रहा है। 1.8 करोड़ इंडियन, 2 लाख करोड़ रुपया पिछले सिर्फ 20 सालों में। यही पैसा सही तरीके से निवेश होता तो भारत का ग्रोथ कहाँ होता, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्यों ये रिटेल निवेशक इस तरह ईमू में, टिकवुड में, प्लांटेशन में पैसा लगा देता है? लालच बुरी बला है ये सब कहते हैं, बट कोई मानता नहीं। लोगों की लालच को कैसे हम काबू में रख सके, कैसे हम उनके फाइनेंस की पाठशाला में लेके आ सकें। यहाँ पे Money9 ऐप बहुत बड़ा काम करेगी। आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है लोगों को समझाने के लिए कि सही तरीके से निवेश करें। दूसरी एक जो चीज है, रिटेल निवेशक, उसे पता नहीं क्या हो जाता है, बट वो अक्सर बहक जाता है। कोई फिल्म स्टार आके क्रिप्टो के लिए एडवर्टाइज कर देता है तो वो उसमें निवेश कर देता है, फिर भले पूरा पैसा डूब जाए, और फिर भी उस फिल्म स्टार की जाके मूवी देखता है। कभी तो हम लोग सोचे समझे, 89% रिटेल निवेशक जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो नुकसान करते हैं। सिर्फ 11% लोग पैसा बनाते हैं। There is no future in any future and option for ordinary investor. ये हर साल प्रूव होता है, बट फिर भी लोग मानते नहीं हैं। बहुत जरूरी है कि हम इन निवेशकों को हैंड होल्डिंग करें, सही फाइनेंशियल एजुकेशन प्रदान करें और उन्हें सही तरीके से मार्केट में निवेश करने के लिए उत्सुक करें। इसमें 2 लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। एक, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेरे हिसाब से 100% म्यूचुअल फंड निवेशकों ने पैसा बनाया होगा। जो लोग म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते थे उनका शायद नुकसान हुआ होगा, बट जिन्होंने निवेश किया है उनका पैसा बना ही है। शायद कम बना, थोड़ा ज़्यादा बना, लेकिन पैसा बना है। आज कितनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसकी एनएवी 500 रुपये के ऊपर है, 100 रुपये के ऊपर है, और ये 10-10 रुपये पे इश्यू हुई थी। दैट मीन्स इन्होंने पैसा 10 गुना 50 गुना कर दिया है। चंद एक स्कीम ऐसी है जिसने शायद 100 गुना पैसा कर दिया है। यहाँ पे फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट करते तब भी पैसा बनता, लेकिन बहुत कम लोगों ने पैसा बनाया बिकॉज वो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, एक सहायक के जरिए नहीं आए। हमें ज़रूरत है कि फिजिकली और डिजिटली फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को एनकरेज करें
ताकि वह ये निवेशकों को मार्केट में सही तरीके से लेके आए। फाइनली एक बात कहना चाहूँगा, महाभारत में ये प्रसंग है, युद्ध की शुरुआत के पहले कृष्ण भगवान दुर्योधन को मनाने जाते हैं कि भाई तू 5 गांव पांडव को दे दे और उसके बाद मैं युद्ध रोक दूंगा, लाखों लोगों की जान नहीं जाएगी। दुर्योधन नहीं मानता। भगवान कृष्ण के बहुत समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं मानता। फाइनली दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत बताइए सत्य क्या है, धर्म का रास्ता क्या है, मुझे मालूम है बट मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। और आप मुझे ये नहीं बताए अधर्म का रास्ता क्या है, मुझे पूरा पता है बट मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हमारे सब में ये दुर्योधन बसा हुआ है। हमें मालूम है कोला नहीं पीना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट अब मेरी बीवी पूना में है तो मैं वो सारी चीज़ें खा रहा हूँ। अपने दुर्योधन को कैसे काबू में रखना ये बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे Money9 ऐप या मेरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को मदद कर पाएंगे, अधर्म के रास्ते से धर्म के रास्ते पे जरूर ले पाएंगे और हर भारतीय को ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर पाएंगे। एक और किस्सा कहना चाहता हूँ बिफोर आई क्लोज आउट। जब मैं एक्सिस बैंक में काम करता था तो लोगों को SIP कहता रहता था। म्यूचुअल फंड में काम करता था तब तो कहता ही था, बट बैंक में भी कहता था। मेरे एक मित्र है प्रदीप अग्रवाल करके, दिल्ली के बैंक मैंने ब्रांच मैनेजर थे। उन्होंने कहा, नीलेश भाई मैंने तो अपनी फैमिली की सबकी SIP कर ली। मैंने कहा प्रदीप भाई SIP टॉपअप करिए। उसने बोला वो भी कर लिया। फाइनली मैंने कहा कि प्रदीप भाई अपनी छोड़िए, अपनी मेड की, अपने ड्राइवर की, अपने प्यून की, उनकी SIP करिए। भले 100 रुपये की करो, 500 रुपये के करो, बट कुछ शुरुआत करो। उन्होंने अपने ड्राइवर के लिए 2000 रुपये की SIP चालू की। 54 महीने के लिए उन्होंने 1,08,000 रुपये डिपॉजिट किया। फिर ड्राइवर उनकी नौकरी छोड़ के कहीं और गया, बट पैसा यहीं पे रहने दिया। 1 साल पहले आया था अपनी बिटिया की शादी का न्योता देने और कहा कि प्रदीप भाई वो जो पैसा है अगर आप मुझे दे पाओ तो। प्रदीप भाई ने ऐप खोली, उसमें रिडम्पशन का बटन दबाया और बोला परसों तेरे खाते में 4.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। 1,08,000 के सामने 4.5 लाख रुपए, और वो भी 2 दिन के बाद बैंक अकाउंट में आ जाए। हम में से बहुत लोग उसकी कदर नहीं कर पाएंगे, बट उस ड्राइवर के लिए अपनी बेटी का सारा खर्चा निकल गया। कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक सिंपल सी SIP इस तरह से फिनेंशियल सिक्योरिटी लोगों को प्रदान कर सकती है। हमें ऐसे बहुत सारे प्रदीप भाई भी चाहिए और ऐसे बहुत सारे ड्राइवर भी चाहिए जो अपना पैसा निवेश कर सके, लंबी अवधि के लिए निवेश कर सके। अगर प्रदीप भाई और वो ड्राइवर दोनों जैसे लोग हर घर में मिलने लगे तो आई एम श्योर हमारे सेंटिनरी ईयर में भारत फाइनेंशियली पूरा सिक्योर्ड होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। हमें इसी तरीके के संबोधन की उम्मीद थी और हमेशा नीलेश शाह को सुनना और इनसे बात करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है। और आमतौर पर हम लोग फंड मैनेजर्स से को जिस तरह से समझते हैं, देखते हैं कि दे क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, दे टॉक अबाउट नंबर्स। नीलेश भाई हैज़ टोल्ड यू स्टोरीज नॉट द नंबर्स एंड ही टोल्ड यू अबाउट महाभारत। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। भारत के निवेशक का धर्म है बचत करना और उसका अधर्म है सट्टेबाजी करना। और ये 2 तरीके का हिस्सा है भारत में। एक वो लोग हैं जो निवेश से ज़्यादा ट्रेडर बन जाते हैं, जबकि ट्रेडिंग उनका काम नहीं है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो निवेश की तरफ जाता ही नहीं। बचत तो उस जितनी सीमा तक वो कर सकता है, चाहे भले वो कैश में रखता हो या बैंक में रखता हो, करता हो।
यहाँ पर इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती, उन्हें क्या करना चाहिए इस समय ऐसी सिचुएशन में जब हम कोविड के बाद बाहर निकले और हमने देखा कि भारत में लोगों के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ नहीं थी, एक एक महीने दो दो महीने की बचतें नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स को खास तौर पर क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बन सके कि वो बैंक से बाहर निकले। और प्रदीप भाई ने जैसे, प्रदीप अग्रवाल ने जैसे अपने ड्राइवर को ही सिखाया है कि आप SIP में जा सकते हैं, लोग जा सकें। मुझे भी, आपको भी पता होगा, हमारे भी परिवार में बहुत सारे लोग हैं उनके पैसे बैंक में हैं, अभी वो फिलहाल इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं इंटरेस्ट रेट राइज के। इससे पहले उन्होंने इतिहास में पिछले 20 सालों में कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया अपने रिटर्न से, लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना सही तो है, लेकिन मेरे लिए सही है कि नहीं सही ये मुझे नहीं पता है। सो एक ही वर्ड है, लगे रहो मुन्ना भाई। दुनिया की सारी मार्केट में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड जे कव होता है। म्यूचुअल फंड बिरबल की खिचड़ी है, पकने में हमेशा समय लेती है। 20, 30, 40 सालों के लिए लोग काम करते हैं, विश्वास संपादन करते हैं और उसके बाद सडनली टेक ऑफ हो जाता है। मैं अपनी म्यूचुअल फंड करियर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से चालू किया, वहाँ पे भी उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस यही था। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड इज बिजनेस ऑफ मैनेजिंग मनी, एक्चुअली इट इज बिजनेस ऑफ मैनेजिंग ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट आपको ओवरनाइट नहीं मिलता, उसके लिए दशकों निकल जाते हैं। सो एक हमें फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में देना जरूरी है। दूसरा, लोगों को जिस भाषा में समझ पड़े उस भाषा में बात करना पड़ेगा। तीसरा, एक प्रेशर चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट लोगों तक तब पहुंचे जब जन धन योजना हुई। निवेश के अकाउंट भी लोगों को पहुंचाने के लिए एक जन निवेश चाहिए। उसके साथ साथ रेगुलेटर ने इंश्योर करना है कि ये मार्केट सेफ रहे, इसमें कोई मिसगवर्नेंस नहीं हो, इसमें लोगों का ट्रस्ट बना रहे। और फाइनली मुझे क्लाइंट को वैल्यू एड देनी पड़ेगी, मुझे क्लाइंट को कुछ रिटर्न देना पड़ेगा कि वो मेरे साथ निवेश कर सकें। और ये कार्य हमें हर साल करते रहना पड़ेगा। एक साल भी अगर रुक गए, गलत कर दिया, तो वापस जीरो से शुरुआत होगी। तो हमारे लिए, रेगुलेटर के लिए सिर्फ एक चीज़ है, लगे रहो मुन्ना भाई, आज नहीं तो कल हमारी मेहनत का नतीजा मिलेगा। यहाँ मैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैराडॉक्स है, जो जिसको मैंने आपसे पीछे भी चर्चा में किया, कि जो बड़ा पैराडॉक्स है भारत में निवेशकों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि, और यह परंपरा से चला आ रहा है कि भारत में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक टैक्स का सिस्टम था। अभी भी हमने जैसा सर्वे में देखा कि भारत में मिडिल क्लास या लोअर से थोड़ा सा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ही इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी लोग तो बेसिक सेविंग पर आते हैं। अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ सरकार टैक्स इंसेंटिव नहीं देना चाहती बचत के लिए। निवेश के लिए तो कम ही थे, टैक्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा था, और हमें फिनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत अब और ज़्यादा है। कुछ और अब भी आगे चीज़ें भविष्य में हैं, भारत में एजिंग आ रही है, लोगों को अपने भविष्य के लिए ज़्यादा बचत करनी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स है, अंतर्विरोध एक सामान्य निवेशक के दिमाग में रहता, मध्यवर्गीय निवेशक के दिमाग में, कि वो उसका प्रोत्साहन क्या है, उसके लिए मोटिवेशन क्या है बचत करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि वो खर्च करे खूब, तभी डिमांड आएगी मार्केट में। वो जाए और कोला खरीदे, वो अपना हर महीने, हर 2-6 महीने बाद स्पेंड करे, वो हर 2 साल बाद अपना फ़ोन बदल ले और स्पेंड भी करे। और हमारे यहाँ इनकम लेवल्स स्क्वीज्ड हैं। यहाँ सरकार की तरफ से कौन से इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, लेने चाहिए, उसमें भी खास तौर पर एक बात जो बराबर कही जाती है, आप बेहतर समझते हैं, कि भारत का फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट मार्केट टैक्स हैवी है, बहुत सारे टैक्सेस हैं इन टैक्सेशन में और इंसेंटिव्स कम है। तो ये पैराडॉक्स, ये अंतर्विरोध कैसे दूर हो कि लोगों को मोटिवेशन तो मिले बचाने के लिए, खर्च के लिए तो उनके पास मोटिवेशंस हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो रही, पर ये जो लगे रहो मुन्ना भाई वाली लंबी लड़ाई है, आज की बचत का नतीजा उनको 15 साल बाद, 20 साल बाद मिलेगा। तो 15 साल का धैर्य बनाने के लिए उनको जो प्रोत्साहन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, बट क्या करें कि हमारे यहाँ पे कान ऐसे पकड़ना चाहिए, बट हम लोग ऐसे पकड़ने में विश्वास करते हैं। मैं आज एक मलेशियन सॉवरिन फंड को मिला, मतलब मलेशिया की जीडीपी कुछ $300-400 बिलियन होगी,
और उनके रिटायरमेंट फंड्स 300-400 बिलियन डॉलर के ऊपर है। हमारे ईपीएफ और एनपीएस को मिला दो हमारी जीडीपी के सामने तो 1/10 भी नहीं है। दुनिया भर के पेंशन फंड इक्विटी में निवेश करते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं। हमारे यहाँ पे पेंशन फंड फिक्स्ड इनकम में निवेश करते हैं। लॉन्ग टर्म पैसा फिक्स्ड इनकम में जनरेट करके आप रिटर्न कैसे बनाएंगे? उसी वजह से हमारे पेंशन फंड, हमारे ईपीएफओ उतना रिटर्न नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। और उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज उनके निवेशक को फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, उनके निवेशक को गारंटेड रिटर्न चाहिए। बट दुनिया में रिस्क और रिटर्न साथ में आते हैं। आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जिसमें रिटर्न ही आए और रिस्क नहीं आए। अब सरकार आपको चॉइस दे रही है कि आप खुद रिस्क और रिटर्न उठाइए। पीएफ में या स्मॉल सेविंग्स में या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में टैक्स की वजह से निवेश मत करिए, आपको कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं देंगे। और जो लोग रिस्क ले सकते हैं, समझ सकते हैं, वो अपने आप पे निवेश करे, बिकॉज टैक्स कम लगेगा तो जो बचत होगी उसको सही तरीके से निवेश करे। हो सकता है अपने यहाँ पे कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो बगैर टैक्स इंसेंटिव सही तरीके से निवेश करके अपनी वेल्थ कंपाउंड कर पाएंगे। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो टैक्स इंसेंटिव के लिए निवेश करके ओल्ड स्टाइल में रिटर्न फाइल करते रहे। बट इवेंचुअली जब वो देखेंगे कि मेरा लड़का नई टैक्स की प्रणाली में जाके अच्छी तरह से निवेश करके ज़्यादा रिटर्न बना रहा है, तो होपफुली इस गाड़ी से, स्लो गाड़ी से तेज गाड़ी में लोग शिफ्ट कर देंगे। सो कान तो ऐसे ही पकड़ना चाहिए, बट भारत है तो ऐसे पकड़ रहे हैं हम। आपने प्रदीप अग्रवाल का उदाहरण दिया जो इस तरफ इशारा करता है कि म्यूचुअल फंड अभी दो तरीके के पैराडॉक्सेस हैं। अगेन हम एक और अंतर्विरोध लेके आते हैं। भारत में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास फ्यूचर के एस्पिरेशंस गोल हैं, परिवार में बच्चे की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है। बहुत कम प्रोडक्ट हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के, जो भी हैं वो फिक्स्ड इनकम के नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं या एक दो स्कीम्स हैं। एक तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ज़रूरत है कि वो इस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को टारगेट करे, लुकिंग फॉरवर्ड द कॉस्ट which is going to come up 5 years down the line or 10 years down the line, जब लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत होगी। दूसरी तरफ हम अक्सर लोगों को ये सुनते हैं कहते हुए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है इसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक तरीके का पैशन है टू क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, मेकिंग प्रोडक्ट्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बताते होंगे कि 10 मिनट वो बात कर लें तो कन्विंस नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो एक तरफ हमें चाहिए सिंपल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेके आए, और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू हेज market volatility and risk, they are moving towards creating more complex products. So how to handle this paradox in industry? So again आपकी बात बिल्कुल सही है, कान तो ऐसे ही पकड़ने चाहिए, बट हम लोग ऐसे ही पकड़ते हैं। आज म्यूचुअल फंड सबसे ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है। हमारा कहाँ पे निवेश हुआ है आप 15 दिन में हर रोज 15 दिन में देख सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या डिलीवर करेगा, कैसे डिलीवर करेगा, क्या प्रोसेस करेगा, इसका पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट है। नाउ रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि हम सारे रिस्क फैक्टर लोगों को डिस्क्लोज करें, हम लोगों को गुमराह नहीं करें। और कुछ हद तक रिटेल निवेशक में ऐसी भावना है कि आप मुझे एक अश्योरेंस दे दो, एक गारंटी दे दो, फिर वो सच हो झूठ हो उससे कोई मायने नहीं पड़ते। आई एम श्योर आपको कितने एसएमएस आते होंगे जिसमें लिखा है आज आप 10,000 रुपये दीजिए और फिर जिंदगी भर 13,000 रुपये लेके जाइए। किसी ने ये नहीं लिखा है कि 10,000 रुपये आपको कितने महीने देने हैं और 13,000 रुपये कब से चालू होंगे, बट सिर्फ यही लिख दिया है। तो लोगों को विश्वास इस तरह के बहकावेपन में आ जाता है। हमारे रेगुलेटर ने कहा कि ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, आप ट्रांसपेरेंटली पूरी बात बताइए, रिस्क फैक्टर क्या है वो बताइए। इससे आज नहीं तो कल लोगों को समझ आएगी और विश्वास आएगा।
जैसा मैंने कहा, हमारी बिरबल की खिचड़ी है, पकने में समय जरूर लगेगी, लेकिन खिचड़ी पक्की अच्छी बनेगी। अगर मैं चाहूँ तो शॉर्टकट ले सकता हूँ, लोगों को गुमराह करके, लोगों को गलत आश्वासन देके अपने प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, बट वो तो 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होगी। एक सवाल जो बार बार लोगों के दिमाग में आता है, और सेबी रेगुलेटर का आपने जिक्र किया, मुझे सेबी के एक्स रेगुलेटर का एक फेमस स्टेटमेंट भी याद आता है कि उनका कहना था कि भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मोनोपोलीज आ रही हैं, 3-4 म्यूचुअल फंड्स बाद पूरा का पूरा मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड नहीं है। फेमस कोट ही हैज सेड, आई थिंक प्रोबेबली इन सम ऑफ द मीटिंग्स। हम देख रहे हैं वैसे भी बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स में डुओपोलीज और मोनोपोलीज आ रही। हाउ हेल्दी इट इज दैट entire in mutual fund industry has been, majority of the AUM has been controlled by very few mutual funds which may have more risk than a diversified kind of market. ये कितना आपको लगता है, ये इसका रिस्क कितना बड़ा है? सो क्रिकेट में तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली, ये 4 ही थे। आज विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है। 140 करोड़ों में मैं 14 विराट कोहली और 14 रोहित शर्मा तो पैदा नहीं कर सकता। यूएस जैसी मार्केट जो हमसे इतनी बड़ी है, वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है, ब्लैक रॉक हुआ या फिडेलिटी हुआ या स्ट्रीट हुआ या वैनगार्ड हुआ, वहाँ पे भी कुछ बड़े दिग्गज ही पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। क्या हमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड बनाने चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओपन कंपटीशन, एंड सेबी आज लाइसेंस तो दे ही रही है, लेकिन सिर्फ वही म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगे जिनके पास इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होगा, जिनके पास परफॉर्मेंस होगी और जो निवेशकों के सपनों को पूरा साकार कर पाएगा। अब कंपटीशन में एक आदमी रेस जीतता है, 5 आदमी रेस जीतता है, ये तो दौड़ने वालों के ऊपर है। As long as competition is open and race is open, it doesn't matter who wins. And regulator ने बड़े म्यूचुअल फंड के लिए कोई ऐसी बेनिफिट नहीं दी है जो छोटे म्यूचुअल फंड के पास नहीं हो। इनफैक्ट छोटे म्यूचुअल फंड्स को कुछ बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ हायर एक्सपेंस रेशियो, but I will not call it benefit. It's a level playing field. May the best person win. Before I come to the last question, I would like to open floor for some questions. अगर हमारे पास कोई सवाल हो, माइक्स तैयार हैं। कोई अगर सवाल पूछना चाहे नीलेश जी से, yeah, there's a gentleman on the back. वहाँ माइक पहुँचा दें बीच में। Hello sir, it's a great pleasure listening to you every time. Since you are a proponent of mutual funds and SIP, how has the integration of these products along with other fixed income products, do you have any insights on how these work together to create that trust, to create that momentum with what you're looking at? So one thing which we haven't done as well is to push SIP in hybrid fund. We haven't been able to create products where, you know, mass market will invest because it will be less volatile and yet it will deliver better return. Balance advantage fund, debt MIP, balanced fund, these are all the beginnings. But clearly we have to ensure that it reaches out to common men. And धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, डिजिटल ऐप के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो hopefully we will be able to expand this investor base from 3.5 crore to let's say 30 crore. And वो सारा तो equity से नहीं आएगा. Majority of Indians are fixed income oriented. So equity के जायके वाला fixed income, that is the future. But what is the tipping point that people sitting on the fence, what according to you has... लगे रहो मुन्ना भाई. I have to keep on hitting you till such time you get bored of me and start giving me some money. एक बार आप अंदर आ गए, फिर आपका experience अच्छा रहेगा, उसका तो हमें पूरा भरोसा है. Thank you so much. Gentleman at the back. Up, please introduce yourself. Yeah.
Myself, Prashant Purohit. I am from JM Financial Private Equity, so from a financial services background. But आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली नीलेश जी. बट मैं पहले के पैनलिस्ट को भी सुन रहा था जो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, और हम आज बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में. आई थिंक क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल स्टडीज़ रही हैं, उसी में काम कर रहे हैं एट्सेट्रा. समरी यही है, ऐसा तो नहीं है कि जिसको नॉलेज ज़्यादा है वो ज़्यादा पैसे बना रहा है. मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो 200-300 करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरली सही तरीके से उसको ग्रो कर रहे हैं. जो मेरा समरी है 16-17 साल का, उसका मैं एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा कि पैसा पैसे को तो बनाता है, लेकिन उस पैसे को कैसे किस किस चीज़ों में डालना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आज हम जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड की, तो मेरा क्वेश्चन है, हम प्रोडक्ट्स तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन उस बंदे को किस प्रोडक्ट में कितना डालना चाहिए वो एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर बैठता है तो हज़ारों क्वेश्चंस पूछता है. आपकी उम्र कितनी है, सेम उम्र का भी आदमी हुआ, परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, सबकी इनकम अलग है और सबके गोल्स अलग हैं. तो आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि अब फिनटेक इतना बड़ा हो चुका है, अगर एक ऐसा ऐप रहे जिसमें वो आपको आपकी भाषा में सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है, सारे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर पूछता है, और फिर अब वो आपको कहता है कि आप इतने इतने अमाउंट इस प्रोडक्ट में डालिए. वो प्रोडक्ट्स भी गवर्नमेंट ने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की बात ले लें, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं, हर इंश्योरेंस कंपनी बहुत अलग अलग फीचर्स बना रहा है. गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट बना दिया और बोला कि ये प्रोडक्ट सब इंश्योरेंस कंपनीज को बेचना सर है. तो ये इस तरह की चीज में गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रहा है? See, is government the best manager? अगर वो बेस्ट मैनेजर होता तो एयर इंडिया आज प्रॉफिट करता होता. बट वी नो दैट गवर्नमेंट हैज मेनी ऑब्लिगेशंस एंड हेंस दे आर नॉट द नेसेसरीली द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर. आप काउंटर कर सकते हैं कि देखिए वैक्सीनेशन में तो गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया, बट अगर गवर्नमेंट हर चीज करने लगे, साइकिल से लेके स्कूटर से लेके ब्रेड से लेके स्पेसक्राफ्ट बनाने लगे, तो क्या गवर्नमेंट हर चीज डिलीवर कर पाएगा? आंसर इज नो. इसके लिए जरूरी है कि एक मार्केट मैकेनिज्म चले. आपने जिस प्रकार के प्रोडक्ट की बात की उसकी जरूरत होगी तो अपने आप मार्केट वाले कुछ न कुछ ऐसा खड़ा कर देंगे. आज की तारीख में भी हमारा एक असेट एलोकेटर प्रोडक्ट है, 17 साल से चल रहा है. पिछले 10 सालों में इसने लोगों का पैसा 4 गुना कर दिया है. यहाँ पे आप अपना पैसा दे दीजिए और फंड मैनेजर अपनी वैल्यूएशन के अनुसार डेट, इक्विटी और अब सोने में निवेश करता है. 10 साल में 4 गुना पैसा कितने लोगों ने किया है? ये एक ही फंड आपकी सारी रिक्वायरमेंट मीट कर सकता है. बट परफॉर्मेंस अकेले से तो पैसा नहीं आता. मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, मुझे एक ट्रस्ट चाहिए जो लोग मेरी ब्रांड के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर करे. तो हमारे लिए तो लगे रहो मुन्ना भाई है, 17 साल से काम कर रहे हैं, एक मकाम तक पहुंचे हैं, और 30 साल काम करेंगे तो जहां आप सोचते हैं वहां पे पहुंच जाएंगे. हाँ, नेक्स्ट सवाल. सरकार का के फंड मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस मिक्स रहे हैं. हमने यूटीआई का एक दौर देखा और उसके बाद दूसरे चैलेंजेस देखे. सो इंडिया गवर्नमेंट्स जनरली regulators are doing well to manage the market. I think the fund managers are getting innovative day by day, bringing very new kind of products for investment. That sir, आपका सवाल. Audio please. Yes sir. Hello Nilesh, always great to hear you. मेरा सवाल ये है कि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना विश्वास है लोगों को, एंड उस विश्वास का प्रतीक है ये जो 12,000 या अब शायद 13,000 करोड़ की मंथली सिप जितनी भी मार्केट में थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, एक लगातार सिरा रहा है. तो इक्विटी में तो काफ़ी हमने म्यूचुअल फंड्स ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, काफ़ी इन्वेस्टर्स का विश्वास हासिल कर लिया. रिटेल इन्वेस्टर का हम लोग डेट में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि डिटेल डेट में, प्योर डेट की मैं बात कर रहा हूँ,
तो इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, प्राइमरीली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या वो हैं, अभी समझो थोड़ा थोड़ा काम उसमें हो रहा है, लेकिन उसमें और ज़्यादा काम हो सकता था क्या? क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ मिस्ड अ ट्रिक? और आगे क्या लगता है आपको कि वो बड़ा म्यूचुअल फंड के जरिए होगा क्या, कि एक जो गवर्नमेंट का डिपेंडेंस है ऑन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री या द पेंशन इंडस्ट्री, वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? सो हर्ष भाई, अगर मुझे आपके सारे प्रश्नों के जवाब मालूम होते तो मैंने डेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर ली होती। ऑब्वियसली जैसा आपने कहा, कहीं पे हम लोग कुछ चीज़ें मिस कर गए हैं। एक चीज़ जो पहले थी वो केवाईसी थी। आपको सोना खरीदना है, रोकड़ा डाल के भी आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में केवाईसी करनी है, बेचारा बंदा कभी यहाँ पे आएगा ही नहीं। दूसरी हमारी रीच की थी। आज म्यूचुअल फंड चलो बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में घर घर में घुस गया है, बट आज भी बम्बई के अंदर हम धारावी नहीं पहुँचे, शायद दहीसर उतने नहीं पहुँचे जितने पहुँचने चाहिए। तो एक रीच भी बनानी पड़ेगी। तीसरा, एक जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें देयर इज इम्प्लिसिट गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लोग बहुत कंफर्टेबल है बैंक में निवेश करने के लिए। आपने अभी एसवीबी में देखा होगा कि वहाँ पे मनी मार्केट फंड या फेड रेट 4, 4.5, 5% है और बैंक डिपॉजिट रेट 1.25% है। इतना कम रिटर्न देने के बाद भी अमेरिकन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसवीबी जैसी बैंक से भी पैसा अपने मनी मार्केट फंड में शिफ्ट नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंकों के प्रति लगाव है वह भी हमारे आड़े आ रहा है। एंड कुछ गलतियां हमने भी की होगी जिसे सुधारना जरूरी है। तो अगेन लगे रहो, मुन्ना भाई है, फाइट मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। जो 2018 में हमने गलती की क्रेडिट रिस्क फंड में, उसे वापस मत दोहराओ। लोगों का अनुभव अच्छा करो, तो होपफुली आपने जैसे चाहा वैसे गाड़ी चल निकलेगी। मेरा आखिरी 2 सवाल और, क्योंकि इसके बाद हमें सेशन वाइंड अप करना है। एक बड़ा पैराडॉक्स जो है, सरकार को कर्ज चाहिए और वो कर्ज स्मॉल सेविंग से आता है। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट के हैं वो इन्वेस्टमेंट को इनेबल करते हैं या उसको डिस्करेज करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सरकार को स्मॉल सेविंग से बड़ा कर्ज लेती। लास्ट ईयर भी सरकार ने बड़ा पैसा स्मॉल सेविंग से बजट फाइनेंसिंग में लिया। हम एक इस डिलेमा में हैं कि गवर्नमेंट जब अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट हाई रखेगी, जिससे बैंक्स भी डिस्करेज होते हैं और बाद में हम एक किस्म की एनोमली देखते हैं, तो फिर सेविंग्स का जो इन्वेस्टमेंट का कल्चर है वो कैसे होगा? ये 2 डायकोटोमी हम लगातार देखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस स्मॉल सेविंग्स। अब नाउ आजकल हम देख रहे हैं स्मॉल सेविंग्स के इंटरेस्ट 7.5-8% है। अगर हम फिक्स्ड इनकम सेवर की तरफ से देखें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट उसे भी ये नहीं पता है कि ये चांदनी लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये चांदनी साल भर बाद कम हो जाएगी और हम वापस फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे 4-5% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो सरकार की अपने काम करने के तरीके के कारण जो उसके कर्ज की ज़रूरत है वो बाजार में इंटरेस्ट रेट अप रखती है और इन्वेस्टर को उस बात के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करती। या आपको लगता है कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स विद हाई रिटर्न्स शुड ऑलवेज बी देयर वेदर दे आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट? एक्चुअली गवर्नमेंट ने सब्सिडाइजिंग them. ये डिलेमा कैसे हल हो? जो फाइनेंस का मार्केट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही सिंपल है। दोनों चीज़ें इसमें बन जाती हैं। हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि मार्केट सर्वोपरि रहे, लेकिन सरकार के पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। स्मॉल सेविंग्स के जरिए वो रिटायर्ड लोगों को और कुछ और लोगों को ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए स्मॉल सेविंग्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 1-1.5% ज़्यादा रिटर्न देते हैं। वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव लोगों को ज़्यादा रिटर्न देना है, नहीं कि अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना। और इसीलिए एक इक्विलिब्रियम रखना जरूरी है। 65-70% आप मार्केट बोरोइंग करिए, 30-35% आप बाकी चीज़ों से फंडिंग करिए। मेरे हिसाब से जो सरकार के हाथ में है और वो जो उतनी अच्छी तरह से नहीं कर रही,
वो है मनी का सर्कुलेशन। आज हमारी इकोनॉमी में करेंसी इन सर्कुलेशन दूसरे देशों के सामने ज़्यादा है, जबकि आप देखेंगे कि आजकल तो छोटी से छोटी पेमेंट QR कोड पे हो जाती है। तो ये कहाँ पे दोहरा आ रहा है? एक साइड पे हम QR कोड से डिजिटल पेमेंट में दुनिया में 40-45% मार्केट शेयर रख रहे हैं, और दूसरी साइड पे करेंसी इन सर्कुलेशन एज अ परसेंटेज GDP हाईएस्ट है। अगर हम इस करेंसी इन सर्कुलेशन को कम कर पाए तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, सरकार के पास सेविंग्स भी बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, ब्याज की दरें भी कम होगी। और जैसे एक नदी के ऊपर आप बांध नहीं बांधे तो पानी कैसे बहता रहेगा, वैसे ये जो बांध बंधे हैं ब्लैक मनी के, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल अंत में एक आखिरी सवाल जो हमसे बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम से पूछते हैं कि साहब एक ही जैसा फंड है, एक ही फंड है, लेकिन दो फंड मैनेजर्स उसको अलग अलग मैनेज करते हैं और एक फंड अच्छा रिटर्न देता, दूसरा फंड रिटर्न नहीं देता। ये सवाल हमारे पास लगातार आते हैं कि वही कैटेगरी है, वही उसी पर्टिकुलर कैटेगरी का। इस पैराडॉक्स का जवाब आपसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कोई नहीं दे सकता। आई थिंक यू नो इट बेटर देन। सो क्रिकेट की टीम में कभी कोहली खेलता है, कभी रोहित शर्मा खेलता है, कभी चेतेश्वर पुजारा खेलता है, कभी कभार सारे खेल लेते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ये डिसाइड करिए, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या सब है, कभी ना कभी कोई ना कोई चल जाएगा, मैच आप जीतते रहेंगे। बट ये डोंट एक्सपेक्ट करिए कि मैं हर बार सारे खिलाड़ी खेलने चाहिए, वो नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। जैसा हमने कहा था कि नीलेश शाह से बात करना, इनको सुनना हम सब के लिए एक लर्निंग होती है, एक इंस्पिरेशन होता है। सो बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, आई थिंक ओवर टू गौरव एंड प्रियंका फॉर द मोमेंटो प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। और नीलेश भाई का एक ही मंत्र, लगे रहो मुन्ना भाई। और एक बार जोरदार तालियों के साथ नीलेश भाई का स्वागत किया जाए। बहुत शानदार आपने बातें बताई सर, बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए स्लो और फास्ट ट्रेन के। और हम कह सकते हैं कि भारत में आप निवेश क्रांति के लीडर हैं, और वाकई हमारी समझ आपको सुनने से बेहतर हुई है सर। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इससे पहले आगे बढ़े, मैं TV9 के MD एंड CEO वरुण दास जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज आप मंच पर आएं और नीलेश शाह जी को सम्मानित करें, प्लीज सर। और इस बीच हम ये बताते रहे कि Money9 का ये फाइनेंशियल फ्रीडम सम्मेलन Money9 के मोबाइल ऐप पे, Money9 और TV9 नेटवर्क के YouTube और Facebook चैनलों के जरिए देश भर में बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। आई थिंक गौरव, मुझे यहाँ पे अपोलोजाइज करना चाहिए नीलेश जी से। नीलेश जी को मैंने कहा कि भाई ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मुझे लगता है भाई ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं है, नीलेश सर है भाई ऑफ निवेश। भाई ऑफ निवेश, बिल्कुल। और वाकई निवेश की समझ बेहतर बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की काफी बातें हुई हैं, और म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी जो नीलेश जी से हमें समझने को मिली, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। साइकिल्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा मार्केट में, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको अच्छा एक धीरे धीरे खिचड़ी पकेगी। निवेश की खिचड़ी, रिटर्न की खिचड़ी धीरे धीरे पकने वाली है। तो थोड़ा सा संयम, धैर्य के साथ आपको उसे पकाना है, इंतजार करना होगा। तुरंत जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है ना, वो म्यूचुअल फंड हमको नहीं देने वाला है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसमें निवेश करते जाइए और फिर मिलेगा आपको रिटर्न। तो लगे रहो मुन्ना भाई, आपने ठीक कहा है गौरव, ठीक पकड़े हैं आप, मैं ये कहना चाहूंगी। नहीं, लगे रहना ही है, हम सबको लगे रहना है। बिल्कुल, जैसा कि Money9 भी लगा हुआ है आप सबके लिए एक ऐसा माहौल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट करने का, ताकि आप भी अपनी समझ को और बेहतर कर सकें। Money9 का मोटो यही है कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, और फाइनेंशियल फ्रीडम समिट के जरिए हमारी यही कोशिश है कि अलग अलग दिग्गजों को एक मंच पर लाएं और आपके लिए एक ऐसा इंक्लूसिव समिट हो जहां से आप कुछ लेकर जाए, कुछ समझ कर जाए। इनफैक्ट इस कमरे में जितने भी लोग हैं, ये ऑलरेडी अपने अपने लेवल पर वो काम कर ही रहे हैं, और उनको एक साथ यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि हम उनको बता सके हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और तभी हम ये फिनेंशियल इंक्लूजन की जो बात कर रहे हैं, हम उस हर जन जन तक ले जाएंगे। हर घर में सिप होगा, हर घर में म्यूचुअल फंड होगा, बहुत ज़रूरी है ये। हम साथ साथ हैं और हम साथ 8 हो।
ये पूरी कोशिश है, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात हो रही है, इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात हो रही है, फिनटेक्स के बारे में बात हो रही है, पूरी इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज यहाँ पर हैं, तो बस एक थोड़ा सा और टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं स्टेज बिल्कुल सज रहा है और एक बहुत बड़ा पैनल यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज यहाँ पर आने वाले हैं, जिनसे अभी हम बात करेंगे और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझेंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की डिमांड समझेंगे, रेगुलेशंस को समझेंगे, तमाम वो चीज़ें, और कंज्यूमर का जो एक पर्सपेक्टिव है उसको भी यहाँ ज़रूर रखेंगे। एब्सोल्युटली वो नाम हैं जिन्हें आप अक्सर टीवी में देखते हैं और हम भी देखते हैं टीवी में, पर आज हमारे मंच पर वो आए हैं, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सब ने अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाला मनी 9 के लिए और हमारे देश के हर उस निवेशक के लिए जो निवेश करना चाहता है लेकिन समझ नहीं रहा है कहाँ निवेश करें। जी गौरव। बिल्कुल, तो नीलेश शाह जी के विचार सुनने के बाद म्यूचुअल फंड पर अगले सत्र की भूमिका बन गई है और ये सत्र म्यूचुअल फंड्स को लेकर ही है। क्या है म्यूचुअल फंड की अगली मंजिल? What next for mutual funds? और इस सेशन को मनी 9 के कार्यकारी संपादक शुभम शंखदर के साथ टीम की म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ हिमाली इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट पैनल के साथ वो हमारे मंच पर जुड़ेंगे। आइए शुभम और हिमाली प्लीज मंच पर आइए। और यहां पर हिमाली और शुभम आप तो आइए ही, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ मंच पर इस सेशन के लिए जुड़ रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के ईवीपी संदीप शर्मा, निपॉन म्यूचुअल फंड के सीबीओ अश्विनी दुग्गल, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आनंद नेवतिया और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हेमंत रुस्तगी। मैं आप दोनों मॉडरेटर से आग्रह करूंगा कि आप सभी एक्सपर्ट्स को प्लीज मंच पर लेकर आएं और उनको यहां पर सीट दिखाएं। जब तक हमारे मेहमान सेटल हो रहे हैं, आपके लिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि मनी 9 यहाँ क्या कर रहा है और क्या करने वाला है आगे जाकर, और प्ले करते हैं एक वीडियो आपके लिए जो आपको बताएगा कि मनी 9 का संदेश क्या है। Meet Sunita. She is a homemaker. Sunita is also a savings guru. She is typical of the great homemaker who is great at handling money. In fact, the saying in her house is that Sunita is like the RBI when it comes to finances. But Sunita has a problem. She's good at saving money but struggles with investing it wisely. And she is not alone. The trend of focusing on savings rather than investing is common in Indian families. We all know of families that simply put away their savings in a bank or buy gold. This could be because most Indian families have a very small monthly income. A personal finance survey that we at Money9 conducted shows that only 22% of Indian households invest. Most of these investors are those with high monthly income. Our survey showed that 45% of families earning more than 50,000 rupees per month invest, and only 13% of families earning less than 15,000 rupees per month are investors. And so, it is important to analyze this aspect of India's financial freedom. And that's exactly why the Financial Freedom Summit, hosted by TV9 Network and Money9, will do. तो अब स्टेज आपके हवाले है शुभम शंकर और हिमाली। आज म्यूचुअल फंड पर एक खास डिस्कशन हमारे इस कॉन्क्लेव का एक बहुत अहम हिस्सा है। ओवर टू यू शुभम। शुक्रिया प्रियंका, शुक्रिया गौरव। और जैसा नीलेश शाह जी ने कहा और पिच सेट कर दिया ये म्यूचुअल फंड के डिस्कशन के लिए, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बीते 10 साल में ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है। 10 साल में AUM 5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया। 8 लाख करोड़ से हम 40 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए। 40 लाख करोड़ जितना भारत सरकार का एक साल के बजट का आकार होता है, उतना हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM है। जैसा गौरव ने बताया, हमारे साथ एक्सपर्ट का खास पैनल जुड़ गया है। मैं संदीप सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगा जी। मेरा पहला सवाल सीधे म्यूचुअल फंड की पहुंच को लेकर है। जैसा नीलेश सर ने भी कहा, हम इससे पहले भी देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की जो पहुंच है सर, वो अभी Tier 2 सिटीज़ तक उतनी नहीं, और Tier 3 में आप पहुँचे तो वो बिल्कुल नहीं है। आप बात करें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ तक तो म्यूचुअल फंड लोग जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इन शहरों से, म्यूचुअल फंड कहीं खो जाता है। सफलता की इस कहानी में ये शहर क्यों गुम हो जाते हैं सर? देखिए, हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम सिटीज़ को डिवाइड करते हैं टॉप 30 और B30, बिलो 30। तो आई थिंक अगर मैं आपको बताऊं 40 लाख करोड़ का जो AUM है, ये जो B30 से AUM आता है वो तकरीबन 17% है। 40 लाख करोड़ का सिर्फ 17% AUM B30 से आता है। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है।
मगर हम क्या देख रहे हैं कि ये बदल रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत फोकस कर रही हैं छोटे शहरों पे। छोटे शहरों में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड, हमारी थोड़ी यूनिक सिचुएशन है कि हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन रीच है। माइक थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए। ओके, सो तकरीबन 22,000 ब्रांचेस स्टेट बैंक की हैं। तो अगर आप हमारा एयूएम को डिवाइड करें तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे अगर इंडस्ट्री के अंदर 40 लाख करोड़ का एयूएम है, उसमें से इक्विटी का एयूएम तकरीबन 20 लाख करोड़ का है। तो उस 20 लाख करोड़ में 25% एयूएम आज की डेट में इंडस्ट्री लेवल पे B30 से आता है। मगर स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में तकरीबन 40% एयूएम जो है वो B30 से आता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। अगर आप देखें इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन, अगर एक हम LIC की बात करें तो उनके पास तकरीबन 20 लाख एजेंट हैं। अगर ये आप हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक्टिव एजेंट्स बहुत कम हैं। अगर मैं SBI की बात करूं, हम लार्जेस्ट एसेट मैनेजर हैं, तकरीबन 7,10,000 करोड़ हम मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड में। हमारे पास तकरीबन 70,000 इम्पैनल्ड इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, MFDs जिन्हें हम बोलते हैं। अब इन 70,000 लोगों में महीने के अंदर हम सिर्फ लेस देन 10,000 पीपल को ब्रोकरेज देते हैं। तो एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है कि लोग बहुत कम हैं इस इंडस्ट्री में, पर पोटेंशियल जो है छोटी लोकेशंस का बहुत ज़्यादा है। Mr. Ashwin, sir, I want to ask, sir, passive mutual funds in the last 1 year have grown tremendously with the launch of many new passive funds. Sir, according to you, can passive investments like ETF and index funds dent the share of the active funds? What is the future of the passive funds going ahead? So, let me give you a little context. So, I will start जो नीलेश जी ने एक चीज़ बोली थी अपने स्पीच में, वो ये था कि मार्केट एक्सपेंशन इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली वन एसेट क्लास। ठीक है, इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, पर उसके अगर आप सब ग्रुप्स देखेंगे तो उसमें बहुत पार्ट्स हैं, उसमें से एक पैसिव और ETFs भी हैं। बट इफ़ यू रियली सी द पैसिव इन्वेस्टिंग, okay, world over is not a very old phenomena. It started in 1995 in America. At that point of time, late 2000s में करीब ये 3% था in US of the US to the total AUM of the US mutual fund industry. Right. 2005 it grew to 14%. Only now in 2023 has it grown to a substantial amount, which is about 41%. So it has taken that 4 decades for it to grow. So in my personal opinion, one, passive investing, which is ETF and index funds, is basically a sign of a matured market. Correct. And if you really see in India today, last year, करीब 6% जो आपकी household savings है उसका कोई mutual funds में आया है. Right. Right. The others have been dominated by banks and insurance companies, so on and so forth. So we are still, as Sandeep said, Nilesh ji said before, we are still scratching the surface, okay, of the mutual funds as a growing industry. So potential is huge. So in India, still there is a lot of potential for active investment. There is a lot of space for active fund managers to grow. अब इंडिया में really if you look at passive investing, 2020 में थोड़ा accelerate हुआ है. Right. Last 1 year it has been a major growth. So today is about close to 6 lakh crores. About करीब आपका 16-17% है of the total mutual fund AUM in India. Right. Right. And the most popular, modes of passive investing, which is ETFs and index funds, वो हैं broad market indices. Right. जैसे आपका Nifty 50 हो गया, Nifty 100 हो गया, या mid cap index हो गया. Okay, so that is where we see most of the popularity. In recent times, another category जो नीलेश जी बोल रहे थे, debt fund को हमें popularize करना है. Okay, एक दूसरी category काफी popular हुई है, which is your target maturity funds. Correct. Okay, which are the roll down products. Very quickly, it has scaled to a size of about 1.2-1.3 lakh crores. Now, reason that we were coming off a period of relative volatility, okay, low interest rates, and thereafter 2018 August we saw
the interest rates started to turn, led by the US Fed, inflation, etc. और ये क्या है जो आपके TMFs हैं, they offer some sort of visibility of returns to investors. So they have become popular. So I think where we, in my opinion, passive investing or active will coexist in India. Right. Okay, I think active investing will still dominate, especially in the mid-cap and small-cap segments where there is substantial leeway or headway available for outperformance. And even if you look at long-term averages, I think the active still continues to do well. But yes, I think the core of money allocation is asset allocation. So very clearly, it should be part of your asset allocation portfolio. So many times people think that passive funds are risk-free. Do you think so? Is that the popular, because it's No. In investment, nothing is risk-free. Even in banks, we've seen that time and again. Okay, as Nilesh mentioned, the three banks in the US, and so there is nothing risk-free. I think investors should very, very clearly, one, seek advice from competent authorities. Secondly, they should themselves be aware, because what is passive investing or index fund or ETF? An ETF or index fund is tracking an underlying index. Right. Right? So if it is Nifty 50, it is if it's an ETF which is tracking Nifty 50, it is made up of the 50 companies that are part of the Nifty index. Right. Right? So inherent risk and reward that any equity investment that gives you by investing in these companies or funds will be associated with the ETF or index fund which is tracking that respective index. अगर आज आपका pharma index है, banking index है, it is tracking the underlying banking or pharma companies that are part of that index. Right. Right. So risks will continue to be similar, except that it is tied to the collective market wisdom that is associated with that particular index. अगला सवाल आनंद सर आपसे है मेरा। आप फंड मैनेजर हैं एक म्यूचुअल फंड में, और मैं यही जानना चाहता था, रिटेल निवेशक जो हैं उनके दिमाग में हमेशा एक ये सवाल होता है कि अच्छा फंड मैनेजर कैसे चुनें? चुनना ज़रूरी भी है, या आपको लगता है कि नहीं स्कीम को देखिए, फंड मैनेजर को चुनना इतना ज़रूरी नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, या है, और अगर है तो फिर उसको कैसे चुना जाए? So fund manager choice और selection should be there always. आप जब भी कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, but it should not be in isolation is what I feel. आप जब भी कोई स्कीम चूज़ कर रहे हैं, आपको वो फंड हाउस का एक स्ट्रक्चर देखना चाहिए, प्रोसेस कैसा है, what is the broad philosophy of that particular fund house. उसके बाद आप आइए into the individual schemes कि आपको कौन सी स्कीम पसंद है, and then you see कि okay this fund manager is actually following the right process. उनका थोड़ा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए. Not always a track record, as we keep saying, is reflection of future. Right. But it does help. आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह ये फंड मैनेजर फंड मैनेज करते हैं. So from my perspective, as a fixed income fund manager, जब मैं fund manage करने जाता हूँ, तो my motto is very simple. Don't try to be, trying to create an additional extra alpha by putting a small risk in the portfolio. A fixed income fund, people come and invest broadly to ensure the safety of money and a good return. So that alpha creation should not be a key or the only motive for the fixed income fund manager, is in my thought the right way to look at fund management process. Right. Mr. Hemant, so when it comes to saving or investing money, today most Indians still prefer traditional financial products like fixed deposit, PPF or gold. According to you, what can the mutual fund industry do today to shift the investor's perspective to invest towards a better alternative such as mutual funds? Well, Himali, I would say I think I totally agree. A significant majority of Indian investors are still investing in traditional options. But I think उसको important है कि हम उसको थोड़ा perspective में रखें. Correct. अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने देखी है इंडस्ट्री में. हमने बात की कि हमारा जो AUM है वो करीब 40 लाख करोड़ है.
अकाउंट्स हम देखें तो करीब 14.5 करोड़ हैं। मतलब अगर हम यूनिक इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो करीब 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ओवर द ईयर्स इंडस्ट्री ने सक्सेसफुली, ये जो इन्वेस्टर्स थे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते थे पैसा, उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू किया। अब अगर इंडस्ट्री को चाहिए कि, क्योंकि बट ये भी सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है अभी भी, अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं हमें ये जो इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाते हैं उनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फोल्ड में लाना पड़ेगा। उसके लिए 3 एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है इंडस्ट्री ने काफ़ी काम भी किया है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके उस पर काफ़ी काम होना होगा। एक तो ये कि आपको परसेप्शन इशू को टैकल करना है। परसेप्शन इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो परसीव करते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको लगता है ये बहुत रिस्की है। तो कहीं ना कहीं वो जो माइंडसेट चेंज करना है, एक तो वो इशू है। दूसरा, जैसे संदीप ने भी कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन की रीच, जो म्यूचुअल फंड की जो रीच है काफ़ी बड़ी है, लेकिन उस पर अभी भी काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का यूज़। अगेन जैसा मैंने कहा तीनों पे काम हुआ है, लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग है वो है इन्वेस्टर्स का माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि हम उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो सालों साल शायद उनकी फैमिली में हमेशा ये कहा जाता है कि आप गोल्ड में पैसा लगाइए, रियल एस्टेट में पैसा लगाइए, आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाइए। तो वो माइंडसेट चेंज करना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं मुझे लगता है जिस पे इंडस्ट्री को काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो कुछ कॉन्सेप्ट को समझाना होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, बट मुझे लगता है अभी भी बहुत काम होना बाकी है। जैसे हम बात करते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न, बहुत कम निवेशक हैं हमारे देश में जो रियल रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबका फोकस होता है ग्रॉस रिटर्न पे, और यही कारण है कि वो एफडी वगैरह में पैसा लगाते हैं। 6-7% का रिटर्न है, उनको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जब आप लोगों को समझाएंगे कि भाई अगर आपने 10-15 साल भी पैसा लगाया तो पैसा नंबर्स में तो बढ़ गया लेकिन वैल्यू में नहीं बढ़ा, शायद वैल्यू देखेंगे तो शायद जो 10 साल पहले था उससे कम ही होगी वैल्यू। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनको देखना है। दूसरा, उनको ये समझना है कि रिस्क क्या है। मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स हमारे देश में रिस्क किसको समझते हैं कि हमारी कैपिटल का कोई हिस्सा जाना नहीं चाहिए, और शायद वही कारण है कि वो कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कोई बड़ी एसेट लेनी है, तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है। जब आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो रिस्क टू कैपिटल वो बहुत कम हो जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं। अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन को देखें, पिछले 16-18 महीने से मार्केट में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं बना। अब जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो दिखता है कि मेरा पोर्टफोलियो या तो मिनिमल रिटर्न है या तो नेगेटिव रिटर्न है, तो फिर उनको सोच क्या आती है कि इससे तो मैं एफडी में बेटर था, कम से कम 6-7% रिटर्न तो मिलता। तो आई थिंक वो समझाने की ज़रूरत है। और चौथा, मुझे लगता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न। हम बात कर रहे थे कि डेट फंड्स हमारे देश में पॉपुलर क्यों नहीं है। वो आई थिंक वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम व्हाट नीलेश भाई सेड इज के हम एक इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि डेट में वॉलेटिलिटी क्यों। इक्विटी में समझ में आता है लेकिन डेट में वॉलेटिलिटी क्यों। ऐसा नहीं है कि डेट में पैसा नहीं आता। देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, जब इंटरेस्ट रेट हाई हैं, ऑलमोस्ट पीक पे हैं, तो देखिए उसमें रिटेल का पैसा आ रहा है। उससे पहले भी हमने देखा कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान में पैसा आता था। लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर मैं कंपेयर करूं, मान लीजिए दोनों एफडी और अगर मुझे डेट में दोनों में सेम रिटर्न मिलता है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड में कहीं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट चेंज करने के लिए ये 4 चीज़ों पे काम करना है, और बाकी जैसा मैंने कहा रीच पे काम करना है और टेक्नोलॉजी को काम करना है, बोथ ऑनबोर्डिंग करने के लिए और शायद वहाँ तक उनके साथ पहुँचने के लिए। तो ये कुछ एरियाज हैं मुझे लगता है म्यूचुअल फंड को पे काम करना है। Sir, as you said about the areas, so from where actually you start changing the perspective? Is it from the AMC level or from the financial advisor? Then there are wealth management, there are distributors. So according to you, who are the main people who would, be more proper to change this perspective? Because everyone have a different perspective. If I go to AMC, they will have different way of explaining me the product. Same thing if I go to CFP, they will have their own way. So according to you, from where the change should start from? हिमाली, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत ही एक ऐसा एरिया है जिस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। Right. इसमें बहुत ही पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत है। आपने कहा ये कौन करेगा, मुझे लगता है सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर करना होगा, और मुझे लगता है इसमें मीडिया ने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और मीडिया का रोल आगे भी बहुत ज़्यादा है इस बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए।
क्योंकि किसी के पास भी इतनी मैन पावर, इतने लोग नहीं है कि वो, क्योंकि हम हमारे कंट्री की अगर बात करें जोग्राफिकली इतना डिस्पर्स है कि वहाँ तक हर एक के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। लोकल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज उनको समझ में आता है, जिस तरीके से वो समझते हैं, तो सबको मिलके काम करना है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट चैनल्स हों, चाहे वो इंडस्ट्री हो, और जैसा मैंने कहा मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल है उसके अंदर, और ये ओवरनाइट नहीं होगा। It's going to take time, it will take years, it has taken years already. But like I said, it's very, very important for the industry and everyone, all the stakeholders put together to change the perception. ये अगर होगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ इंडस्ट्री का फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इट विल मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में जब आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, अगर इक्विटी फंड में या हाइब्रिड फंड में डालते हो, तो आपका जो रिटर्न है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, और पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल ऑप्शन से तो उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है। आई थिंक जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि लोगों का जो वेल्थ है वो क्रिएट हो, तो वो तभी होगा जब वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आएंगे। Completely agree, sir. Thank you so much for that insight. संदीप सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। अभी नीलेश सर आप इससे पहले हमारे साथ थे, उन्होंने लंबी अवधि में निवेश करना चाहिए, इसके लिए कई उपमाएं दी, लगे रहो मुन्ना भाई कहा, बीरबल की खिचड़ी कहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये कि जब वो आता है तो ये मान के आता है हाँ लंबे समय के लिए रहना है, लेकिन जब वो कोई इवेंट देखता है, अगर कोई ग्लोबल इवेंट अभी हमने देखा है, एसबीबी बैंक जैसा इवेंट देखा, या वो देखता है कि हाँ 19,000 की निफ्टी 17,000 आ गई और अपने एनवीबी चेक करता है, उसमें उसको नुकसान दिखता है, आपको क्या लगता है कि इन इवेंट्स को कितना उसे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे शांति से बस लगाते रहना चाहिए? सो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि द बेस्ट इन्वेस्टर इज द डेड इन्वेस्टर। तो अगर तो आप हर वीक देखेंगे कि आपकी एनएवी क्या है, ऊपर गई है, नीचे गई है, तो ऑब्वियसली हेमंत सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रेज किया, इन्वेस्टर बिहेवियर। अब इन्वेस्टर बिहेवियर अगर कंट्रोल हो जाए तो रिटर्न बनेगा, और अगर वो इन्वेस्टर बिहेवियर कैसे कंट्रोल होगा, उसके लिए कोई सारथी की ज़रूरत है, कोई साथी की ज़रूरत है जो कि कॉन्टिन्यूसली गाइड करता रहे इन्वेस्टर को। देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है एक कॉमन मैन के लिए अंडरस्टैंड करना, जब मार्केट में ऊपर नीचे इतना वॉलेटिलिटी वो देखता है, तो इसलिए कोई ना कोई एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, पर काफ़ी चेंज हम देख रहे हैं। अगर आप आज देखें मीडिया चैनल, हर जगह म्यूचुअल फंड के ऊपर सेपरेट प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सपर्ट्स लाइक हेमंत सर एंड सो मेनी अदर्स, दे कॉन्टिन्यूसली आर देयर ऑन चैनल्स। एसेट मैनेजर्स भी वहाँ पे आके बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ रहा है। सेबी ने भी बहुत फोकस किया है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ऊपर। एक सेपरेट फंड क्रिएट किया गया है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने उसमें से खर्चा निकालती हैं, और वो डेडिकेटेडली अक्रॉस द कंट्री इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बदलाव लाया है। सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो एमफी की एक कैंपेन चल रही है, म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। अभी वो कैंपेन जो है, मेरे हिसाब से जब आप धोनी और तेंदुलकर को रोज देखते हो, वो आके आपको टीवी पे बताते हैं म्यूचुअल फंड सही है और क्यों सही है, उसके कारण मासेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज, जो पहला भी सवाल आपने पूछा स्मॉलर लोकेशन से, हमें लग रहा है ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और हम वो चेंज हमारे फ्लोज में भी देख रहे हैं। सर एक सवाल यहाँ एड ऑन ये था कि आपने कहा इन्वेस्टर के बिहेवियर को लेकर, अपार्ट फ्रॉम दिस कैंपेन जो एमफी कर रहा है, क्या सरकार किसी तरह का सपोर्ट आपको लगता है कर सकती है, बजट के रास्ते, किसी तरीके के इंसेंटिव्स देके, क्या आपको लगता है वो रिक्वायर्ड है? इंसेंटिव्स हेल्प करते हैं, बट आई थिंक जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि सरकार किसी भी तरीके से हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट्स का एक अलग से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर बिहेवियर को चेंज करना कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं है। तो अगर बच्चा शुरू से ही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेगा तो डेफिनेटली जब वो बड़ा होगा और वो इन्वेस्ट करने लायक बनेगा, तो वो जो डिसीजन लेगा वो बहुत अच्छे डिसीजंस होंगे, वो सही डिसीजंस होंगे, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं वॉरेन बफे जब बोलते हैं कि इन्वेस्ट व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड कम आउट ऑफ द मार्केट व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। बट ये करना एक कॉमन मैन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे
इंट्रोड्यूस करना आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी हो गया इंडिया जैसी कंट्री के लिए. Mr. Ashwin, coming back to you. Sir, is digital the next phase of growth for mutual funds in India today? I think this resonates with what Sandeep and Hemanji mentioned. I think clearly the reach that is required today to reach out to the vast demography and geography of India. I think technology is one way, okay, that needs to be utilized and adopted by all key stakeholders in the mutual fund industry. चाहे वो AMCs हैं, चाहे वो distributors हैं, advisors हैं, and we are actually seeing that now beginning to change. Okay, so there are almost 70 crore internet users in India. More than 50% come from rural, right? You get a smartphone for $15, and most of the population now, young, old, okay, are now familiar with how to use the smartphone, right? And so that is now making a big difference, okay, into taking the message of mutual funds to investors far and wide. However, now what the change that we have seen specifically is post 2020 after COVID. Okay, we saw accelerated growth in the users, okay, in wanting to invest in mutual funds and doing transactions. Okay, so almost, Hemanji ne bola, about 3.5 crore unique investors, okay, out of which, or total 12-13 crore folios हैं आज के रेट में, उसमें करीब 2 crore पिछले 1.5 साल में आए हैं. Okay, 50% has come from fintech companies like Zerodha, Paytm, Grow, etc. Yes. Okay, of the total SIPs that happened today, and Sandeep, I'm sure I don't know if I'm getting this figure right, but I'm pretty much sure that I'm close to it. 30 to 40% of the total SIP folios are now coming through the fintech platforms, right? Both from AMC's internal platforms as well as external platforms. Okay, so yes, in terms of number of investors coming in, first-time investors coming in, young investors coming in, homemakers now taking to, investing into mutual funds, I think this is a big change which is underway. Right. Then you have another, dimension to it, okay, which is primarily, which is again where the AMCs have to play a constructive role. Okay, find a way, because a lot of times these investors who are coming through these fintechs are investors who are first-time investors, uninitiated, maybe smaller tickets, okay, but they need to be guided. Right. A lot of these are pure transaction platforms. So at the time of volatility, etc., okay, that is where that guidance has to come, where they can be guided and shown the right direction, and that is where we have seen some bit of volatility in terms of investors redeeming when the volatility in the markets increases. Correct. ये शो सर हम लोग जब कर रहे हैं, ये TV9 नेटवर्क के 7 से ज़्यादा भाषाओं में लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं. आनंद सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, एक दर्शक का सवाल है. वो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, बहुत सारी बातें सुबह से सुनी, वो मन बना रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में उतरना है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो दिख रहा है, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, लो ग्रोथ के नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, अगर उनको इस समय उतरना है तो कैसे बैलेंस बनाएं? इक्विटी में कितना डालें, डेट में कितना डालें, क्योंकि डेट भी अभी बहुत बुरा तो नहीं है, वहाँ भी नंबर्स अच्छे हैं, बहुत लंबे रहेंगे नहीं रहेंगे ये नहीं कहा जा सकता, बट बैलेंस क्या हो, वो संतुलन क्या हो जो इस समय के हिसाब से अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बेहतर दिख रहा है आपको? अच्छा तो डेट अभी बहुत है. अभी हेमंत जी ने कहा था अबाउट रियल इंटरेस्ट रेट, एंड आप अभी का अगर देखें जो इंटरेस्ट रेट है एंड जो अपना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, वो हिसाब से यू आर एक्चुअली गेटिंग अ वेरी हेल्दी रियल इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट इन्वेस्टमेंट्स. ऑल्सो इफ़ यू सी पास्ट 2 years और सो अपने डेट में रिटर्न्स नहीं आए थे, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड rates were at 5%, so आप relative छोड़िए, even absolute numbers were not looking very attractive to most investors. Right. But since last April में जब से rates बढ़नी चालू हुई हैं, debt has become a very attractive investment bet right now. There is a high inflation, but I said when an investor is looking to evaluate, he should definitely look at the real interest rate, and RBI is doing everything it can to bring down the inflation rate. तो आगे चल के
आपको इसमें नॉट जस्ट हाई एक्रूअल, आज आप अपने एक अच्छे हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो भी अगर आप लेते हैं विथ ऑल ट्रिपल एज, you will get a yield of at least about 7.5 to 7.75% for 2 years, 3 years, 5 years. इतने टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आ रहे हैं सब में. So as an absolute number also it's a very high accrual. आपको 7.5-8% अगर मिलता है on a very high quality portfolio, it's a very worthwhile investment to get into. I still feel कि दो हम लोगों ने काफ़ी अभी हाइक्स देखे हैं from RBI, it is going to be there for some more time. आपको रेट्स ऐसे ही दिखेंगे. So जब भी RBI रेट्स मे बी इन द नेक्स्ट 3-6 months जब भी रेट काटना चालू करेगा, you will also get an additional gain of mark to market, जो अपने capital gain बोलते हैं. So your high accrual will actually get a boost up with those accrual के ऊपर एक capital gain का boost up आएगा. So overall debt definitely is very attractive. Coming to equity, as I think equity we all know is a very long term game. आप अगर long term investment के लिए आप सोचते हैं, equity should always be a part of your portfolio. And in a country like India, which is growing at 6.5%, which you will not find anywhere else in the world, it will be criminal to not invest in equity. As for the balance कि क्या equity में कितना और debt में कितना is something I think we have all seen that depends a lot on your which stage of life cycle you are. So right. That is something which one should evaluate. But yes, in absolute terms, I think अब आपको debt investments थोड़े ज़्यादा करने चाहिए. थोड़ी volatility है. Equity has been giving very good returns for the past few years. And एक थोड़ा in equity we've seen there is always a time correction which comes. आपने कहा सर कि एज के हिसाब ये मैटर है, फैक्टर है. सही बात है कि डेट म्यूचुअल फंड में कितना एलोकेशन हो, बट मेरा सवाल ये था कि सर म्यूचुअल फंड के रास्ते ही डेट क्यों जाना चाहिए? क्या एडवांटेज है? क्यों ना पीपीएफ में चले जाएं? नौकरी पेशा है, क्यों ना वॉलंटरी पीएफ ज़्यादा कटवा ले? क्यों ना वो एफडी करा दे बैंक में? क्या एडवांटेजेस हैं अगर वो म्यूचुअल फंड के साथ आता है, स्पेशली फॉर डेट? सो एक तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि एक आपको जो कैपिटल गेन का बूस्टअप मिलता है वो आपको इन बाकी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलता है. सो आज 8% के ऊपर अगर आपको 6 महीने में या आपको सपोज 2% भी आता है इन 6 to 12 months डिपेंडिंग ऑन व्हाट ड्यूरेशन आप एक्सपोजर लेते हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न टू लुक एट. एंड इट नीड नॉट ऑलवेज बी कि ओनली दिस और ओनली दैट. आई थिंक कि डेट का अगर मेरा एलोकेशन 20% है तो मैं सिर्फ 20% में ही जगल करूँ. I can increase my debt allocation. I can continue to increase a little bit of allocation to your PPFs as you're saying. पर एक चीज़ और भी हो रही है कि with a larger contribution, slowly and slowly you are seeing that the government is trying to make that more taxable. So some bit of efforts are being made, I would say year on year basis, to bring most investment products at par. And I hope in a coming years we will see that almost all investment products are taxed at par or equally rather. So from that perspective मुझे लगता है कि हाँ आप ज़रूर थोड़ा बढ़ाएं वहाँ पर भी. It's not a bad option, but that is a lock-in product. आज आपको म्यूचुअल फंड में you have an option of getting your money the very next day. So there are multiple things that one should consider before making those allocations. Thank you, sir. Mr. Hemant, so this is very interesting question. So today SIP accounts totaled 6.28 crore as of Feb 2023. Further, the total amount collected through SIP is rupees almost 14,000 crore. So my question to you is how sustainable these numbers are in terms of ensuring that people do not redeem their schemes in panic whenever the crisis scenario hits. So what measures are mutual fund industry taking today to make these SIP numbers more sustainable going forward? Well, Himali, let me begin by saying that I feel very strongly that these numbers are not only sustainable, but I think we'll continue to see the growth in SIP numbers. If you see in the last 7 years, हम लोग करीब 3,300 crore की कोई SIP बुक थी, जो करीब करीब भी 13,700 crore पे है. Correct. तो we can see there is a significant growth. But I think growth सिर्फ numbers में नहीं है. I think important चीज़ है कि इसने एक significant change लाया है savings और investment attitude में investors की. पहले जो डर लगा करता था कि
मार्केट लिंक प्रोडक्ट में जाएंगे, वॉलेटिलिटी है उसको कैसे टैकल करेंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स ने रियलाइज़ किया कि एक तरफ तो उनके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आता है, दूसरा जो डर था उनका, जो उनको इक्विटी से दूर रखता था, वो SIP ने काफ़ी हद तक दूर किया है। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, समय लगा रहे हैं, उनको दिख रहा है कि हाँ, जब हम गिरते बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट नीचे आती है, उसका हमको फ़ायदा होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आई थिंक उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड में जो चेंज लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले क्या हुआ करता था, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत रैंडमली इन्वेस्टर्स स्टार्ट करते थे SIP में इन्वेस्ट करना। किसने 2000 किया, किसने 10,000 किया, बिना सोचे समझे कितने समय इन्वेस्ट करना। तो क्या होता था, एक तो कभी कभी उनको लगता था कि शायद हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं जितना हमने कमिट किया है, वो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी, क्योंकि आपका टाइम होराइजन क्लियर नहीं था, क्लियरली डिफाइंड नहीं था, जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती थी वो पैसा निकाल लेते थे या रोक देते थे। पिछले कुछ सालों में 2 चेंजेस हुए इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने अभी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को करना शुरू किया। तो उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं। और क्योंकि टाइम होराइजन क्लियर है, टारगेट क्लियर है, तो जब भी वॉलेटिलिटी होती है उनको पता है कि मेरी रिटायरमेंट में 15 साल बाकी है, मुझे आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और या बच्चों की एजुकेशन 10 साल दूर है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब से ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आया है, उसने काफ़ी एटीट्यूड को चेंज किया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हुई है वो है इंक्रीमेंटल SIP। पहले हम क्या देखते थे कि इन्वेस्टर्स SIP शुरू करते थे, जो अमाउंट किया अगले 5 साल 10 साल तक वही करते रहते थे। अब उनको समझ में आया कि हमारा कुछ पोर्शन इनकम का हर साल इन्वेस्ट होना चाहिए। तो वो जो इंक्रीमेंटल SIP है, और इन्वेस्टर्स ने रियलाइज भी किया कि इट्स मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू द कॉर्पस दैट दे कैन बिल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो आई थिंक द एटीट्यूड हैज चेंज, लाइक आई सेड, द वे दे आर लुकिंग एट SIP हैज चेंज। और जैसे मैंने पहले कहा, हमने बात किया कि द एफर्ट द इंडस्ट्री इज पुटिंग टू रीच आउट टू ऑल दीज इन्वेस्टर्स, you will see this number growing over the years. So I think I have no doubt in my mind that this is not only sustainable, but this number will continue to grow, and you will see SIP book much bigger than where it is today right now, maybe in the next 5 to 10 years. थैंक यू सर। समय की बाध्यता है सर, लेकिन एक सवाल संदीप सर आपसे, लास्ट सवाल। आप रिटेल सेल को लीड करते हैं, हेड करते हैं सबसे बड़े म्यूचुअल फंड के साथ। मैं ये जानना चाहूँगा बहुत लेमैन लैंग्वेज में, आपको क्या लगता है, आप जब देखते हैं आपका अनुभव क्या कहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कॉमन एरर ऐसे कौन से करता है जो जनरली आपको बार बार देखते हो और आपको लगता है नहीं यार ये तो नहीं करना चाहिए था फिर भी कर दिया? सबसे बड़ा जो मिस्टेक इन्वेस्टर करता है वो यही है कि वो बहुत क्लोजली अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता है। तो सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट्स आर यू नो दे हैव द नेचर ऑफ द मार्केट इज दैट दे आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल। Now, when volatility comes in, he gets scared. So the only thing that probably an investor can do, which is going to be good for himself, would be that he should stay invested, give time. You know, time in the market rather than, you know, discussing कि भैया आज enter करें कि कल enter करें. You know, I think time in the market is very important, and I think that is what investors should do in order to create wealth. थैंक यू सो मच सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, ओवर टू यू। Thank you, Shubham. Thank you, Himali, and thank you, our esteemed panelists, for this discussion. I think जो बात निकल कर आ रही है, रोज निवेश को चेक नहीं करना है आपको करना है। और जैसा कि नीलेश शाह कह रहे थे, धीरे धीरे जैसे खिचड़ी पकती है वैसे पकती रहेगी। निवेश करके भूल जाइए कुछ समय के लिए। Thank you so much, all of you. It was really pleasure having you. Please wait, sir. I'm going to invite now Mr. Raktim Das, Chief Growth Officer of TV9 Network, to present you with mementos. एक यादगार आज की शाम के लिए, please, sir. A big round of applause for our panelists and for this interesting session. थैंक यू सो मच। तालियां बजती रहें सबके लिए, क्योंकि मुझे लगता है हम यहाँ पर अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल कर सब आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ताकि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ वो बड़ा कदम उठा सके जिसका सपना हम सभी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। Wow, great discussion.
what next for mutual fund, and more than that, what should investors be doing, with their mutual fund investment, and why should they be investing in mutual fund? So आज इन सवालों का हमने जवाब देने की कोशिश की. उम्मीद करते हैं हमारे सेशन से आप भी बहुत कुछ टेक अवेज लेकर जा रहे होंगे. और आगे बढ़े उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं कि Money9 में हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक झलक दे देते हैं, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस वीडियो. आई थिंक ये पूरा मैसेज आपको दे रहा है कि Money9 क्या है, क्या कर रहा है. देखिए वीडियो. जिंदगी की कठिन पहेली. कमाते हैं तो जी नहीं पाते, खर्चते हैं तो खाली हो जाते हैं, बचाते हैं तो फंस जाते हैं, निवेश करें तो कहां करें. अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. थोड़ी सी समझ आपकी जिंदगी बना सकती है, छोटी सी बचत आपकी दुनिया सजा सकती है, जरा से धैर्य से पूरे हो सकते हैं सारे सपने. उम्मीदों को चाहिए बस जरा सा भरोसा. अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. सतारा में रहते हो या सहारनपुर में, जालंधर के हो या जलपाईगुड़ी के, हम्पी में ठिकाना हो या होसुर में, पैसे की जबान एक ही है, उम्मीदों की उड़ान एक ही है. अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. पैसों की ज़ुबान एक ज़रूर है, लेकिन Money9 की कोशिश है कि अलग अलग भाषाओं में हम आप तक पहुंच सकें. इसीलिए आज भी जब आप इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे शो का लाइव टेलीकास्ट हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है. हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, बांग्ला, सभी लोग जुड़ रहे हैं इस कॉन्क्लेव के साथ. इसलिए आप सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि आज आप लोगों ने वक्त निकाला, Money9 के लिए हमारा हौसला बुलंद किया. अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में आज दिन भर सारे ही पैनल में जिक्र होता रहा है. हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अनुप्रिया पटेल ने भी बात की कि टेक्नोलॉजी कैसे तेज़ी से बढ़ रही है. सारे ही पैनलिस्ट इंश्योरेंस के हो, म्यूचुअल फंड के हो, सब ने बात की कि डिजिटल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि इन इंडिया टेक्नोलॉजी इज डूइंग वंडर्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. 10 years ago, hardly anyone would have thought about UPI payments, but today it is a reality. Same is true with internet and mobile banking. Now, India is a fintech nation, but still there's a long way that we have to cover so that we could use this digitalization into financial security, how we could reach to the last mile person. So this is the topic for our next panel. Can fintech drive much needed financial inclusion and security? इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी मेरे कॉलीग गौरव अग्रवाल को. सुबह से मैं और गौरव आपसे जुड़े हुए हैं, सो गौरव नीड्स नो इंट्रोडक्शन. TV9 नेटवर्क के ये चुनिंदा एंकरों में से हैं जो जितनी सरलता से बिजनेस समझते हैं, उतनी सरलता से पॉलिटिक्स समझते हैं, उतनी सरलता से वो यूक्रेन और रूस का युद्ध भी बता देंगे. थैंक यू गौरव, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज. और आज इनके पैनल में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनमें नाम है पंकज बंसल, CBO बैंक बाजार, Sachindra Nath, Managing Director of Ugro Capital, Mohit Gang, CEO of Money Front, and साथ ही में Varun Chopra, CEO of Eduvance. Thank you, gentlemen. Thank you so much. Over to you, Gaurav. Thank you, Priyanka. और इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, फिनटेक्स की शुरुआत करूं, एक चीज जो अभी तक थोड़ी सी कम हुई है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार इस पैनल का स्वागत करें, क्योंकि वो है जो बताएंगे कि इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी से कैसे होगा. एक बार प्लीज हमारे सभी मेहमानों के लिए. थैंक यू ऑल, आप सभी का यहां आने के लिए. और जैसा कि प्रियंका ने बताया है, एक ऐसा पैनल जिनसे बातचीत में यह निकल कर आएगा कि अगर हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, हमें BFSI इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही हो सकती है. और जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, कैन फिनटेक
ड्राइव मच नीडेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सिक्योरिटी। तो शुरुआत मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको पहले जैसा कि प्रियंका ने बताया, पंकज बंसल हैं हमारे साथ, सीबीओ बैंक बाजार के, सचिंद्र नाथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ उग्रो कैपिटल, मोहित गंग हैं सीईओ ऑफ मनी फ्रंट एंड वरुण चोपड़ा हैं सीईओ ऑफ एडुअन्स। मैं पंकज आपसे शुरू करूंगा। पंकज, फिनटेक को लेकर बहुत सारी बातें हैं, एक आम आदमी से लेकर B2B का जो एक मल्टी नेशनल कंपनी का सीईओ है, वो सब उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उसके दायरे में आते हैं। लेकिन सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं, कंज्यूमर पे आएंगे। आप बीइंग अ इंडस्ट्री पर्सन, क्या इस इंडस्ट्री को रेगुलेटर से वो सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिसी मेकर से वो सपोर्ट मिल रहा है जिससे ये और फ्लरिश करे? क्या रेगुलेशंस को लेकर हम जितना समझते हैं, वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के जरिए, तकनीक के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए एक आम आदमी को, एक रिच को, पुअर को, मिडिल क्लास को जो फाइनेंशियल सर्विसेज दिलाती हैं, जो वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं, क्या उसको सरकार से सेवाएं मिल पा रही हैं? क्या रेगुलेशन लेवल पर आप सेटिस्फाइड हैं सरकार से, रेगुलेटर से? सो आई थिंक ब्रॉडली अगर मैं एज अ कंज्यूमर देखूं तो इसमें आई वुड कवर इन 2 एस्पेक्ट्स। वन इज द कंज्यूमर साइड, वन इज द कंपनी साइड। कंज्यूमर साइड पे अगर आप पिछले 2-3 साल का अगर इंडिया में फ्रेमवर्क पोस्ट कोविड देखेंगे, सो पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड लाइक बिग थिंग इन द कंट्री। इफ आई टॉक अबाउट lending today, you talk about CKYCs, EKYCs, VKYCs. I can onboard a consumer with a click of a button. जो कि चीज़ में मैं शायद 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बीइंग इन मास्टर कार्ड, बीइंग इन बैंक्स फॉर सो लॉन्ग, ये कभी भी पब्लिक गुड्स ऐसे वाइडली अवेलेबल थे ही नहीं। नाउ एक नया फ्रेमवर्क रेगुलेटर ने लिया है हमारे को, अकाउंट एग्रीगेटर्स, वेयर आई कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम अ कंज्यूमर थ्रू GSTs। वो सब चीज़ें जैसे बिल्ड हो रही है, जिस स्पेस पे बिल्ड हो रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली आई थिंक वर्ल्ड क्लास बिल्ड हो रहा है। दैट्स वाई आप देख रहे हो फिनटेक आज वर्ल्ड में अपन नंबर 3 पे वी आर ऑलरेडी देयर, यू नो, आफ्टर चाइना, US, वी आर ऑलरेडी देयर। As an industry from 50 billion, we are already looking at $150 billion kind of a number within 5 years. And maybe 10 years down the line, like 1 trillion. So this is the kind of infra, ये बिना ecosystem build हुए, nobody can build it. चाहे आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, but ये आपको build करने के लिए एक public good available होना चाहिए। Second चीज़ बहुत important ये है कि अगर आप public goods देखेंगे ना, इंडिया में रेगुलेटर्स को फ्री ऑफ चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई चीज़ सर्विस बिल्ड करनी है, इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज। इट्स अ वेरी गुड इकोनॉमिक वैल्यू व्हेन वी बिल्ड इन लार्ज कंज्यूमर B2C बिजनेसेस। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट ग्लोबली। दिस इज हाउ इट इज मूविंग, एंड नाउ टेक्नोलॉजी, क्रेडिट ब्यूरो and your regulator put together is a very potent combination for financial institutions. Is it happening? It is happening rapidly. If you look at our adoption rate on fintech, it's about 87%. Globally, it's 64%. So, आज की डेट में Indian consumer जो tier 5, tier 6 में भी बैठा है, is able to adopt. So that's the and it amazes us also that the kind of adoption we have seen in the last 3 to 4 years post-COVID. So I think it has leapfrogged from where we were 15 years back within 3 to 4 years. Okay. That's the way it is structured. So I am very confident on the way it is happening. Coming to regulator, I think they are doing their job in terms of protecting the consumer with private. So consent, in terms of privacy, they are doing their own job. There are a lot of, and they don't want to see fintech as disruptors anymore. They want to see fintechs as collaborators with the bank to enhance the capability rather than disrupt the entire market. That's the way I would say. Okay, so you are talking about 3 years, 4 years down the lane. और ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट भी है, एंड आई कोट सम डेटा हियर, जो कहती है कि अभी फिनटेक का जो डिजिटल पेमेंट है, मोहित हम बात कर रहे थे, इट इज अबाउट $3 ट्रिलियन, और ये 3 साल बाद, 3 years डाउन द लेन, 3 गुना से ज्यादा बढ़कर $10 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। तो सचिंद्र, मेरा जो सवाल होगा आपसे होगा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द लेंडिंग में कुछ है सचिंद्र, लैंडिंग में अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलेशंस साइड से बता रहे हैं कि अभी कुछ इस पे और आज के हम देखेंगे, बट डू यू थिंक कैन इंडिया सस्टेन विदाउट डिजिटल लेंडिंग? लेंडिंग तो हो रही, बैंक खूब क्रेडिट ग्रोथ है, उनकी बैंक काफी अच्छा पैसा दे रहे हैं, लेकिन डिजिटल लेंडिंग क्या आपको लगता है कि इंडिया इसके बिना सस्टेन कर सकता है? बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट डिलेमा फॉर फिनटेक नाउअडेज, कैन फिनटेक सर्वाइव विदाउट डिजिटल लेंडिंग? और रेगुलेटर्स में डिजिटल लेंडिंग को लेकर, मतलब फोन पर लेंडिंग या डिजिटल लेंडिंग को लेकर क्या दुविधा है, आपको क्या लगती है? और कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है डिजिटल लेंडिंग को लेकर। ये आप पेमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं,
आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं ऐप पर। लेंडिंग में कुछ इश्यूज हैं। एक तो सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक कोई आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट की गई है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल लेंडिंग, और एक हमारे ये मन में एक ऐसा हमको लगता है कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कन्वेंशनल लेंडर है, और एक फिनटेक जो है वो जो यूनिकॉर्न हो गया है वो डिजिटल लेंडर है। एक्चुअली दोनों ही डिजिटल हैं। अब लेंडिंग यूनिवर्स में, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में सब कुछ ही ग्रेजुअली डिजिटली हो रहा है, राइट। योनो का प्लेटफॉर्म एसबीआई का उतना ही डिजिटल है जितना कोई भी और कंपेरेबल प्लेटफॉर्म है। ये एक अलग बात है कि वो मैं अगर 50 साल का हूँ, अपने बाल कलर करता हूँ, मेरा तौर तरीका अलग है, तो वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और बॉस्टन में बैठा आदमी मेरे को वो पैसा नहीं देगा जो कि एक नए यंग आदमी को दे देगा, राइट। तो लेकिन जब ये ऐसा होने लग जाता है ना, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे चले जाते हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और जब ओवर हीटेड पैसा आने लग जाता है ना, तो पैसा तो सारी दुनिया का हर तरह का कर्ज है। ओवर लिक्विडिटी, ओवर मनी क्रिएट्स मनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो रेगुलेटर है ना, हर रेगुलेटर, चाहे वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे कुछ हो, उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट एंड ब्रिंग इनोवेशन, बट साइमल्टेनियसली स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट एज वेल, राइट। सो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पिछले एक हफ्ते से खूब चल रहा है कि हम आरबीआई से कुछ लोग को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों नहीं भेजते, उनको ये समझाने के लिए एलएम कैसे मैनेज होता है, राइट। तो अब आप वैसे तो जब हम आरबीआई हमारे यहाँ इंस्पेक्शन पे आता है, हमको बहुत दुख होता है कि यार क्या सवाल पूछते हैं, हम कहाँ कुछ नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम जीएसटी का डेटा लेंगे, हम इसका डेटा लेंगे, हम विद इन मिनट्स ये कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन उसके साथ किसी को 50% इंटरेस्ट पे लोन दे के उसको पता भी नहीं लगे कि क्या हो रहा है, और उसमें से 40% 30% पैसा जो है उसके बाद कॉल करें, तो आई थिंक सो देखिए ये दुविधा इसलिए है क्योंकि बैलेंस जब तक नहीं होता है किसी भी चीज़ में जी, तब तक ये प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक छोटा सा बड़ा एग्जांपल देता हूँ। ये दुविधा इसलिए है, एक बार मैंने ओला यहाँ बॉम्बे में ले ली, मैं रहता दिल्ली में हूँ तो आता रहता हूँ तो ओला लेता हूँ, और मेरे से वो पेमेंट ड्यू हो गया, मतलब भूल गया मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लिमिट दे रखी थी मेरे को। उसके करीब 2 ढाई 3 महीने बाद मेरे को एक फ़ोन आया, राइट, एंड somebody like me who's evolved in financial services industry saying सर आपका 4,500 रुपये का लोन ड्यू है और आपका सिबिल में रिपोर्ट हो जाएगा, आप 1 घंटे में बताइए पैसे कब दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं क्यों लोन लूंगा किसी से, वो भी 4,500, राइट। मैं तो 7,000 करोड़ की एनबीएफसी रन करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है 4,500 रुपये का लोन लेने की। बहुत खोजबीन, बहुत कॉल सेंटर वाले से झकझक करके मुझे समझ में आया कि वो ओला के ऐप पे वो जो लिमिट है, उस लिमिट के पीछे कोई सो कॉल्ड एनबीएफसी है जिसमें मैंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया, उसकी वजह से मैं बोरोवर हो गया। अब वो बोरोवर हो गया तो अब उसके बाद वो उसकी वाई का पैसा मांग रहे हैं मेरे से। तो ये है दुविधा, जब कस्टमर को बिना पता हुए आपने 30% 40% का कुछ चिप दिया और उसके बाद उसको हैरेस किया, तो ऑब्वियसली रेगुलेटर का ये काम है कि ये नहीं हो। और रेगुलेटर का शायद ये भी काम है कि जो फेयर प्लेयर्स है उनको अलग करे और जो नॉन फेयर प्लेयर्स हैं उनको कुछ अलग करे, ताकि कंज्यूमर को कम से कम इसका नुकसान ना उठाना पड़े। वरुण, क्योंकि आप एनबीएफसी से भी हैं, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे ताकि मैं नेक्स्ट सवाल पे आए। नहीं, देखिए एनबीएफसीज भी फिनटेक हो सकती हैं, बिल्कुल, राइट। और मैं थोड़ा सा सहमत हूँ इनकी बात से कि टेक्नोलॉजी आजकल हर कंपनी, हर बैंक, हर एनबीएफसी बना रहा है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि फिनटेक का मार्केट का फिनटेक से एक्सपेक्टेशन थोड़ा दूसरा है। फॉर एग्जांपल एसबीआई के पास भी टेक्नोलॉजी है, बट क्या एसबीआई की वो टेक्नोलॉजी उस यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनी है कि कोई भी आके गलत बटन ना दबाए, ये वो क्या आज सोच रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में शायद नहीं होगा, या होगा मुझे नहीं पता। बट फिनटेक क्या करता है, they look at any financial problem from a perspective of how we can make it easier for users to access that platform. Now at the back end, it could be an NBFC like Eduance or anybody else. But what they build is a front end, आज जैसे आप नियो बैंक की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, राइट? ये टेक्नोलॉजी यूजर को हर लैंग्वेज में मिले, उसका इंटरफेस, उसका वो यूएक्स यूआई जर्नी इतना सिंपल हो कि कोई भी बंदा टियर 3 से टियर 4 तक लेकर उस प्रोडक्ट को यूज कर सके जी। और थोड़ी इनोवेशन लाना, जैसे अगर आप एसबीआई को या किसी बड़े बैंक में जाके आप किसी प्राइवेट कोर्स के लिए आज लोन के लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको सिर्फ पर्सनल लोन देते हैं, एजुकेशन लोन नहीं देंगे। तो यहाँ पे फिनटेक्स या यंग एनबीएफसीज आके बोलती हैं कि मैं इस मार्केट में उतरूंगी। सो प्रोडक्ट इनोवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो यंग है और आजकल वैल्यूएशन ड्रिवन काफी कंपनीज हैं,
तो उसमें कई बार आप गलत मेट्रिक चेस करते हो, जैसे ग्रोथ या AUM, ठीक है। और उस चक्कर में रेगुलेटर्स का वहां पे आना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सिस्टम में कोई ऐसा कोई इशू ना हो जाए कि कोई कोलैप्स की वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। बिल्कुल सही बात है। चलिए थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिनटेक में केवल लैंडिंग नहीं है, फिनटेक का रेवेन्यू मॉडल भी एक बड़ा चैलेंज है। मेरा पेट भरा होगा तो मैं सामने वाले को खाना खिलाऊंगा, मेरा पेट ही नहीं भरा होगा तो मैं सामने वाले को क्या ऑफर करूंगा। मोहित, फिनटेक का रेवेन्यू मॉडल एक बहस का मुद्दा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप UPI ले लीजिए, आप 100 रुपए भेजते हैं, 100 रुपए चला जाता है, इसमें बैंक को क्या मिला, फिनटेक को क्या मिला, और नहीं मिला तो उनकी कमाई क्या है, उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको वो कहां से मैचअप करेंगे। तो ये क्या आप लोगों ने सोचा है फिनटेक क्या कमाई करेगा, कैसे करता है, और आने वाले समय में जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, जब चैलेंजेस बढ़ेंगे और कंज्यूमर को आपको उसी कॉस्ट पे वही सर्विस देनी है, मे बी उससे अच्छी सर्विस देनी है, तो फिनटेक कंपनी आगे कैसे सर्वाइव करेंगी, ये चैलेंज कितना बड़ा दिखता है? जी गौरव, तो देखिए मैं 2 कदम पहले पीछे लेता हूँ और एक थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देना चाहूँगा। जो आज भारत में फिनटेक का सीन है वो 300 का आंकड़ा है। 300 क्या है इसमें? 100 करोड़ की आबादी जिसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, 100 करोड़ की आबादी जो कि मोबाइल फ़ोन यूसेज करता है, और 100 करोड़ की आबादी जिसके पास में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसके पास में आधार है। ये जो 100 की ट्रिनिटी है, ये इस देश की फिनटेक इकोसिस्टम को ड्राइव कर रही है, राइट? जब आप इतनी बड़ी वॉल्यूम पे बात करते हैं, इतने बड़े स्केल पे बात करते हैं, और एक बहुत अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन वॉल्यूम्स टेंड्स टू इन्फिनिटी द कॉस्ट टेंड्स टू जीरो, राइट? तो होता क्या है, जब आप इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को आप एक व्यवस्था बनाकर दे रहे हैं, तो आपके जो स्केल के जो बेनिफिट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उससे जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो समय के साथ कम होता रहता है। जहाँ तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये एक काफ़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे ही फिनटेक्स अक्सर जूझते रहते हैं। जितने फिनटेक अभी तक हमने देखे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो बड़े हुए हैं या जो आगे जाके लिस्ट हो गए, वो बहुत ही अच्छी तरह से फंडेड थे। कुछ $33 बिलियन की फंडिंग भारतीय फिनटेक स्पेस को मिली है अब तक, राइट? और जिनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्या वो अपनी व्यवस्था को उसी तरह से चला पा रहे हैं, क्या वो अपने इकोसिस्टम को या टेक्नोलॉजी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पा रहे हैं, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पर सरकार को चाहिए कि थोड़े से जो रूल्स हैं उसको रिलैक्स करे। जैसे UPI का जो बेस है पूरा, वहाँ पर किसी के लिए कुछ पैसा नहीं बनता। मेरा अगला सवाल आपने छीन लिया मुझसे। मेरा अगला सवाल ही यही था कि आपको फिर क्या फिनटेक को प्रमोशन में, प्रोत्साहन में सरकार से क्या चाहिए? कोई टैक्स रियायत चाहिए, सरकार से कुछ अलग तरह की रियायत चाहिए जो फिनटेक्स को सरकार प्रमोट कर सके? शायद आप इसी पे बोलने वाले थे। जी मैं उसी पे आ रहा था एक्चुअली। तो देखिए, टैक्स बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं स्टार्टअप्स को, तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक फिनटेक्स भी कवर हो जाते हैं, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत बहुत कुछ हुआ भी है, राइट? इनोवेशन में हमारी रैंकिंग्स भी ऊपर आई हैं। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी का मुद्दा है, वहाँ पर रेगुलेशंस में थोड़ी छूट देनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये मुद्दा कहीं जाकर 2-3 चीज़ों पर अटकता है। अगर मैं NBFCs की बात करूँ जो लेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो UPI का पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर है सरकार द्वारा बनाया हुआ, वहाँ किसी के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पेटीएम जैसी कंपनीज हो या कोई भी पेमेंट कंपनीज हो, उनके लिए कुछ पैसा नहीं है वहाँ पर, राइट? तो वहाँ पर सरकार को चाहिए कि कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन के हिसाब से या कुछ वहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन दे। जो वेल्थ की कंपनीज हैं, जितनी न्यू एज वेल्थ कंपनीज हैं, और क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो RIA एडवाइजरी मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट प्लान्स दे रहे हैं, उनके लिए कोई रेवेन्यू व्यवस्था नहीं है। और भारत में अगर आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, या कस्टमर्स को बोलते हैं पे करने के लिए, तो वो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है जिससे हम आज तक जूझ रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाता है। ठीक है, राइट? और इसी तरह इंश्योरेंस और दूसरी जो व्यवस्था है, वहाँ पर आप देखिए कि मैन्युफैक्चरर कुछ कमीशंस दे पाते हैं, और जिससे इंश्योरटेक बिजनेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सारे रेगुलेशंस को एक इस तरह से सुचारू रूप से बांधे कि जहाँ पर जो इतना इनोवेशन ला रहा है, जो फिनटेक कंपनीज आ रही हैं, उनके लिए इस पूरी व्यवस्था में कुछ अच्छा प्रोत्साहन हो और एक अच्छा मार्जिन छूट के आए, ताकि वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को आगे ले जा सकें। एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है भरोसे का। मैं आपके पास आऊँगा पंकज। आज भी बहुत सारे लोग पेमेंट ऐप से, फ़ोन से फ़ोन से पेमेंट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उनको लगता है कहीं उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं अपने जीवन में, लेकिन इन तरह के इश्यूज़ में, फाइनेंसेस में कम यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि वो जो पुराना अभी तक सिस्टम चला रहा है, दैट इज़ अ सेफ सिस्टम।
वो भरोसा क्या हम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भरोसा हम लोगों को ला नहीं पा रहे हैं उस सिस्टम पे, या कहीं कुछ लैक कर रहा है जो वो भरोसा बिल्ड करने में टाइम लगेगा? नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन का एक गैप तो अभी बात हम कर रहे थे, लेकिन वो पुरानी जनरेशन अभी भी ज्यादा भरोसा करती है ओल्ड सिस्टम पर, और जब तक आप सबको नहीं लाएंगे तो इंक्लूजन तो कहीं से होगा नहीं। सो आई थिंक गौरव, इसमें भरोसा अगर आप देखेंगे ना, तो आज की डेट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अक्रॉस द वैल्यू चेन हो रहे हैं, मतलब एज ग्रुप अगर आप देखेंगे इवन फ्रॉम 40 to 60 70, इवन इफ यू लुक एट फॉरगेट द इंडस्ट्री, आप अपने घर पे देखेंगे आज हमारे डैड मॉम्स दे स्टार्टेड पेइंग थ्रू गूगल पेज एंड फोन पेज ऑफ द अर्थ, राइट? सो अडॉप्शन हो रहा है। फ्रॉड रेट्स अगर आप देखेंगे इंडिया का इकोसिस्टम में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू यूएस, यू गो टू कंट्रीज लाइक इट, वहाँ पे आज भी सिस्टम इतने अच्छे नहीं है जितने कि इंडिया में बनाए गए। ओटीपी बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी इंक्रिप्शन मॉड्यूल्स जो इंडिया में बिल्ड हुए हैं, दे आर फार बेटर देन ग्लोबल मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ द कार्ड रेट्स, फ्रॉड रेट्स, ओके? If you look at an industry like cards, for example, our fraud rates are the lowest in terms of the way the structure has been developed, the ecosystem developed. E-commerce पे OTP transactions आपको आते हैं। हम धीरे धीरे आई थिंक इवॉल्व हो रहे हैं विद द टेक्नोलॉजी। नाउ आइडेंटिटी थेफ्ट वी हैव सीन इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, सो आइडेंटिटी थेफ्ट्स की चीज़ें आ रही हैं। जबकि हमारा सिस्टम अगर आप देखेंगे, आधार स्टार्टेड कमिंग इन 2015 2016, नाउ लॉट ऑफ सिस्टम्स आर कमिंग फ्रॉम सोर्स। आई कैन डू एन आधार वेरिफिकेशन विद माई CKYC। जैसे जैसे आप इकोसिस्टम अगले 5 से 7 साल में देखेंगे ना, ये फ्रॉड रेट्स अपने आप नीचे नीचे कम होते जाएंगे, अडॉप्शन अपने आप बढ़ता जाएगा। क्योंकि अ सिंगल मेजर इज द फ्रॉड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स दैट यू हैव टू लुक एट इट, एंड अडॉप्शन इज क्लियरली डिफाइंड दैट वी आर डूइंग वेल ऑन अडॉप्शन। मोहित वांट्स टू ऐड समथिंग इन दिस। एक छोटा सा पॉइंट मैं इस पे बोलना चाहूँगा। आप जो अडॉप्शन की बात कर रहे हैं गौरव, आप एक छोटा सा डेटा देखिए। आज से 3 साल पहले इस देश में 330 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स थे, अभी वो 670 मिलियन हो गए हैं। हमने पिछले 3 साल में हर 1 मिनट में 200 स्मार्टफोन ऐड किए हैं इस कंट्री में, और पिछले 3 साल में 330 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स ऐड हुए हैं, जो कि यूएसए की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। तो जो अडॉप्शन है और जो उसका पेस है, वो एक अलग ही रफ्तार से चल रहा है। हालांकि काफ़ी डिस्टेंस हमें कवर करना है, बट मुझे लगता है कि वो अडॉप्शन जिस स्पीड से चल रहा है, वो एक अनबिलीवेबल पेस है। आप अगर देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 1-2 साल पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया जी। पिछले 2 साल में 43 से उस इंडेक्स में इंडिया की रेटिंग 54-55, 0 मतलब बिल्कुल एक्सक्लूजन और 100 मतलब 100% इंक्लूजन, राइट? अब जब इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को भी आप ब्रेक करेंगे, आप समझेंगे इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, राइट? सो एक्सेस वाला पार्ट, ये इंटरनेट पेनिट्रेशन जो हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, फिनटेक्स, अब SBI हर जगह तो ब्रांच खोल नहीं सकता, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज उन इंटरनेट के थ्रू हर जगह पहुंच रही हैं। एक्सेस वाला पार्ट हर जगह पहुंच रहा है, यूजेज वाला पार्ट धीरे धीरे आएगा। इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफी प्रोग्राम्स है, जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन को अब पहली बार इंडिया में बाइफरकेट किया गया है। एजुकेशन मतलब आप किसी को ये बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या है, लिटरेसी मतलब उस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करेंगे। सो आई थिंक हर जगह प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटी, पूरा इकोसिस्टम इस नई इंडस्ट्री को सही ढंग से चलाने की कोशिश कर रहा है। ट्रस्ट 4 साल में 5 साल में बनता है कि नहीं, कोई नहीं कह सकता। नहीं, बट जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिनटेक वाकई, और फिनटेक का कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि वो घर घर जाके या हर जिले में जाके एक अपनी ब्रांच खोले। फिनटेक का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो मोबाइल टेक्नोलॉजी पर सब कुछ उपलब्ध कराए। लेकिन सचिन, माय क्वेश्चन इज टू यू नाउ, इंडिया में नवंबर में जिस स्मार्टफोन की बात हो रही है, जिस पर हम इंटरनेट चलाते हैं, उसकी ग्रोथ नवंबर में गिरी है आंकड़ों में, सरकार के आंकड़े कहते हैं। स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं, कंपनियां डे बाय डे, अभी हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो डेटा की कीमतें बढ़ा रही हैं। ये अफोर्डेबिलिटी से ऊपर जाते हुए दिख रहा है एक बहुत बड़ी आबादी के लिए। स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं, डेटा महंगा हो रहा है। ऐसे में फिनटेक की ग्रोथ के लिए क्या ये एक चुनौती नहीं होगा कि अगर कोई डेटा ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो फिनटेक को कैसे अफोर्ड करेगा? उसमें क्या करना होगा फिर? तो देखिए, ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है ना, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोबाइल कंपनीज जो पहले वॉइस पे जिंदा थी, फिर डेटा पे आ गई। ये चाहे मार्केट प्लेसेस हों या डेटा प्रोवाइडर हों, सबका ये है कि पहले मार्केट शेयर इकट्ठा करो, लोगों को बिल्कुल यूज करो, फिर प्राइस बढ़ाओ। देखो, या तो आप डे 1 से पैसा बनाने लग जाओ या सम पॉइंट पे पैसा बनाने लग जाओ। तो ये सब लोग आ गए कि अब सम पॉइंट पे पैसा बनाना है, भाई कितना ब्लीड करोगे। तो आई थिंक सो दैट इज and to some extent people who are relying on this to happen perpetually
हैव टू रीथिंक कि ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? सो ये जो ये है कि मार्केट एक्सेस बहुत बड़ा है, ग्रोथ बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, अगर हमने 900,000 करोड़ का लॉस कर दिया तो क्या हो गया, हम 2 बिलियन से 3 बिलियन पे पहुंच गए और एक अनदर 1000 करोड़ रेस कर लेंगे। बट ये हमेशा नहीं चल सकता ना, इसका एक कभी कभी बहुत लंबा ये साइकिल चल सकता है, ये 10 साल भी चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है, कभी कभी ये सिर्फ 2 साल 3 साल में ही रुक जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस विंटर विच वी आर सीइंग हैज कम मच अर्लियर देन व्हाट पीपल हैव एक्सपेक्टेड. It would change again in some period of time. So we should not, I look at these things in a 2-decade kind of a time frame, what could happen. But one thing you remember, you talked about the trust. Remember this, India still lives not in this top 25 cities, right? It lives across the length and breadth of the company. Financial services is a factor of a trust, right? So SBI Life, after LIC, is the second largest life insurance company. आप पब्लिक में सर्वे कर लीजिए और उनसे पूछिए एसबीआई का जॉइंट वेंचर पार्टनर कौन है. 90% पीपल वुड थिंक एसबीआई लाइफ इज एसबीआई लाइफ बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस करती है, लिटिल रियलाइजिंग कि वो एसबीआई लाइफ में लाइफ इज ए जॉइंट वेंचर पार्टनर. बट वो एसबीआई का नाम बिकता है, इसका मतलब भारत सरकार को पैसा देते हैं लोग ये मान के चलते हैं कि एसबीआई को पैसा दिया तो भाई मेरा पैसा वापस आ जाएगा. सो जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इतना अच्छा हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई. कोई भी प्राइवेट पार्टी हिंदुस्तान में रोड बना के पैसे कमा के नहीं निकल सकती है, बट जब ये पार्टनरशिप आई ना, देन दैट्स व्हाई आप ये फोटो देखते रहते हैं, ग्रेट रोड, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर. दिल्ली से मैं आगरा पहुंच जाता हूँ आज के दिन में 1.5 घंटे में, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आई. फिनटेक्स एंड द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन बी APSU, इट कैन बी a large bank, unless they will tie themselves down and collaborate to partner, it is very either or. Conventional banks ho, conventional NBFCs ho, or new generation fintech ho, they have to tie it by the hip, because one owns the trust, other owns the innovation, and the combination of trust and innovation is what would inclusion would be. No, तो फिर इसमें एक और चक्कर आता है, इसमें एक और, मोहित आप कुछ ऐड करिएगा, बट मेरा सवाल है, जिस ट्रस्ट की बात हो रही है, ट्रस्ट इज अ मेन इशू हियर. ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप उसी को सर्विस देते हैं, और ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप सर्विस देने के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम आती है और उसको रिजॉल्व कर देते हैं. आप एक फोन पर उसके अकाउंट खोल देते हैं, आप एक फोन पर उससे लाखों के पेमेंट करवा देते हैं, आप एक फोन पर उसको हजारों का बीमा दे देते हैं, आप एक फोन पर उसकी वेल्थ क्रिएट कर देते हैं. लेकिन जब उसी फोन पर उसके साथ फ्रॉड होता है तो आप ही उसको थाने के चक्कर भी लगवा देते हैं. वो ये पूछता है आपसे कि भाई मैंने घर बैठे आपसे सारी सर्विसेज ली, आप मेरे डिस्प्यूट का रेड्रेसल घर बैठे क्यों नहीं दे सकते? क्या इस बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? गौरव, तो मैं पहले वाला जो आपका प्रश्न था उस पर एक पॉइंट रखना चाहूँगा. आपने बोला था कि इंटरनेट यूसेज जो है उसका डेटा महंगा हो गया. मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ पर. 2016 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था. उस टाइम भारत में पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन जो भारत की रैंक थी वो थी 122-123 देशों में. आज भारत की रैंक है नंबर 1 ऑन पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन. भारत में जितना डेटा कंज्यूम हो रहा है वो यूएस और चाइना दोनों को मिला लेंगे तो उससे ज़्यादा डेटा भारत में कंज्यूम हो रहा है. 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में, जो कि चाइना के बाद दूसरा नंबर है, और हर सेकंड भारत में 3 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, और उसमें से 2 भारत के गांवों से आ रहे हैं, और दुनिया की 11% आबादी भारत के गांवों में रहती है. तो आप सोच सकते हैं किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं. तो इंटरनेट का जो यूसेज है और जो डेटा की कॉस्ट है गौरव, वो इंडिया में इतनी चीप है कि इसका पेनिट्रेशन एक अकल्पनीय है जिस तरह से हो रहा है. जहाँ तक बात आती है कि जब आप इस तरह से नेट को फैलाएंगे तो फ्रॉड्स होंगे. आपको उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी. रेगुलेटर्स को जो ओम्बड्समैन मैकेनिज्म है, जो कि सेबी के पास में भी आज स्कोर्स का एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई का ओम्बड्समैन होता है, पर उन्हें चाहिए कि छोटे छोटे शहरों में कुछ छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हों, छोटे सेंटर्स हों जहाँ पर लोग जाकर अपने कंप्लेंट्स को अच्छे से एड्रेस कर पाएँ, या फिर कुछ इंटरनेट पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो पूरी फिनटेक व्यवस्था के लिए, चाहे वो लैंडिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से, वेल्थ से, कहीं पर भी हो. आप अपनी कंप्लेंट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे आप जाकर लॉग इन कर और उसका सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए. और जहाँ पर सिक्योरिटी फ्रॉड की बात आती है, मुझे लगता है कि काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर. यूआईडीआई की तरफ से आधार को सुचारू बनाने के लिए, बैंकिंग सुविधा को सुचारू बनाने के लिए, इनफैक्ट जो काम चल रहा है गौरव अभी, जो आपका यूपीआई मैकेनिज्म है, थोड़े टाइम में वो बिना इंटरनेट के भी चलने लगेगा.
फ़ोन के बेसिक इंफ्रा पे, सिर्फ आपके सिम कार्ड के ऊपर। तो बहुत कुछ हो रहा है इस पर मुझे लगता है कि स्टेप्स हमेशा कम लगेंगे भारत की आबादी को देखते हुए और इसके यूसेज की स्केल और वेलोसिटी को देखते हुए। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम्स हैं बट मुझे लगता है इसे एड्रेस किया जाएगा। बेसिक जो यहाँ पर समझ हमारी ये बनती है पंकज, वो ये बनती है कि एक तो डिजिटल पेनिट्रेशन, तभी फिनटेक सर्वाइव कर पाएंगे, और जैसे कि कह रहे हैं कि उसके बियॉन्ड भी हम जाकर कुछ सोच सकें और लोगों को ला सकें इस प्लेटफॉर्म पर, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आम लोगों को ये लगना चाहिए कि जिस ऐप के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे वो बड़े बड़े बॉन्ड पेपर्स पे साइन करके करते हैं, और ये ट्रस्ट समय के साथ बिल्ड होगा। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट गौरव बात इसमें यही है कि आज की डेट में आप देखेंगे ना, अपना इंडिया एज अ कंट्री इज़ अ यंग कंट्री। सो बेसिकली अडॉप्शन तो ऑब्वियसली है। आज की डेट में अगर आप कंज्यूमर एक्सपीरियंस जो हम देखते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट्स पे, ऑल द बिग साइट्स ऑन दिस कंट्री विच वी स्टार्टेड शॉपिंग राइट in 2014 when Amazon started right in Indian operations, they just served 10% of the pin codes. Today serve about 94% of the pin codes. They can deliver goods anywhere. I can shop anywhere. So ये जो हम आपसे 20 साल पहले अपनी किताबों में सुनते थे ना 4 P's of marketing and all, अब ये सब 4A में convert हो गया, anytime, anywhere, anyone, anything, right? So 4A's is the new concept. See, as a consumer, मैं अगर 25 साल का लड़का हूँ या जेंडर बायस नहीं लेऊंगा, मतलब anybody I am देंगे 25 years, I just need to shop within 20 seconds, 60 seconds, 150 seconds. I talk today seconds. So seconds में आपका जो consumer experience ऐप पे दिखता है ना, वो सबसे important चीज़ है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका सबसे पहला ड्राइव। वहाँ से आप कस्टमर को इन्वॉल्व करते हो। जैसे जैसे अब हम प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, सी these are things which will fixed over a period of time. It cannot be fixed day one. So what will start, the journey has started, digital payments, everybody, right from a shopkeeper to maids, everybody is adoption, right? This is adoption. And this will keep growing because see 900 million debit cards, Jan Dhan के हमने 2016 में कर दिए थे, ठीक है? Basically that's the number at that time, we were 900 million debit cards right now in the country. So unbanked का तो फंडा ही नहीं है इंडिया में, मोटा मोटा underbanked is the problem. So people who have a capacity of 100 rupees, they are banking on 10 rupees. The more your per capita income will start increasing, you will see these transactions will move forward. So that's the way I would say it will start with adoption, consumer experience, move to service level issues that you have articulated, for which all the digital lending frameworks have already been designed. ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑडियंस में से अगर कोई सवाल लेना चाहे फिनटेक के बारे में तो प्लीज आप बताइएगा। प्लीज माइक पास ऑन कर दीजिए यहाँ पर। ओके सर, मैं आता हूँ आपके पास। फर्स्ट ईयर देन सेकंड यू सर, प्लीज माइक दीजिए। उधर उधर। Hello, hello. Yeah, please, Himali. Yeah. So when it comes to distribution of mutual funds, today mutual fund companies are heavily dependent on the fintech's model of distribution. Now, if you see, mutual fund as an industry is still evolving, given that SEBI and MFI keep coming up with new regulations. And because of that, my question is, how is fintechs adapting to this constant change by the MFI when it comes to MF distribution model? किससे है ये सवाल आपका? Sir, anyone? So anyone who wants to answer it, please. हम म्यूचुअल फंड में ही काम करते हैं तो आई विल टेक दैट हिमाली। तो देखिए 1993 से 2003 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM हुआ 10 लाख करोड़। 21 साल लगे, करीब 20 साल, 21 साल। 2003 से आज जब हम बैठे हैं तो इंडस्ट्री का AUM है 40 लाख करोड़, और इसमें से जो 20 लाख करोड़ है वो पिछले 5-7 सालों के अंदर में जुड़े हैं। तो आप जब देखेंगे जो डिजिटल भारत की जर्नी है 2015-16 के बाद की जो जर्नी है, जब से आपका ये पूरा पेमेंट सिस्टम और सारा एवोल्यूशन हुआ, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आए वो सब 2017 के बाद आए हैं, राइट? और सेबी की रेगुलेशंस भी 2017 के बाद में काफ़ी ओपन हुई हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर। तो जो इंक्लूजन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेकर आए हैं इस इंडस्ट्री में, वो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बून साबित हुआ है। जितना अवेयरनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, जिस कदर मार्केटिंग की है, जिस कदर से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शोर किया है मार्केट्स में जाकर, जगह जगह आप जाइए, आपको जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एड्स दिखेंगे। चाहे आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल खोल लीजिए, आपको नीचे
एक डिजिटल वेल्थ प्लेयर का ऐड दिख जाएगा वहाँ पर, राइट? तो ये जो अवेयरनेस आई है ये पूरा इन्हीं नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से आई है। सेबी ने एक अच्छी बात ये की है कि इन सबको छूट दी है पूरी तरह से ऑपरेट करने की। हालांकि रेगुलेशंस में आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजरी रेगुलेशंस में अभी भी काफ़ी जगह कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, ग्रे मैटर्स हैं। उसको लेकर सेबी का एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आया हुआ है जो कि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होगा ईओपी प्लेटफॉर्म्स को लेकर, यानी एग्जीक्यूशन ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर। तो वो रेगुलेशन जैसे ही आता है, मुझे लगता है अगले 3 महीने की बात है वो, उसके आने के बाद ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये और ज़्यादा खुल जाएगा और जितने भी डिजिटल ऑनलाइन प्लेयर्स हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें पूरी तरह से पूरी छूट के साथ में ऑपरेट करने की और ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी और थोड़ा सा शायद पैसा बनाने की सहूलियत भी थोड़ा सा थोड़ा सा सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे, सर को माइक दीजिए प्लीज, इधर इस तरफ। सर प्लीज अपने परिचय के साथ अपना सवाल पूछिए। I'll introduce myself. I'm Dr. Wilfred Monteiro, Independent Director and Strategy Management Consultant. I'm trying to link 3 points, which is the subject of this. You speak of fintech, which is digital enabled. Okay, you speak of financial freedom. See, the greatest bondage is ignorance. And so, can we link the 2 points and say, can fintech be used for educating retail investors who are the most gullible in the financial sector market? Nice question. Who wants to answer? Just to finish it, because see, all digital now outreach should be benign and social re-engineering oriented. Right now, it is only oppressive telemarketing, please. Could we have the shift from the negative side to the positive side? Thank you. Sachin? Yep. Sachin. I'll maybe answer. Sir, Acha, I'll come to you. Both of you will answer. First, Sachin. एक बड़ी प्रॉब्लम पिछले 3 दशक में हुई है हमारे देश में, जहाँ पे भारत सरकार ने ये मान लिया कि प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन है, राइट? नाउ बिल्कुल है, लेकिन आपको ये भी तो है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि जो लोग प्राइवेट पार्टी पैसे लगा रही है उनको पैसा कमाना है, तो प्रॉफिट मोटिव इज़ द ओनली मोटिव। चाहे वो कोई वेंचर कैपिटल फंड हो, एंजल फंड हो, प्राइवेट इक्विटी फंड हो, फैमिली ऑफिसेज हो, अल्टीमेटली they are providing capital, forget about the valuation, forget about it, finally to make an X return on their equity investment. And that's why infrastructure related solutions has to remain the domain of the public institution, which is taxpayers' money, right? So India mein healthcare in last 3 decades have deteriorated, education have deteriorated, to large extent, infrastructure around many other things have deteriorated because government decided that everything private can do. So when it comes to investor awareness, investor education program, how the gullible investor cannot think, I can guarantee you no fintech have the capacity or the money or the intent to do that job. That is the role of, the regulators and government can collect a cess, use that cess to then promote that. But this expectation that private sector, fintechs and banks and NBFC or asset management platform would protect the investor, I think so is far-fetched. Okay, पंकज आप भी कुछ बताना चाह रहे थे, और वो जो उनका रिटेल इन्वेस्टर को लेकर एक सवाल था कि क्या फिनटेक उनको कैसे एडुकेट कर सकते हैं? आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था पहले कि एक तो सर वी आर सेंडिंग द माइक, प्लीज आप पंकज बोलते रहिए तब तक। पंकज आप जवाब देते, आप प्लीज बोलते रहिए। हाँ सर, response to my question is that private sector thinks of an ROI, right? It is quite erroneous because see, private sector when they educate customers, you will have a wider customer base making a more studied decisions, and you are actually like a farmer fertilizing the soil. Okay. Okay. See, it is true that they have a short sight. Government should outreach using taxpayers' money. But the crux is, it is definitely a form of surrogate marketing to educate the customer in his interest, which in turn has a payback to the marketeer itself. Thank you. Thank you, sir. Please.
So I think the question is very valid in terms of, see, most of the companies that operate, they look at ROIs, profitability, making money on the consumer. They treat consumer as a source to make money, right? But I'll tell you, this is one hindsight. Second hindsight, for example, if you look at how the market is operating. Now today you have a credit score, for example. So everybody, it's about credit awareness at the end of the day. You have to use credit meticulously to make sure that next time you get better off. So if I use 100 rupees today, I need to get 500 rupees 2 years from now. For that, the most important thing is that consumer should be aware that he has to pay on time without delaying his payments. So when you do this, it's not going to be an easy fix. What we are seeing in our credit score metrics, because we do free for, we don't charge the consumer. Experian also, Civil also today have given a lot of plans where consumers are giving a lot of free credit scores. Every day they can track what is the credit score, and we will give them the insights in terms of how to improve those credit scores, because it's a long journey for credit fitness. And once you get credit fitness, you'll get credit, and then you'll get leverage out of it. Otherwise, that's an important socio-cum ROI based fundamentals that the companies have started building on the financial inclusion side. Okay, I think you got the answer, sir. But मैं अब fintech industry के अगर role models पे आऊँ, success story के ऊपर आऊँ, तो we have Zerodha, which is a success story of fintech. वरुण, क्या Zerodha जैसी success stories आने वाले दिनों में हम और देखेंगे fintech industry में, या अभी challenges हैं? See, Zerodha success story इसलिए है क्योंकि उसका business model solid है और उनकी execution capability was perfect. क्या Zerodha कोई public entity नहीं बना सकती थी? बिल्कुल बना सकती थी. So I think success will not depend on, what is the time you are talking about. I think as the market evolves, consumer demands change, innovation will happen, new business model will emerge. Some of those business model will hit the nail on the head. और वो सारे business model जो कुछ नया ऑफर कर रहे हैं या नए तरीके से ऑफर कर रहे हैं, चाहे पुरानी चीज को ऑफर कर रहे हो, उनमें आपको बिल्कुल सक्सेस मिलने के चांस हैं. आज हम बोलते हैं कि फिनटेक्स पैसा कैसे बनाएंगी, लेकिन Zerodha बहुत पैसे बना रहा है. आप जोहो जैसी कंपनीज को देखते हैं जो सैस प्लेटफॉर्म है, वो भी पैसा बना रही है. तो ये एक इंडस्ट्री एग्नोस्टिक होता है. पैसा बनाना ये एक कला है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला है. अगर आप उसे ठीक से सॉल्व करते हैं, फिनटेक कम्युनिटी में मुझे नहीं पता मतलब कितने यहाँ सहमत होंगे, एक कहावत है, कहते हैं कि अगर आप लास्ट माइल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके पास यूजर्स आ रहे हैं और आप कुछ उनको लेके आ रहे हैं, आप उनके साथ पैसा हमेशा बना सकते हैं. सो आप जैसे हम पेटीएम की बात कर रहे थे पहले, राइट, यूजर को लेके आना, आज उनके साथ उनकी कम से कम 1000 करोड़ महीने की लेंडिंग होती है. तो पैसा बन सकता है दो तरीके से, या तो आप Zerodha जैसी कंपनियों की शुरू से ही प्रूडेंट रहें और पैसा बनाएं, या आप किसी अन्य फिनटेक की तरह हो सकती हैं जो आप एक यूजर की एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करें जहां उस पर पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन एक बार यूजर आ गया तो जो कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस सेल या अपसेल का, आप उसके थ्रू पैसा बनाएं. एंड आई थिंक बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं. इंडिया में अभी टेक स्टैक बन रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर जैसे नई इनोवेशंस आ रही हैं. पहले आधार आया, फिर एपीआई आया, अब ONDC प्लेटफॉर्म आ रहा है. ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टैक्स फिनटेक को रेवोल्यूशनाइज करेंगे कि यहाँ इसके ऊपर चढ़ के कुछ नए प्रोडक्ट या नए तरीके से पुराने प्रोडक्ट बेहतर बनाए, जिनमें जरूर पैसा बनाने की उम्मीद है. नहीं, हाँ सचिन प्लीज. तो मैंने स्टार्ट किया था कि ये जो आर्टिफिशियल डिवीजन ऑफ फिनटेक एंड नॉन फिनटेक्स है, सो एक्चुअली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिनटेक, जो कभी भी उसका आप क्वार्टरली रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, बोलता ही नहीं कि मैं फिनटेक हूँ, लेकिन उसका ट्रेडिंग मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के सारे बैंक सारे फिनटेक से बेटर है, विच इज बजाज फाइनेंस, राइट. बजाज फाइनेंस कंसिस्टेंटली 4 टाइम to 6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इन क्रेडिट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो बहुत पावरफुल फिनटेक है. सो ये है एक्चुअली द की, दैट ये आर्टिफिशियल डिफरेंस जो है ना कि फिनटेक है इसलिए कर सकता है, ये नहीं है. फाइनली द बिजनेस मॉडल हैज टू बी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, and it is not that you can't burn cash. There are certain businesses who take time to get to the break even, but I has to be clearly there. The core problem is this excess liquidity of getting capital on the metrics which are not real and not converging into final
cash delivery into the business. If you do that, then obviously there is not a problem. ओके लेंडिंग की बजाज फिनटेक की आपने बात की, बजाज फाइनेंस की, और वो भी लेंडिंग में बहुत है। लेंडिंग की हमने बड़ी बातें की हैं मोहित, लेकिन लेंडिंग के अलावा बहुत और भी बातें हैं। और कौन से एवेन्यूज आपको लगते हैं फिनटेक्स में जिन पर और ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि आप किसी यूनिकनेस के साथ आते हैं, यूएसपी कुछ होती है, फिर आप आते हैं, फिर देन अगेन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल आप शुरू करते हैं, पुराने प्रोडक्ट्स को आप नए तरीके से लाते हैं और बेचना शुरू करते हैं। वो सारी चीज़ें तो हम फिनटेक में देख रहे हैं और डे बाई डे देख रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि लेंडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और शायद लेंडिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी है अगर रेवेन्यू साइड पे देखें तो उसके अलावा आपको लगता है कहीं एक और कोई यूएसपी क्रिएट की जा सकती है जिस पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो एक जो बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, राइट? तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री लीडर्स, मार्केट विनर्स की बात कर रहे हैं जो कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। हाँ, तो और कोई बुराई नहीं है इसमें। आप अपनी सहूलियत से सब अपना अपना एक क्या बोलते हैं आदर्श रखते हैं कि किस तरह से आप देखना चाहते हैं। बट जो हमने ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक नाम लिया, वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री का मतलब ही कमांड्स ऑलमोस्ट 50% प्लस वॉल्यूम्स ऑफ द ब्रोकिंग इंडस्ट्री, राइट? और वो इंडिया में सबसे पहले थे जिन्होंने पायरनियर किया लो कॉस्ट ब्रोकिंग को पूरा डिजिटाइज करके एक बहुत ही अच्छी यूज़र जर्नी देने को, राइट? बजाज की हमने बात की यहाँ पर, लॉन्ग लास्टिंग कंपनी, गुड पेडिग्री, ह्यूज रिसोर्सेज, ह्यूज कैपिटल, एवरीथिंग, राइट? पर इस तरह के विनर्स जो हैं गौरव, वो बहुत ज़्यादा नहीं है इंडस्ट्री में। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ 9000 फिनटेक्स हैं इंडिया में, शायद हमारी बात हो रही थी पहले पीछे, उसमें से कुछ 1800 के करीब ही हैं जिनको फंडिंग मिला है, और टोटल फंडिंग को 33 बिलियन का। और ये जितने भी फंडिंग वाली फिनटेक्स हैं सब के सब लॉस में है। अभी तक इनमें से कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, चाहे वो लेंडिंग में हो, इंश्योरटेक में हो, वेल्थ में हो, कहीं पर भी हो। लेंडिंग में फिर भी पैसा बनाना आसान होता है बिकॉज आपके पास में एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। आपने 10 पे लिया, 14 पे दे दिया, आपने 4% बना लिया, उसमें से आपने अपने खर्चे निकाल लिए। बट जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली वेल्थ इंडस्ट्री, वहाँ पर जिस तरह के सेबी के रेगुलेशंस हैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से आता हूँ, बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करती है, बहुत ही वेफर थिन मार्जिन पे काम करती है, और वहाँ पर अमूमन गेम वॉल्यूम का हो चुका है अब, राइट? इसीलिए जीरोधा शायद वो गेम जीत चुका है क्योंकि वो ब्रोकिंग में है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस की तरफ आएंगे तो वहाँ पर मार्जिन्स बहुत कम है। इंश्योरेंस, वहाँ पर रेगुलेटर हालांकि अभी तक इतना नहीं हो पाया है सजग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़ और कमीशंस, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप भी है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो कहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, कहीं पर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ठीक तरह से आगे चल रही है और शायद सबको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि और जीरोधा और बजाज फाइनेंसेस ऐसे क्रिएट हो आने वाले दिनों में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और न केवल कंज्यूमर साइड बल्कि बिजनेस साइड और फिनटेक साइड भी बताने के लिए कि आगे क्या चैलेंजेस दिखते हैं और आगे कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स प्रियंका। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू पैनलिस्ट। मतलब आपकी बातचीत का मैं कहूँगी लब्बो लबाब ये निकला कि ग्लास अभी आधा भरा है और आधा खाली है, यानी बहुत कुछ हुआ है पर कुछ और होने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मंच पर बने रहें प्लीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने वक्त निकाला, हम आपको एक छोटा सा मोमेंटो अपनी तरफ से देना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू इन्वाइट Shri Bhushan Kot, Business Head, TV9 Marathi, to come on stage and felicitate our panelists. A round of applause for our panelists, for Gaurav, for Money9.
much, gentlemen, for this wonderful conversation. जब बात होती है तो बात बढ़ती जाती है और बात से ही बात बनती है. वही हमारी कोशिश है Money9 के इस कॉन्क्लेव में, फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में. और अब हम बढ़ रहे हैं शाम के अपने सबसे खास और सबसे आखिरी सेशन की तरफ. आप सबका धन्यवाद. दिन भर आप हमारे साथ बने रहें. एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल इंडीड. हमारी स्टेज भी आप देख ही रहे हैं, तैयार हो ही रही है हमारे अगले मेहमान के लिए, जो बहुत ही खास सेशन आपके लिए लेकर आए हैं. गौरव, कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिनटेक से बातचीत करके क्या लगा? हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ तो रहे हैं, रोड़े बहुत हैं लेकिन नहीं. और वही फिनटेक इंडस्ट्री की डिमांड है सरकार से कि कुछ और इसको ईज किया जाए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, बहुत हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए वो इंडस्ट्री बात कर रही है. और सरकार के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में इस पर काम हुआ है जो दिखता भी है. इनफैक्ट हमारे सबसे पहले सेशन में जो हमारी चीफ गेस्ट थे, यानी कि अनुप्रिया पटेल जी, MOS कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो भी यही बात कर रही थी कि UPI को कितने जल्दी लोगों ने अपनाया है. वो जो आंकड़े पेश कर रही थी वो तो काफ़ी चौंकाने वाले थे. बिल्कुल. और वही लगता है ऐसा कि सरकार का पूरा फोकस है इस पर, और वो फोकस कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ग्राउंड पर आने वाले दिनों में जरूर देखेगा, बी इट डिजिटली, बी इट रेगुलेटर बेसिस. कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बीमा की अहमियत सिखाई, बहुत कुछ सिखाया, और ये भी सिखाया कि आप कैसे फिनटेक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं. मुझे लगता है मैं एग्जांपल देना चाहूँगी. मेरी मदर, जो शायद कभी एक फ़ोन को भी यूज़ करने में कतराती थी, वो भी अब जो है यूज़ करती है पेमेंट के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करने. इनफैक्ट माय मदर वाज आस्किंग कि मुझे पेटीएम चलाना सिखा दो. एग्जैक्टली. चलो ये तो बात फिनटेक की हो रही है प्रियंका, लेकिन अब आगे, क्योंकि अब एक पैसा की प्रियंका ने बताया बहुत खास सेशन है, तो प्रियंका बिल्कुल अब आपको बताना चाहिए हमारे जो आखिरी सेशन है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ द डे. In fact, the most crucial one, as I said. As equity culture is taking roots in India, the risks are also rising along with that, especially for small investors, जो सुनी सुनाई बातों पर मार्केट में पहुंच जाते हैं. And when markets turn volatile, small investors takes the massive hit. In the next session of Money9's Financial Freedom Summit, we are going to deal with a very provocative issue: why small investors should trust the stock market. Ladies and gentlemen, please welcome member of Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, Deepan Mehta ji. And I'm going to also request Anshuman Tiwari, editor Money9, to accompany him on the stage. प्लीज तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपन मेहता जी का. एक huge round of applause for Mr. Mehta and Anshuman ji. Over to you, Anshuman sir, for the most important session of the day, sir. Thank you, Priyanka. Thank you, Gaurav. We are just at the end of our summit, and this session, before we start the session, let's play the AV so that we can again know about Money9, what Money9 is doing, and also we would like to introduce a Data Coin initiative with Deepan, and then we'll start our discussions. So kindly play the AV, please. जिंदगी की कठिन पहेली. कमाते हैं तो जी नहीं पाते, खर्चते हैं तो खाली हो जाते हैं, बचाते हैं तो फंस जाते हैं, निवेश करें तो कहां करें. अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. सतारा में रहते हो या सहारनपुर में, जालंधर के हो या जलपाईगुड़ी के, हम्पी में ठिकाना हो या होसुर में, पैसे की जबान एक ही है, उम्मीदों की उड़ान एक ही है. अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल. अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की. Money9 brings India's first personal finance interface, the Data Coin. Money9 Data Coin will help policymakers and BFSI industry to feel India's financial pulse along the length and breadth of the country. Data Coin will exclusively provide access to granular data of India's biggest personal finance survey conducted by Money9 between May to September 2022.
The personal finance survey of Money9 has covered over 31,000 households, 20 states, and 100 districts. The survey findings were widely covered by the media. Personal Finance Survey is an annual exercise, and its next edition will be launched this year, which will be wider and deeper than the last one. DataCoin will also offer secondary data on personal finance products like insurance, savings, gold, property, debt, mutual fund, and stock market. Ladies and gentlemen, here comes DataCoin, India's first personal finance data interface, exclusively for policymakers and BFSI industry. Thank you. Let me welcome Deepan again. Deepan is one of those minds who actually lead the Indian stock market and the equity culture. And this session, which is very important session, as Priyanka told and our anchors told, a very provocative one. I've kept it slightly provocative for Deepan. In giving the given situation, the topic which I think Deepan can guide us best, that why should small investors trust on stock market? अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है कि छोटे निवेशकों को स्टॉक मार्केट पर भरोसा क्यों करना चाहिए, because there are a lot of things happening in last 1 year. So I'll request Deepan to speak on it, and then we will start our question answer session. So I'll request you that you can, if you want to speak from here. That's right. Yeah, am I audible? Yeah. First of all, thank you for welcoming me over here. It's been a real privilege to be part of this fabulous event. And truly, I wish and desire that your newly launched app is a great success, because that is the need of the hour. And I'm truly motivated by your objective of financial inclusion, because coming from the financial services industry, I think the only way we can go into the next orbit is when we have many more small investors coming into our ecosystem. So a little bit about today's topic, why should small investors trust the stock market? My basic take on this is that trust is a very important factor when it comes to investing in any asset. And trust is something which even the most high net worth investors, all the way to the small investor, and even the poorest of the poor, when they are putting their money in any asset, bank or any chit fund or any such financial product, trust is one of the most important thing. And the reason why I think small investors should trust the stock market is at two levels. First of all, whenever we are investing our hard-earned money in any asset class, what we are investing is we are investing to achieve a particular goal. For someone who's just starting his life, it could be buying a motorcycle, buying a house. Later in age, it could be education, and then maybe children's marriage, and so on and so forth. So when we are investing money in any asset, including stocks, it is to achieve a particular goal. So the first level of trust in the stock market is, if I put my money in stocks, will I be able to achieve my goal? That's the first level of a trust factor that has to be created and is present in the stock market. Because if you look at the historical returns, and if you'll invest for a long period of time, the historical returns of the Sensex over the last 30, 40 years has been around 16%. And even if you look at the last 5, 10, 15, 20 years or so, the stock market, the indices, have been able to generate at least 12, 13% type of return. Plus you have the dividends, and there are many mutual funds and individual stock portfolios which are done even better. So from an objective of achieving your goal, you can trust the equity market to deliver decent returns, compounded returns year after year. Maybe 1 or 2 years may go badly, but over a long period of time, 3 years, 5 years, 10 years, it will generate returns which will help you meet your goal. So that's the first level, the trust comes that the stock market can help you achieve your goals. The second level of trust is the fact that you don't want to make a loss
there should not be any accident. And on that particular aspect, I'm pleased to inform you that in the last 2 to 3 years, the entire financial services industry, mutual funds, equity, portfolio managers, AIFs, entire sector has been revamped. The regulation has been revamped by SEBI to make it far more transparent, to make it far more trustworthy, to prevent presence of any frauds, undesirable elements rocking the market. And there are so many disclosures, and there are so many steps which have been taken by SEBI, by RBI, by the government to ensure that the money is safe for the investor, safe from all the intermediaries who are managing the money, safe from the companies also in which we are investing our money, because in the past there have been many issues where small companies have completely disappeared, and because of that investors lost their money. But now the way the systems are in place, the monitoring systems, the disclosure systems, the way they have to inform the stock exchange and the public at large, a lot of the loopholes have been completely blocked. So from a regulatory perspective, which is amongst the best in the world just now, the money of the investor is completely safe. One more important aspect when it comes to trust and safety is the ease of doing business in the capital market. Now, thanks to all the initiatives taken and so much of technology which has been built in, UPI and also online registration, the quantum of paperwork has gone down significantly. And now it is possible for anybody with a smartphone to seamlessly and without any document open a trading account or a mutual fund account or buy an insurance policy, then actually transact over it, make sure that whatever has been purchased has gone to their demat account, and then there are a whole host of MIS reports which are easily available at the tap of a button. So the entire process is so easy, fulfilling, and stress-free from the point of view of the investors. So I think from a trust factor, as I said, the three things: you can trust the stock market to deliver returns which will help you meet your goals. You can trust the regulator and the systems in place to ensure that there will be no frauds, there can be no complete loss of capital. And third is the ease of doing business for you as an investor in the market. I think all of these three things is what creates the trust factor, and which is what I think will draw a lot of investors into our market. Now we can keep talking about the potential of the stock market, and I'm sure through the day speakers have spoken about the potential of the stock market. But I would just like to end by saying that I've been in the stock market for 40 years, and I have never been this positive on India than ever before. I know that there are short-term tremors, there are problems from time to time, but I think there is a confluence of many positive factors. वो बोलते हैं ना, सब तारे मिल रहे हैं, so that this is going to be the decade, or the next 2 decades will belong to India. And we can go into a lot of those factors, and I'm sure you've been going through it through the day. But I think that this is a once-in-a-lifetime opportunity for the small investor, the large investor, to invest and build lasting capital for the family, which can be intergenerational. You can transfer it from this generation to the next generation. So this is a once-in-a-lifetime opportunity which investors should never miss. And I truly appreciate your initiative to get more and more people into the equity markets, into the mutual funds, because that's when they will get the maximum fruit of what this country has to offer. Thank you, Deepan. So I will begin the question with first question. पहला सवाल जो बाकी लोग भी हमारे दर्शक भी, and दीपन इसको हमारे 7 अलग-अलग लैंग्वेजेस की YouTube चैनल्स पर लोग लाइव देख रहे हैं सुबह से इस पूरे सेशन को. Before I begin the discussion, first quick question I would like to ask you: which one most important regulatory reforms you would like to mention here in last 2 years, which can go in a long way to building trust for small investors in the stock market? Which one reforms you think that has been actually changed the entire trust factor in the stock market? एक तो पूरा हमारा settlement system ही बदल दिया है. So पहले क्या था कि all of the assets were there with the stock brokers. अभी पूरा system बदल दिया है where the asset remains with the investor. And even when आपको security deliver करनी है when you have sold, it is only a blocking mechanism
in your demat account, or there is no actual transfer of securities from your account to the broker's account. So वो एक बहुत बढ़िया एक safety net बन गई है for the investors, because your property remains with you, and only when you are selling it, it is going directly to the clearing house. और जो margining system भी है, a lot of reform has taken place over there from SEBI to ensure that the stock remains in your demat account, and yet you get the benefit of trading in the stock market. So that is from point of view of investing in equities. When it comes to mutual funds, so they have done so much of reforms over there to ensure that there is no mis-selling of the mutual fund. यानी कि अगर आप large cap fund खरीद रहे हो, तो most of the stocks in that particular fund will be large cap, or the universe of large cap also stocks have been defined. तो जो पूरा segregation किया है in the mutual fund industry, और जिस हिसाब से transparency आई है mutual fund industry में, that also is I think a very important reform process. And third, of course, is the way KYC can be done without any paper. I think this is really a beautiful system. I don't think there's any parallel anywhere in the world where without any paperwork, just with your Aadhaar card, you can open any demat account, any mutual fund account, and it is so hassle-free and happens in a few minutes. So Deepan has told this one recent initiative, सबसे important initiative जो अभी हुआ है, जिसमें कि brokers के limits तय किए गए हैं और वो निवेशकों का पैसा अपने पास नहीं रोक सकते. ये बड़ा सुधार है. इस रिफॉर्म से स्मॉल इन्वेस्टर्स को काफ़ी भरोसा मिला है. इसके बाद भी एक सवाल बराबर उठता है दीपन कि भारत का में बेस्ट रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स काफ़ी स्पीड से हैं, एक्सचेंजेस अच्छे हैं, बट स्टिल वाई दिस इक्विटी कल्चर इज़ नॉट कमिंग अप द वे इट शुड, बिकॉज इंडिया में फाइनेंशियल सेविंग की हैबिट्स हैं, एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स में है, फिजिकल सेविंग्स में ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने कंसिस्टेंटली, आपने कहा 15-16% का रिटर्न दिया है, अभी पिछले 2 साल तो बहुत अच्छे रहे, उसके बाद भी व्हाट इज़ देयर वन big hurdle which is stopping people, which is not letting people to come into with more aggressively to the stock market? And why this is important? Because the more people will come, more stability will come into the stock market, depth will grow, and we will see more funds coming to the market. Why this is happened? What is stopping it? So I think आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग मार्केट में भी ये सोच रहे हैं कि इतने मिलियंस ऑफ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, फिर भी रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे घट रहा है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ शेयर क्राउड थिंकिंग, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुल गए हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड अकाउंट्स भी खुल गए हैं, and people have definitely ventured into direct equity or mutual funds, or they have deployed their money also, but when they are trying to do it themselves, तो उनके returns इतने अच्छे नहीं आए हैं. They are perhaps going into options, futures, या फिर ऐसे stocks में invest कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है about the stock market. तो ये जो एक बहुत बड़ी need of the hour है, is the need of professional money managers. माने इंडिया में हज़ारों ब्रोकर है, but we don't have good quality investment advisors, we don't have good quality portfolio managers. और अगर आप देखेंगे तो at the absolute HHNI level, माने आपके पास 1 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो है, तो every fund manager, every money manager, portfolio manager is after you to manage your money. लेकिन अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट करना है और इससे कम है, तो आपको कोई पर्सनलाइज एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आपको कोई बराबर गाइड नहीं कर रहे हैं, और आप ऐसे ही या तो दोस्तों को पूछ के इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ अपना पढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग. तो द नीड ऑफ द आवर इज़ टू गेट मोर एंड मोर क्वालिटी एडवाइजर्स हु कैन केटर टू द मास मार्केट. और इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो आपका पहले भी था, आपका इससे पहले जो आपका टॉपिक था फिनटेक्स, these fintech companies can play a very big role, क्योंकि they will use technology to connect with people and they will use technology to deliver the advice and complete the execution process. So I think मेरे हिसाब से ये हमने पूरा जो wave देखा था discount brokers का, and we saw so many companies like Zerodha, Upstocks, they have created a lot of value for investors and for themselves. तो जो next बड़ा wave आने वाला है financial services में,
that wave will be quality advice to the smallest of investors. And that is the need of the hour. And that I would say is something which a media house like yours should focus on with the app. If you can empanel or onboard many of these smaller investment advisors, then they'll be able to cater to the mass market. क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर आप आंख बंद करके निवेश नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ता है, और फिर टाइम टू टाइम आपको आपका पोर्टफोलियो है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे इक्विटी हो, आपको उसको रीशफल करना पड़ता है. तो यू नीड हैंड होल्डिंग, और वी आर वेरी बिजी इन अवर लाइफ्स, तो टाइम नहीं दे पा रहे. तो अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है तो इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. Deepan, Indian regulators are doing really fantastic job. But if you go back and see that investors have lost a lot of money not because of the regulatory mechanism per se, but the poor corporate governance in India. And majority of the losses of small investors is because the companies are not managing their affairs properly. A lot of hubris, there are a lot of bad decisions, and they finally landed into huge wealth destruction in the market. इस मोर्चे पे आपको क्या लगता है? Whether our regulators are somehow required to be more pragmatic? How do you see things coming in terms of where, because ultimately people don't know what is happening inside the board of a company. They simply buy the stock and then finally land into losing a lot of money, which is hard-earned money for Indians they are putting in the market. Where does this stands in terms of the Indian's regulatory system? Because that directly connects with the wealth creation and wealth destruction in the market. तो आई थिंक जो सत्यम का जो स्कैम हुआ था उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशंस आए हैं. द एंटायर कंपनीज एक्ट हैज़ बीन रिवैम्प्ड एंड सेबी आल्सो हैज़ गॉट वेरी प्रोएक्टिव इन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. और बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन आए हैं एंड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद देम टू इंश्योर दैट देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ कंप्लीट एंड क्विक रिपोर्टिंग. और अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे तो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल चाहिए. सो देयर आर मेनी मेजर्स बीइंग टेकन एंड दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑल्सो उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल चुके हैं. और एक्चुअली आप देखेंगे तो पिछले 10-15 सालों में देयर हैज़ नॉट बीन एनी मेजर लैप्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर से. और जो भी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है दैट हैज़ कम बिकॉज ऑफ ओवर इंडेटेडनेस. माने कंपनियों ने बहुत ज़्यादा लोन ले ली, प्रोजेक्ट डाल दिए, प्रोजेक्ट फेल हो गए या डिले हो गए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट के मीटर बढ़ते गए एंड देन दे वर नॉट एबल टू गेट द प्रोजेक्ट वायबल. तो आप देखेंगे तो बिगेस्ट मैक्सिमम लॉसेज, आई वुड नॉट लाइक टू नेम ऑन अ पब्लिक फोरम, बट द मैक्सिमम लॉसेज टू इन्वेस्टर्स हैव कम फ्रॉम द लार्ज कंपनीज विच आर दे हैव बीन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टेलीकॉम. और यहाँ पर जो है ना पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. यू नो, फोर्सिंग द बैंक्स टू रिकग्नाइज द एनपीएज, ये इंश्योरिंग दैट अगर आप डिफ़ॉल्ट हो रहे तो इमीडिएटली आपको एनसीएलटी में जाना पड़ेगा. एंड दे हैव क्लीन्ड अप द फुल फाइनेंसिंग सिस्टम फॉर प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक दिस विल गेट रिपीटेड अगेन. सो ऑन वन हैंड सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस किए हैं टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं and now we amongst the best in the world. और दूसरी लेवल पर आरबीआई ने इतने सारे मेजर्स किए कि आई डोंट थिंक दैट फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेकेड्स we'll be in the situation where there are such huge losses because banks have lent to companies and companies have not been able to repay this debt. So I think that risk factor is gradually coming down. और investor का perspective क्या है कि अगर आप अच्छे stocks खरीदते हो which have got low debt, high return on equity, बढ़िया businesses है, brands है, technology है, known names है, then I don't think you can go wrong. The problem comes कि आपको आपकी greed उस level पे ले जाती है कि you want to buy the momentum stocks. Momentum stocks में हमेशा आप cannot be a winner. दीपन, इन्वेस्टिंग में हमेशा एक कहा जाता है कि सबसे अच्छा बाजार वो होता है वहाँ जहाँ पे आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, जिनका को कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हीं का स्टॉक भी खरीद रहे हों. इंडिया में अभी वैसा होता नहीं दिखता है. बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट इंडिया का स्टॉक मार्केट से बाहर है, एक चीज़. दूसरा ये कि सेबी की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रमोटर्स में अभी भी अपनी इक्विटीज़ को होल्ड करके रखने की, मार्केट में डाइवेस्ट नहीं करने की, नॉट गिविंग मोर शेयर टू द पब्लिक इज़
also a big challenge. SEBI is extending these deadlines. What is stopping India's big brands which are not coming to the stock market, but they are actually capturing a lot of consumption in India, like in food market or in automobile market? बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो मार्केट में नहीं है, हम उनके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं बट उनके स्टॉक्स नहीं है मार्केट में. और what is stopping promoters in India not to to divest their equity in favor of public? देखिए मेरी राय में the mass consumption items, the companies which are not listed are mainly MNC companies. जैसे कि we are using Netflix या Amazon आप use कर रहे हैं या फिर Hyundai Motor car, they will never get listed in India. That is clear. अभी मैं आपको ये बताऊं कि a lot of the new generation platform companies, the new generation companies, they want to get listed. लेकिन जिस हिसाब से आपने देखा पेटीएम, जोमेटो, नाइका, ये मेरा अगला सवाल भी था आपसे. So these companies, maybe they got listed ahead of their time. Maybe the valuation was excessive at that point of time, and because of that, जो experience हुआ है इन कंपनियों का, that has put complete cold water on all the other companies of similar class which were looking at getting listed. तो उनका पूरा जो दरवाजा था वो बंद हो गया because people made so many losses in these 3, 4, 5 companies which got listed. वो तो उनका तो IPO हो गया, उनके investor को profit मिल गया, they must be laughing all the way to the bank, but we are left holding all the shares over there and Indian investors have seen huge mark to market losses. तो इसकी वजह से जो startups है इंडिया में, जैसे कि ओला है या फिर फ़ोन पे है या फिर स्विगी है, these are again day-to-day items which we are using. I think they will take very long to get listed because they are not profitable, or markets में we now are looking for these companies to actually show the profit. और अगर आप देखेंगे ना तो ये एक बहुत ही healthy trend है, क्योंकि कुछ सालों में ये जो promoters है, जो new generation companies है, they will not think in terms of cash burn. जो पूरा एक cash burn एक ऐसा था कि जितना आप cash ज़्यादा burn करते हो उतनी ज़्यादा valuation मिलेगी आपकी, तो वो पूरा जो thinking है ना वो reverse हो गया है. And now every startup company, whether it is listed or unlisted, their shareholders, whether they are public or private, they want a perfect roadmap to profitability. तो ये culturally I think ये बहुत ही अच्छी बात है, and it will improve the productivity of these companies and therefore improve the productivity of the nation as well, because जितना भी बड़ा investment हो रहा है, all the expansion in the economy is coming from these new generation companies only, and some of them are visible, some of them are invisible. So this is a very good trend and a very good development. But as I said, I think MNCs will never get listed. आपको वहाँ पे जाके उनका शेयर खरीदना पड़ेगा. और जो new generation companies है, they are still making losses, and I don't think they should get listed. But by and large, हमारे markets में बहुत ही बढ़िया diversification है when it comes to stocks and industry. मैंने आपको ये बताऊँ कि after USA and maybe equal to China, जिस हिसाब से sectors है आपको invest करने के लिए, जो choice है आपको, you won't find anywhere else in the world. मेरा अगला सवाल न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पे था. आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव लर्न देयर लेसन्स, promoters may not have, whether regulators have also learned their lessons or not in this entire listing of the new economy stocks, and finally investors have lost a lot of wealth into it. When I say regulator, it means SEBI and the stock market stock exchanges. With what they takeaways from this entire boom which came a year back when all the startups were actually queuing up to list in the market with very exorbitant valuations, which was not backed by the real profit. So इसका मैसेज क्या है इन्वेस्टर के लिए इस पूरे फिनोमेना का, कि हार्डकोर प्रॉफिट के बिना स्टॉक मार्केट माफ नहीं करेगा. स्टॉक मार्केट जो वैल्यूएशन है और जो इंटरनेट इकोनॉमी में हाई वैल्यूएशंस हैं उन पे उतना ट्रस्ट नहीं करेगा जितना कि वो ब्रिक एंड मोटर मॉडल के प्रॉफिट को पे ट्रस्ट करता है. क्या ये मैसेज है स्टार्टअप कंपनियों के लिए इस पूरे फिनोमेना का? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए मेरा थिंकिंग थोड़ा अलग से है, क्योंकि मेरी राय में सेबी है या स्टॉक एक्सचेंज है, दे आर परफेक्टली राइट in not going into the valuation of the company. ये उनकी, that is not their domain, that is not their mandate. उनका काम यही है कि आप उन्होंने जो regulations बनाए हैं आप उनको follow कीजिए. Have you been transparent? Have you disclosed all your
risk factors, आपका prospectus detailed है, आपकी पूरी business plan आपने समझाई है, there are no malpractices when it comes to disinvestment or placement of stock. तो they have given the checks and balances के आप जो rule of the land है वो आप follow करो. Valuation के लिए they cannot and they should not, और globally भी कोई भी regulator valuation पे opinion नहीं देता है. So they cannot say कि because आप expensive हो आप list नहीं कर पाओगे, वो उनको they should not get into that subject at all. हाँ, as investors in the market, professional investors also and amateur investors, they thought that they had understood these companies well, and the companies thought that the secondary market had understood them well, and that the secondary market investors would have the same patience and long-term vision as their private equity investors. लेकिन ऐसे हुआ नहीं. और जो हुआ वो is that the secondary market investors, professional or amateur हो, they are looking at quarter on quarter, क्या आप declare कर पा रहे हैं. Or these companies they think in terms of 3 years, 5 years, capturing the entire Indian market, changing habits, तो उसमें समय लगता है. और उस दरम्यान क्या हो गया कि पूरा जो global economy में problems आ गए, inflation, interest rates बढ़ गए, और जो पूरा startup का valuation globally था, उस पे पूरा I would say not a crash, but we've seen very, very sharp decline in the startup valuations globally. और इसका सीधा सीधा असर हमारे markets पर भी आ गया. So I think that we cannot expect any of these startups or unicorns to get listed for a long, long time in India. और जो existing companies है, अगर उनकी आप investor releases पढ़ेंगे, तो सभी जो promoters है, MD, CEO है, they are always talking about, हाँ, 24 में we'll become profitable, 27 में we'll break even EBITDA, ये business निकाल देंगे तो बाकी का business जो core है वो profitable है. तो उनकी पूरी भाषा ये हो गई है कि instead of talking about eyeballs and subscribers and transactions, उनकी पूरी thinking, पूरा communication ये हो गया है कि हाँ, हम profit करेंगे, यहाँ पर cost कम कर रहे हैं. So that is, I think, again, a very positive development. And they are relooking at the business model to make sure that they can live up to the expectation of the investors of the secondary market. So before I open floor for questions, one last question. उसके बाद हम जो सवाल लेंगे. Indian stock markets have given very good return with the inflow of cheaper capital from the abroad. This time I'm talking about the balance of FPIs and DIs in the Indian market. हमको सबको पता है कि पिछला पूरा एक decade था जब पूरी दुनिया में interest rate कम थे, capital cheaper थी, and a lot of money has traveled to emerging market including India, and Indian growth has attracted a lot of investment. Now the scenario is changing. We are going towards a different direction. When cost of capital is rising, US is talking about 5.5% interest rate, European markets are going. Now, how do you see it coming up when the cheaper capital will not be available globally and also in India because interest rates are rising? ऐसे सिचुएशन में स्मॉल इन्वेस्टर्स को कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा भारत के शेयर बाजार में अभी भी विदेशी निवेशक FPI लेकर आते हैं और वो निवेश इंडिया के लिए काफ़ी समय से FDI के अल्टरनेट के तौर पर भी आ रहा है, and it has helped India to make its forex reserves also. So how this whole shift which is coming, where the cheaper capital will not be there, what a small investor should remain cautious about going forward 2 to 3 years down the line? See, you are ending with a very difficult question, because this whole thing about high interest rates is the real problem in the stock market just now. अगर आप कोई भी professional investor मुझे भी पूछेंगे कि market में इतनी बिकवाली क्यों है, why are we having such selling pressure, why market has gone nowhere for last 1 year, तो उसकी वजह यही है कि interest rates बहुत ज़्यादा है. जब भी interest rates ज़्यादा रहते हैं तो globally and in India more and more liquidity goes toward the debt market, and that is what we are seeing in our markets. पर ये सब cycles रहते हैं, और if interest rates are high, eventually when global economy goes into recession, then the central bank will come and reduce the interest rates. So as a patient investor, आपको just sit on your chair, do not panic. एक time आएगा कि ये पूरा inflation interest rate का cycle जो है वो reverse हो जाएगा, and from that point on you will see fabulous returns coming into the equity market. So you have to just wait patiently for that. Second thing, if I may just say that
there were three structural problems with India. One, we had coalition governments. Second was oil prices, which was then getting reflected in budget. And third was incessant selling by FIIs. अभी आप देखेंगे कि ये तीन structural problems हैं ना solve हो चुके हैं. We have a very strong government at the center which is pro reform. Oil prices का जो भी है बढ़ते हैं घटते हैं, पर उसका असर government finances पे नहीं आता है. There is no subsidy, massive subsidy given by the government to when the oil prices go up. और तीसरी बात from stock market point of view, जब भी कोई भी problem होता था world में, like global financial crisis, .com bubble, फिर वो sovereign crisis थी 12-13 में, we would see massive FII selling and our markets would be down 20-30%, also sometimes 50%. But now we have the power of the small investor, which is a good counterbalance to the FIIs. और ये जो small investors का जो पैसा है, that is what we need to channelize in a very systematic manner into the stock market to act as a counter force to the FIIs. आप जानते हैं कि FI की जो holding है, it is at a multi-year low, और retail की जो holding is a multi-year high. So this is a phenomenal position to be in. और अगर हम ये trend और भी strengthen कर सकते हैं, तो हम हमारे we would be the master of our destiny and not some foreigners, who sell for some reason के Silicon Valley में बैंक उठ गया तो इंडिया में जाके बेचो, तो ये will get out of those risk factors. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 3-4 साल में इंडिया के स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. विदेशी निवेशकों पे डिपेंडेंस कम हुई है. भारत के छोटे निवेशकों का पैसा बाजार में है और वो भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू आया है. और रेगुलेटर्स ने जो रिटेल की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कट करना शुरू किया है. हमने देखा अभी नीलेश यहाँ बोल कर गए कि देयर इज नो फ्यूचर फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स इन फ्यूचर ट्रेडिंग. सो दिस मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कमिंग इन स्टॉक मार्केट. सो India has got huge saving reserves. If they'll start channelizing in the market, dependence on foreign funds will definitely reduce. और इसलिए हमने देखा कि इस पूरे पीरियड में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में उतनी वॉलिटिलिटी नहीं आई. आई एम ओपनिंग फ्लो फॉर क्वेश्चंस. वी हैव टाइम फॉर ओनली 2 questions. I think one gentleman at that side. Please introduce yourself. Here. Thank you very much for enlightening session. My name is Bharat Mehta. I am calling from Modern Group. सर जो ये बात है ट्रस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, मुझे ये जानना है सर कि रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है, आज 90% ऑफ द जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है, बैंक में एफडीज में पड़ा है, गोल्ड में पड़ा है. तो ये जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, ये म्यूचुअल फंड वाले क्यों नहीं ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं? वाई दे आर नॉट एजुकेटिंग द स्मॉल इन्वेस्टर कि अल्टीमेटली डाउन द लाइन यू हैव टू सी हाउ यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन और आपकी वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है. तो ये एक मेरा प्रश्न था. और क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम ये इंडस्ट्री को कुछ सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें? अगर आप बोलते हो कि 5 साल तक इक्विटी में पैसा रखो तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, कैन वी क्रिएट सम सेफ्टी नेट बाय सेइंग कि ओके आपको रेट तो मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा, बट एटलीस्ट वी गिव यू सेफ्टी फॉर योर कैपिटल कि आपको अभी 60% चल रहा है तो हम 4% तो कम से कम आपको गारंटी देते हैं. कैन यू डू समथिंग टू द ट्रस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स? आई थिंक दैट कैन टेक इट लॉन्ग वे. थैंक यू. हेलो. या जो आपने सेफ्टी नेट की बात की है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी नोबल थॉट, और अगर हो सकता तो डेफिनेटली एज अ इंडस्ट्री वी वुड ट्राई टू डू इट. पर एंड ऑफ द डे ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसमें सेफ्टी नेट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस. जब भी आप शेयर खरीदते हैं, यू आर बाइंग पार्ट ऑफ द बिजनेस. और फिर बिजनेस की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि बिज़नेस अच्छा भी चलता है और ख़राब दिन भी आते हैं. आप कोई भी बिजनेसमैन को पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली उसका प्रॉफिट्स आते ही रहेंगे. इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं. सो देयरफॉर देयर कैन नेवर बी एनी गारंटी, बिकॉज द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी गारंटीड. अगर आप
ऐसी कोई कंपनी दिखाएंगे जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड है, जहाँ पर ग्रोथ 15-20% गारंटीड है, then as an industry we can give a guarantee to the investor. And since that is not possible, I think safety net कभी भी आ नहीं सकती. It's not been there for the last 400-500 years or so. The first part of your question was comparing equities to other hard assets like real estate, gold, etc. So वहाँ पर what has happened, I feel, is that returns in those alternative assets has not been as good as equity in the last 5-10 years or so. I don't know going forward what will happen, but generally people have realized that equities में returns ज़्यादा आ रहे हैं, और ये जो अब जो wave of investors जो आ रहे हैं ना, they are the type who can not really invest in real estate also, क्योंकि real estate में investment करने के लिए आपको कम से कम 15-20 लाख तो invest करना पड़ता है, whereas the investments which are coming just now are 5,000, 10,000, 20,000. SIPs जो है वो 500 रुपये से चालू कर सकते हैं. So what we are seeing, the money which is coming in from the poorest of the poor households, who for them there is no other choice. या तो you could buy post office savings, या make bank deposits, and only now last, I would say 2-3 months, the bank deposit rates, fixed deposit rates have gone to 7-8% or so. ये तो आपको 6% मिलते थे until about 6 months ago or so. So from that point of view, for that class of investors, I think equity is the best option. जहाँ पर आप टुकड़े में invest कर सकते हो. You can buy small, invest at a regular basis, small amounts, and create a good performing portfolio over a long period of time. So there are many advantages. वो पूरा tax advantage भी है, ease of doing business भी है. जैसे मैंने कहा था, मैंने paperless आप कोई भी share खरीद सकते हो. That's not possible when it comes to real estate or some of the other alternative assets. So I think there are certain superior benefits of investing in financial assets, and we will see more and more money flow because of that. One more questions I can take. Yes. And that's the last question for that. We all talk about that mutual fund generate return and all this, okay. But the fiasco which happened in Axis Mutual Fund in the recent time, or something like that, or in the Franklin in the earlier one, it generally depressed the investor from the equity market or mutual fund, because the small investor put the mutual fund money, thinking that his money, at least they will, okay, market go up and down, that's okay. But at least integrity will not be doubtful. But that is happening, that how to control that? Yeah, see, there will always be a few bad apples, and I regret really what happened with Axis Mutual, and before that with Franklin Templeton also. These things in a financial market, ये होता है कभी-कभी. You cannot always get everything right, और कुछ ऐसे elements आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरे market को की बदनामी हो जाती है. But even if you look beyond these, I would say anomalies, the overall market is very sound. और जो भी problems आते हैं, ऐसे scams आते हैं, they are few and far in between, or the amount involved is very less compared to the size of the industry. Or if it is your bad luck that you are there in a company or a mutual fund which has got some problem like this, then I think you will have to suffer. But by and large, अगर investor अपना portfolio, अपनी savings diversify करके रखता है, then that is one way to avoid this risk factor. But there is no way that we can find a perfect world जहाँ पर कोई भी crime होगा नहीं. I think it's not possible in any society in any world. So, sir, you are correct, but at the same time, the investor education fund is there. Why not the government use that investor education fund for this purpose? Why is that money lying in investor education fund and not utilized for saving that, at least not big investor, at least up to 1 lakh investment or 50,000 investment or whatever the small amount. But investor education fund is for what actually? I don't know why they're accumulating money and what is not using for anything. So for the record, the stock markets have a separate investor protection fund. और वहाँ पर अगर कोई stock broker की default या scam की वजह से investor को loss होता है, then the stock exchange or rather the clearing house from its investor protection fund is actually making those payouts.
So when it comes to direct investment through stock brokers, आपको थोड़ी बहुत राहत वहाँ पर मिल रही है. When it comes to mutual funds, I think that is something which I don't think is really possible from a mutual fund perspective. But depends upon the quality of the mutual fund manager and the quality of the asset management company. But that is something which is very difficult to implement also, because they don't have a single regulating or a single body like the stock market. So, I mean, we can make these suggestions to the regulator, but I don't think it's going to be easy to implement. So, yeah. I will have a 1:1 discussion with you on this thing, and I'll give you my Sir, perspective. Thank you for your intervention. And this is a very pertinent question about investor education fund has to be utilized for better. Now we have come to the end of this. This is just end of the final session of this Personal Finance Summit. And I would like to thank Deepan for such an enlightening session, because there's a lot of questions there. और इस सेशन का कोर हमने स्मॉल इन्वेस्टर्स इसलिए रखा था क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स स्टॉक में भी हैं और म्यूचुअल फंड में भी है, और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब दीपन से उन्हें मिले होंगे. और अब हम इस सत्र के समापन पे हैं. ओवर टू गौरव एंड प्रियंका. थैंक यू सर, थैंक यू अंशुमन सर, थैंक यू दीपन सर. बहुत ही उपयोगी और शानदार सत्र रहा, और खासकर रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला इस सत्र में. एक चीज़ हम यहाँ पर ज़रूर बता दें अपने दर्शकों को कि Money9 के ऐप और नेटवर्क यूट्यूब फेसबुक चैनलों पर बड़ी संख्या में इस वक्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने फीडबैक दे रहे हैं. आप भी उसके साथ जुड़ सकते हैं. और अब मैं TV9 के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वरुण दास जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ सर आप मंच पर आएँ और दीपन शाह जी को सम्मानित करें. एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं वरुण जी का और दीपन जी का. Can we have the mementos, please? और इसके साथ ही मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो श्री कलश भी लेकर आए, जो सुख का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है. वरुण जी. Great session. Thank you so much, all of you. One nice click for this memorable summit and memorable conversations that we've had. Thank you, Dipenji. Thank you, Barun sir. Please take your seat. Ajman sir, I will request you to just stay back. And I think after the entire day of lot of conversations, ideas, I think it's time to say thanks to everyone. I would request you to please give your vote of thanks, sir. Thank you, Deepan, for such an amazing session. A lot of questions already there, but we were just a little short of time. I would like to thank everybody here who's there for the entire day, but I will start thanking first from Minister of State, Honorable Anupriya Patel. She has traveled all the way from Delhi in this morning to inaugurate this very important Personal Finance and Financial Freedom Summit. I would like to thank Radhika Gupta. She came on a very short notice, addressed a very important session and given a lot of guidance. I would like to thank Nilesh and all the panelists who were there to come and discuss the issues which are very core to the India's pocket and India's financial future. I would like to thank entire TV9 network team, events team, because without them this was just impossible to do that. Entire team was working from last many weeks, entire nights and day to bring this entire Financial Freedom Summit to a success. I would especially thank entire Money9 team, the very enthusiastic team which is working here in Mumbai and also back in our Noida studios, doing all the lives and everything. This fantastic team has pulled it through very well from a very short notice. Especially I thank lastly, because he is our MD and CEO, Barun Das, for mentoring this entire idea of creating a special vertical for personal finance and
setting us the tone for the future of India's finance will be decided. But before we close this session, I would like my PCR team to just play the personal finance super app video before I conclude the session, because that would be the message that keep your mobiles ready. India's first personal finance super app is just coming. Welcome to the world of Money9. Money9 brings you India's first personal finance empowerment super app, now in 10 languages. Money9 Super App will offer a unique machine learning, voice search-powered personalized interface by its pioneering multi-screen engagement architecture. The Money9 Super App will offer personal finance news analysis wisdom and guidance via video, radio, reels, live shows, interviews, comic and specialized documentaries. Money9 Super App will empower its subscribers via live helpline, expert exchange, chat shows, quiz and games, money education, community connect ratings of financial products and gateways to transactions. Ladies and gentlemen, please keep your mobiles ready to become the part of a new revolution in personal finance empowerment. Money9, Azadi, Paise Ki. Thanks everyone. Thanks entire team. Thank you very much. Thank you everyone. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमारे TV9 नेटवर्क और Money9 के इस फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और प्लीज़ डिनर का इंतज़ाम है, हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों ने दिन भर अपना वक्त दिया है। अब हमारे साथ हम कुछ बातें करेंगे, कुछ गप मारेंगे, कुछ हंसी मजाक होगी। प्लीज़ स्टे बैक।